छिछोरापन नहीं है। देखो वो तो सब जगह हो जाता है, अगर आपका किसी से पर्सनल कुछ हो जाए तो उसमें तो सब जगह है वो तो। क्या आ गया? बट स्टार्ट हो गया क्या? व्हाट टाइम वी हैव टू स्टार्ट? ऐसे ये कुछ इंडिकेट करें? 7 बजे से जा रहा है, तो अभी 2 मिनट रह गए बस। मैं पूछ के आऊँ? हमें खुद ही स्टार्ट करना है। उस दिन तो ऐसे ही किया था। A warm welcome to everyone as we bring you live commentary of the second T20 between India and Sri Lanka, which is about to commence at the HPCA Stadium at Dharamshala in Himachal Pradesh. The weather is conducive for cricket, even though weather forecasts have predicted rain, but it should be an exciting game of cricket. Rohit Sharma, the captain of the Indian side, has won the toss against Sri Lanka and has elected to bowl first. I am your commentator Arjun, and with me is Nitish Arora in Hindi. अर्जुन, अब देखिए कि माहौल इस समय बिल्कुल सही आपने कहा कि कंड्यूसिव फॉर क्रिकेट, क्योंकि लखनऊ की गर्मी के बाद थोड़ा सा सर्द मौसम है। सुबह बारिश हुई धर्मशाला में और शाम तक लग रहा था कि शायद ये खेल कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो खेल में, लेकिन बिल्कुल सही, भारत ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। और मतलब रिवर्सल है जो पिछले मैच से, जो लखनऊ में मैच हुआ था उससे पहले भारत ने बैटिंग करके एक टारगेट दिया था और अब भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल तैयार हैं पहली गेंद इस मैच की करने के लिए। और थोड़ा सा जो क्राउड है, दर्शकों को भी अलो किया गया है इसमें, और बहुत खूबसूरत माहौल है। धौलाधार पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के बीच में बसा ये खूबसूरत सा स्टेडियम विश्व में लगभग, अगर खूबसूरती के हिसाब से कहें तो ये शुरू के 4-5 स्टेडियम्स में ज़रूर आएगा, लोकेशन के हिसाब से भी। Bhuvaneshwar Kumar bowling the first delivery and away swinger beating the batsman right there, and more importantly it was his performance in the first T20 earning a wicket for India the very first delivery. One was hoping that he would be able to replicate it, once again holding that seam, not rotating on its axis in the air, but hitting the seam clean, and the away swinger beating the batsman Nisanka, who has now survived the first delivery. जी, श्रीलंका ने 2 बदलाव किए हैं अपनी टीम में, और जनित लियांगे और जेफरी वंडर से बाहर हुए हैं, और बिनुरा फर्नांडो और धनुष्का गुनातलिका और जो ओपन कर रहे हैं आज। और ये गेंद बाहर थी, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर बाहर निकल रही थी और बाहरी किनारा लेकर 1 रन जरूर मिल गया निशांका को, तो इसलिए श्रीलंका की पारी की शुरुआत हो गई है 1 रन से। जी, आपने कहा कि भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में पहली ही बॉल में तहलका मचा दिया था, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा ही होता रहे, लेकिन एवरी डे इज नॉट ए संडे। Well, he has figures of 2 for 9 in that first T20. He bowled only 2 overs, and Nisanka was lucky. In fact, he went on the front foot, and the ball just hit the face of the ball, or the bat, and ran down third man for a single. 1 for no loss. 2 deliveries have been bowled so far. Bhuvaneshwar Kumar has now gone back to his run-up. A long run-up, about 45 meters from the bowling crease, as he's about to begin the third delivery of this very first over with the new ball. White ball cricket being played here. To the left-handed batsman, beats him outside the off-stump. An in-swinger for the right-handed bowler, beating Gunathilaka off the very first delivery. He's in great form, Nitish. He's produced a gem of a delivery here as well. जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी था कि भुवनेश्वर कुमार एक तुरुप का इक्का है भारत के अटैक में, और उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। पहले ही मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, जैसे आपने कहा कि 2 विकेटें 9 रन देकर, तो रोहित शर्मा की आंखों में चमक देखने को दिख रही थी, और आज वो दिखा रहे हैं किस तरह से आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों गेंदों के माहिर गेंदबाज हैं, और दोनों ही खिलाड़ियों को ये तंग करने वाले हैं ज़रूर। Just one slip in place, and this time bowling it to the pads and picking up a single on the onside. The mid-on fielder cutting it off, ricocheting. The fielder going to gather it, but for some reason, despite the ball going awry, no extra runs by the batsman. Interesting field there by the mid-on fielder, going for the non-striker's end, and the ball ricocheting off the fielder backing up, but not going for a second run, Nitish. जी बिल्कुल, अगर फील्डर बैट्समैन को लगी है और इसलिए शायद दूसरा रन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि एक किस्म से डेड बॉल हो जाती है जब लग कर गई है और डिफ्लेक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर रन नहीं ले सकते। और अगली गेंद फिर से एक आउट स्विंगर राइट हैंड के बैट्समैन निशांका के लिए
टप्पा खाकर बाहर जाती बॉल को छेड़छाड़ की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि चाहते होंगे जिस तरह से भारत की बैटिंग लाइनअप है, चाहते होंगे कि एक अच्छा स्कोर चेज करने के लिए भारत को दें, एक ऐसा स्कोर चेज करने के लिए दें जो मुश्किल हो जाए। लेकिन कई बार आप जब फिश कर रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप अपनी बॉल को, बाहर जाती हुई बॉल को, तो बहुत खतरनाक हो सकता है। और शुक्र मनाएं कि उनके बैट का एज लेकर कहीं ये कैच नहीं हुआ। Well, Nisanka was not getting on that run foot. Once again playing off the back foot, uncertain. And already after 1 over, the score is 2 for no loss. Bhuvneshwar Kumar continuing from that form that he showed in the first T20 at Lucknow, the Ekana Sports Stadium, where he had figures of 2 for 9 in 2 overs and just giving 2 runs in his opening over, using that new ball effectively on this pitch at the HPCA Stadium in Dharamshala, Himachal Pradesh. जी, 1 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का 2 स्कोर है। और आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के बैट्समैन में थोड़ा सा आप वो जो एक अर्जेंसी दिख रही है कि हम इस बार अच्छा खेलें, वो दिख रहा है, पर्पस दिखाई दे रहा है। पहले मैच में तो ऐसे लग रहा था कि इतना बड़ा टारगेट को देखकर अपने सामने वो कहीं ना कहीं मैच अपनी इनिंग्स पारी शुरू करने से पहले ही हार उनके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। जसप्रीत बुमराह अपना पहला ओवर लेकर तैयारी कर रहे हैं अपने मार्क की तरफ जाते हुए, और फील्ड का जायजा ले रहे हैं। गुनाथली के वो फेस करेंगे, 1 रन पर खेल रहे हैं, पहले 2 बॉलें खेल चुके हैं पहले ओवर में, और अब बुमराह का ओवर, और पहली गेंद वाइड, लाइन पर कंट्रोल नहीं कर पाए बाएं हाथ के बल्लेबाज से, ये वाइड बॉल मिली और 1 रन का इजाफा हुआ। पिछले मैच में हमने देखा था कि दोनों ही टीमों ने, जहां तक अतिरिक्त रनों की संख्या की बात है, तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी की थी। आज दूसरे ही ओवर में पहला ये एक एक्स्ट्रा रन जुड़ गया है श्रीलंका के खाते में। हाँ, जहां तक कमी की बात थी पिछले मैच में दोनों ही टीमों की अगर बात करें, तो क्षेत्र रक्षण में जरूर बहुत कुछ डिजायर्ड है अभी। Jasprit Bumrah once again waving offline, and another wide call by the umpires. So 2 extras already. The score is 4 without loss. We're into the second over, and as yet a legitimate delivery has not been bowled. Rohit Sharma, the captain of the Indian squad, the Indian side, a little frustrated by that. He's standing at first slip, so he has a first-hand view in front of the wicket at Jasprit Bumrah, who also bowled quite well in that first T20. Getting plenty of movement off the wicket here. जी बिल्कुल। And this time just testing the batsman there as the ball just comes into the pads. 4 for no loss. जी, बढ़िया गेंद थी ये, और पहली 2 गेंदें अगर हम कहें कि ट्रायल गेंदें थी जसप्रीत बुमराह के लिए, उसके बाद तीसरी गेंद क्या बढ़िया लाइन, बिल्कुल जगह ही नहीं मिली बैट्समैन को, और भाग्यशाली रहे कि बैट के साथ छू गई, नहीं तो और नीचे ही बैठ गई गेंद, किसी के हाथ में नहीं गई, उछाल नहीं लिया। और जहां तक बात हमारे बॉलिंग अटैक की करें, तो दोनों ही बॉलर इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ बॉलरों में से हैं, और ये अगली गेंद जसप्रीत बुमराह की खेल दिया बैट्समैन ने, लेकिन कोई रन नहीं चुरा पाए। The short extra cover fielder being tested there, cutting it off effectively. No runs off that delivery. Jasprit Bumrah recovering after the first 2 wides and then bowling 2 dot balls in this over itself. 4 for no loss into the second over. The third delivery of the second over. Guna Thilaka, he's on strike, left-handed batsman. And at the non-strikers end is Nisanka, also batting on 1. This time a full-length Yorker delivery, appealing for a leg before wicket, turned down by the umpire. But I tell you what, it was very close as the ball hit the pad. We'll have to see which direction it was going, but it was quite clear to anyone looking at it. The DRS timer is now on. बिल्कुल, 2 रन तो चुरा लिए बैट्समैन ने, DRS ले लिया है। कहीं अगर बात करें अंपायर की बात करें, तो जी हाँ, ये गेंद ऐसी लग रही थी कि जाके सीधा विकेटों को चटका देगी, लेकिन कहीं एज ना लगा हो बैट ना कहीं छुआ हो, वही एक चीज हो सकती है जो बैट्समैन को बचाएगी। अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अगर हम नेकेड आई से देखें तो लग रहा है कि ये आउट है। और ये गेंद अब DRS ले लिया गया है, और बिल्कुल पैड के ऊपर सीधे जाकर लगी है। बुमराह का बूमिंग यॉर्कर था ये, और यॉर्कर लेंथ की बॉल सीधी फ्रंट फुट पे जाकर लगी है, और DRS के रिव्यू जो लिया है इंडिया ने, मुझे लगता है कि ये इनके फेवर में जाना चाहिए।
Yes, the TV umpire Anil Chaudhary should really not have much trouble with that decision. But again, he is the person who is to make that crucial out or not out decision. And it is not out, in fact, ruled by the third umpire. So the decision of the on-field umpire has been upheld by the TV umpire. I'm sure Rohit Sharma and the rest of the team would be a little disappointed. Jasprit Bumrah beat the batsman for pace, and that's what's important. They picked up 2 runs in the process as well. Sri Lanka 6 for no loss into the second over. But Bumrah should be encouraged by that. जी, लेग बाई के 2 रन मिले हैं और क्या लगता है आपको अर्जुन, क्या ये स्टंप्स को मिस कर रही थी गेंद? अगली गेंद उससे भी जबरदस्त खतरनाक बॉल, गुड लेंथ की बॉल थी, अच्छा उछाल लिया, पिच में उछाल भी है और बॉलर्स की मदद कर रही है। खेल नहीं पाए बिल्कुल भी, बैट को घुमा दिया गुना तिलक ने, लेकिन ना तो उसके साथ कांटेक्ट कर पाए, ना ही कोई रन ले पाए और गेंद विकेट कीपर के हाथों में, ईशान किशन के हाथों में। Tremendous cutter there, good length delivery, pitching on that off stump and then just shooting from there. That's what happens when the ball lands on its seam. Whippy action, Jasprit Bumrah bowling his first over and once again beating the batsman Guna Tilaka, looking to drive, no footwork. So it's 6 for no loss, still a delivery to go in the second over, and it's all happening here as Bumrah disappointed with that leg before wicket decision, turned down both by the on-field umpire and the TV umpire. जी, और काफी फायरी पेस में बॉलिंग कर रहे हैं। 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो लास्ट बॉल उन्होंने की थी, और सच माने ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रही। शुरू की 2 गेंदों का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बुमराह से था वो उन्होंने बड़ी जल्दी रिकवर कर दिया, और ये गेंद भी बाहर जा रही थी, बैट घुमा दिया गुना तिलक ने और अंदरूनी एज लेकर विकेटों पर नहीं गई, भाग्यशाली रहे और 1 रन चुरा पाए और ओवर की समाप्ति। 2 ओवरों के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के श्रीलंका का स्कोर। Well, an attempted square drive in front of the wicket, but an inside edge meant the ball going behind the wicket on the onside. So Guna Tilaka should consider himself very lucky. This left-handed batsman was lucky not to be dismissed leg before wicket, batting on 2 of 8 deliveries, and Nissanka batting on 1 of 4. The score is 7 for no loss at the end of 2 overs. Rohit Sharma, the captain of the Indian T20 side, winning the toss and electing to field first at the HPCS Stadium in Dharamshala, Himachal Pradesh. It will be Bhuvaneshwar Kumar who will now resume the bowling. This time looking to go down the track and hit it over the infield, the 30-yard circle where all the field restrictions are in place. Playing and missing there. जी हाँ, एक आगे आकर आगे बढ़कर आक्रामक खेल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन क्लेवर बॉलर हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा कि भारतीय अटैक को, खासकर ओपनिंग बॉलर्स को इस तरह से आगे आकर खेला जाए। और पिच भी जो है थोड़ा सा, ये पिच लखनऊ की पिच से बहुत अलग खेल रही है। पिच में कुछ जान है, बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है। हालांकि श्रीलंकाई बॉलर कुछ एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए थे लखनऊ की पिच में, भारतीय बॉलर्स ने तो बहुत अच्छा किया था वहां पर भी। तो आगे आकर जो अटैक करने की कोशिश की कि हम अटैक को ओपोनेंट्स की तरफ लेकर जाएं, वो सफल तो नहीं हुए पहली गेंद में। अब देखते हैं कि भुवनेश्वर कुमार की स्ट्रेटेजी क्या रहती है गुना तिलका के लिए अगली बॉल को। और ये एक बहुत ही जबरदस्त स्क्वायर कट 4 रन के लिए, पहला चौका श्रीलंकाई पारी का। 11 रन 2.2 गेंद ओवर्स के बाद। Well, it was Guna Tilaka who went on the front foot as the ball came onto the bat, and in that deep extra cover area, picking up a boundary, a much needed one for Sri Lanka at this stage, and his confidence will also improve because of that hit to the boundary there. जी हाँ, कॉन्फिडेंस उस गेंद के बाद भी बढ़ गया होगा जब जो DRS उनके खिलाफ नहीं हुआ, उनको बेनिफिट हुआ और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे शायद आज ये मेरा दिन है। 11 for no loss into the third over now. Bhuvaneshwar Kumar into his second over. He had figures of none for 2 before the second over, but going for a boundary here. And it's important really to pitch the ball up and make the batsman play. We have seen plenty of movement off the wicket, and both the bowlers have benefited from it, Bhuvaneshwar Kumar and Jasprit Bumrah. We are seeing some discussion between the on-field umpire and the player there. Rohit Sharma in the midst of it.
जी हाँ, साइड स्क्रीन के साथ में जो लगी कुर्सियां हैं उसके ऊपर दर्शकों की कुछ मूवमेंट हो रही है, जिससे शायद कहीं ना कहीं बैट्समैन को दुविधा हो रही है और उन्होंने अंपायर को जाकर कहा है कि इस मूवमेंट को थोड़ा सा कहीं कंट्रोल किया जाए और शायद उसी के लिए थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, जबकि दोनों टीमें चाह रही होंगी कि खेल लगातार बराबर होता रहे, क्योंकि प्रिडिक्शन है कहीं ना कहीं बारिश होने की, और ऐसा ना हो कि कहीं जो छोटे छोटे जो रुक रहा है खेल, कहीं उस बाधा की वजह से आगे भी जो बाधा पड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट निकालना। Well, the temperature is about 14 degrees centigrade, so it's quite cool in this mountainous region where the stadium is situated, the HPCA stadium in Dharamshala, where the second T20 is being played, and it's fairly windy as well. जी बिल्कुल, और ये तीसरी गेंद बिल्कुल स्टिक निशाने पर पड़ती, गेंद रन चुराना चाहते थे, बहुत आगे कमिट कर दिया रनर ने, लेकिन वापस जाना पड़ा, बैट्समैन ने वापस भेज दिया उन्हें, और भाग्यशाली रहे कि समय रहते ही वापस अपनी क्रीज पर पहुंच पाए। Well, Deepak Huda had a chance there to go for the stumps at the non-striker's end, but the batsman making a clean ground off it. So it is Nisanka who is still batting on one, survives. He was dismissed for a duck in the first T20. It is Guna Thilaka who's on strike, batting on 6 of 11 deliveries. The score is 11 without the fall of any wicket into the third over. This time making room, and Bhuvaneshwar Kumar bowling it to the off stump, not giving the batsman any space to play it on the offside, and it's another dot ball for Bhuvaneshwar Kumar. जी, गुनातले का बाहर निकलकर जगह बनाकर मारना चाहते थे, लेकिन भांप लिया पहले ही भुवनेश्वर कुमार ने, शायद जल्दी ही उन्होंने अपने शफल कर लिया था और बिल्कुल उनकी बॉडी के ऊपर बॉल कर दी। ही वॉज क्रैम्प्ड फॉर स्पेस, इस वजह से ये रन नहीं ले पाए। गुनातले का इस समय बहुत अटैकिंग अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये शायद अच्छा भी होगा मैच के लिए, क्योंकि टीम में जो दर्शक भी आए हैं वो देखना चाहते हैं कि मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी का हो, कांटे का हो, आखिरी गेंद तक जो रोमांच क्रिकेट का होता है वो बना रहे। वन साइडेड गेम शायद कोई भी देखना नहीं चाहता। I'm sure they want to improve on that first T20 performance. Sri Lanka this time blowing a slower delivery to the batsman, picking up a run in that short mid-on area. Score is now 12 without loss, and both sides have at the back of their mind the figure of 90% precipitation, which shows that it may rain, and it could be a rain curtail match as well. So might as well get as many runs as possible in the overs bowled. बिल्कुल, ये दिमाग पे ज़रूर रहेगा, जबकि आप ये कहें कि जब भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया तो उनके दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि आज के मैच में अगर देखें कि शुरू होने से पहले ही दिमाग में कुछ ना कुछ प्रेशर आ गया और स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर दिया। इस तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, भुवनेश्वर कुमार के दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, और उसमें भी एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने। तो 3 ओवरों की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। Guna Thilaka batting on 7 of 13 deliveries, picking up a single by running it down towards that gully area. Really a late cut in that square region. Sri Lanka 13 without loss at the end of 13 overs. So Jasprit Bumrah should now begin his second over. His figures of none for 3 of his first. He had an inauspicious start, 2 wide balls to start the over, but then recovered very strongly, and unlucky not to have that leg before wicket decision in his favour. Sri Lanka 13 without loss, and the spectators are really filling up the stadium at the HPCA stadium. जी, बुमराह ने स्टार्ट 2 गेंद जो है, मैंने कहा ना, चाहे एक किस्म से उनकी वार्म अप गेंदें थी दोनों, और दोनों वाइड गई, लेकिन उसके बाद जो ओवर था पहला, वो ज़बरदस्त ओवर था, जिसके लिए वो जाने चाहते हैं। उनके अपने जो जितने भी तीर हैं उनके तरकश के, क्यों अर्जुन ठीक कह रहा हूँ ना, क्योंकि तीरों से आपकी काफ़ी दोस्ती होगी, वो बिल्कुल सही गए। Right, 14 without loss, and the run rate is 4.42. The HPSCA Stadium at Dharamshala, Himachal Pradesh. It's also a tourist destination for those who are coming to this northern state of India. Very picturesque, but the clouds are gathering right now, and there is a fear that rain might be a spoil sport. But let's tell our viewers about what happened in the first T20 at Lucknow, which India won comprehensively, 199 for 2 in the 20 overs, and then Sri Lanka scored only 137 for 6, losing by 62 runs. This time looking to make room, and once again an inside edge going behind the wicket on the onside. A single only, 15 without loss. जी, गुनातली का इस समय जैसा खेल रहे हैं, उनके खेल में अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा है। ये अलग बात है कि
उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं रनों में, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टी20 में ज़्यादा ओवर आपके पास रहते नहीं है कि एक इनिंग्स को बिल्ड किया जाए, आपको पहले ही बॉल से एक मोमेंटम बनाना पड़ता है। एक रन ले लिया बहरहाल उन्होंने दूसरी गेंद पर, और अब निशंका सामने है बुमराह के इस ओवर की तीसरी गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद, इनकमिंग यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी, और बैट्समैन कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन समय रहते ही अपने बैट को नीचे लेकर आगे और बचा लिया अपने आप को और एक विकेट को भी। Nisanka doing well, the right-handed batsman, just to plonk that bat on the popping crease and disallowing the ball to hit the stumps. Jasprit Bumrah's whippy action is difficult to read for the batsman. Nisanka lucky to survive. Sri Lanka is right now 15 without loss into the fourth over. The fourth delivery now being bowled to the right-hander Nisanka. This time looking to play it on the onside, but plays a square only on the offside in front of the wicket. And no runs, another dot ball, 15 without loss. जी, और इससे पहले वाली गेंद भी 142 की गति की गेंद थी। बुमराह को आज देखकर लगता है काफी देर के बाद लग रहा है कि काफी आश्वस्त हैं अपने एक्शन को लेकर, गेंद की पिचिंग को लेकर। पहली दो गेंदों को अगर हम भुला दें तो उसके बाद उन्होंने कुछ खास दिया नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया इस वक्त गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की ये 5वीं गेंद बुमराह की निशंका को इस समय। जी, Bumrah now into his fifth delivery of the fourth over, slower delivery, and beating the batsman all ends up. A smile by Nisanka, knowing that he was deceived comprehensively. And once again, Bumrah unlucky not to hit the stumps, just rolling his wrist, deceiving the batsman and missing it by a whisker, the off stump. बिल्कुल ऑफ स्टंप को बिल्कुल छू कर जाती हुई गेंद थी, जरा सा बस बाल भर का फर्क रह गया। अपनी विकेटें छोड़कर खेल रहे थे दोनों ही खिलाड़ी, इस समय एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अटैकिंग गेम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजी का जवाब नहीं। और इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद बुमराह की, और ये गेंद फिर से बिल्कुल पैड्स के ऊपर की गई थी, लेकिन शायद कहीं लेक्सम को मिस करती हुई जा रही थी, इसलिए कोई अपील नहीं की। आशा भरी नज़रों से अंपायर की तरफ देखा भर सिर्फ कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, अपील नहीं उसको कह सकते, सिर्फ ये था कि एक होप की तरफ। और उन्हें भी मालूम था कि ये गेंद पैड्स पे ज़रूर लगी है, लेकिन निशाने पर नहीं है। इस तरह से बुमराह का ये दूसरा ओवर ख़त्म। 2 ओवर के बाद उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए हैं, और श्रीलंका का स्कोर 4 ओवरों के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के। जो एक उनके लिए एक दिल बढ़ाने वाली बात ये हो सकती है कि विकेट उन्होंने अभी तक कोई लूज़ नहीं किया है, विकेट्स इंटैक्ट रखे हैं, और भारत के 2 स्ट्राइकिंग बॉलर्स जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनका ये स्पेल उन्होंने निकाल दिया। और अब पहली बॉलिंग change. Well, Harshal Patel will now be bowling right arm fast medium, and Jasprit Bumrah using that crease quite well, also the return crease, and just changing the angle. Another attempted Yorker. 15 without loss, Sri Lanka. The fifth over is now about to begin, and beats the batsman off the very first delivery. The left-handed Guna Tilaka batting on 8, looking to heave it over mid-wicket or long on, but playing and missing in the process. It was a slower delivery, deceiving the batsman, and that's what T20 cricket is all about. You have to bowl intelligently and mix up the pace so that the batsman is comprehensively beaten, and a dot ball can be just as valuable as a wicket. ये देखिए, जो गेंद जिसके ऊपर अपील नहीं की थी, सिर्फ उत्साह भरी नजरों से बैट्समैन अंपायर की तरफ देखा था बुमराह ने। जो एक्शन रिप्ले बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है उसमें वो गेंद हिट कर रही थी कहीं विकेट्स को, और ये अगली गेंद को घुमा दिया है 4 रन के लिए गुनातलिका ने। A boundary in that deep square leg area. We're talking earlier about line, but this time the length was short and pulled short by the left-handed Guna Tilaka, and no fielder in place there. And I'm sure Rohit Sharma will have to do something about that. Just pivoting and allowing the horizontal bat to do all the talking with a boundary against Sri Lanka's score. गुनातलिका ये मन बनाकर आए हैं कि गेंद की ये वाली गेंद तो खैर इस पे क्योंकि चांसेस थे उनके पास, स्टंप्स के ऊपर अटैक नहीं कर रही थी गेंद और इसको घुमा सकते थे, लेकिन सभी गेंदों के ऊपर उनकी कोशिश है कि बैट को घुमा दिया जाए, मेरिट के ऊपर नहीं खेला जाए, क्योंकि चाहते हैं इस समय कि रन गति बढ़ाई जाए। 19 रन बिना किसी नुकसान के 5वें ओवर की ये तीसरी गेंद, और फिर वही स्ट्रेटेजी के आगे आ जाओ, बैट घुमा दो, लग जाए तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, पूरे 8 खिलाड़ी और हैं आने के वाले। Once again, a change in pace, and more importantly for Harshal Mehta, he pitched the ball up
and beating the left-handers again, looking to hoist it over that mid-wicket area. So another dot ball, but the boundary in the earlier delivery may have brought his confidence down just a wee bit. Sri Lanka 19 for no loss. Gunathilaka batting on 12 of 17 deliveries, and Nissanka at the non-strikers end batting on 3 of 10 deliveries. जी, और ये इस ओवर की चौथी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप ये गेंद करवाई है। अच्छा है ये, जब एक 4 रन पड़ गए उसके बाद उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी को भांप लिया है कि मुझे कैसे चेंज करना है। एग्रेशन बैट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुरू में ही बॉल करवाने से पहले ही अगर आप अपनी क्रीज छोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो बैट्समैन के पास एक रिकवरी का मौका आप दे रहे हैं। तो थोड़ा सा डिसेप्टिव होना पड़ता है बैट्समैन को भी, जैसे आजकल बॉलर बहुत से डिसेप्टिव होते हैं। सिमिलर एक्शन में कहीं वो स्लो बॉल करा रहे हैं, कहीं वो टर्नर करवा रहे हैं, कहीं वो फास्ट बॉल करा रहे हैं, यॉर्कर करा रहे हैं। तो ये एक बहुत कुछ सीखना पड़ता है बैट्समैन को और बॉलर को भी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 में जिस तरह का मैचेस होते हैं उसमें आपको डिसेप्शन भी एक आपका जो है तीर हो सकता है आपकी तरकश में। It's a 20 without loss, and Harshal Mehta bowling from over the wicket to the right-handed batsman. Plays it without footwork but gets enough bat on it on that offside in that deep extra cover area. And does he pick a boundary? Yes, 24 without loss. So Harshal Mehta going for runs in this over. 3 boundaries so far in the Sri Lankan innings, and Nissanka is batting on 7 as a result of that boundary. जी हाँ, बिल्कुल हवा में खेल दिया था इसको और बहुत दूर तक नहीं जा पाई, लेकिन भाग्यशाली रहे क्योंकि वहाँ पर कोई भी फील्डर नहीं था। लेकिन आप एक चीज़ देखिए अर्जुन, बॉल जब आउटफील्ड में जाकर गिर रही है तो तेज़ी से नहीं निकल रही है बाउंड्री की तरफ, क्योंकि जो सुबह बारिश हुई है उसकी डैम्पनेस ज़रूर है ग्राउंड में, और ये इस गेंद को भी हवा में खेल दिया है, आखिरी गेंद को, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, 1 रन के लिए निशांका पहुंचे 8 रन पर। श्रीलंका का स्कोर 25 5 ओवरों के बाद 5 की एवरेज से बिना किसी नुकसान के। So an attempt to heave it over mid-wicket, a slow delivery by Harshal Mehta, and a single against Sri Lanka's name. 25 for no loss after 5 overs. It's time now to rotate the commentators in the commentary box, and we're joined by Hemant Madan, who will be doing the commentary in English, and Adesh Kumar Gupta, who will do the commentary in Hindi. A warm welcome to you, Adesh. India in a spot of bother right now. 25 for no loss, Sri Lanka. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन। और जैसा कि आपने बताया कि भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 25 रन। हालांकि विकेट तो नहीं गिरा है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी हद तक बल्लेबाजों को अपने कंट्रोल में रखा है। और यहाँ गेंदबाजी में अब युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करते हुए नज़र आएंगे, और काफ़ी कामयाब गेंदबाज हैं। और मैं स्वागत करता हूँ अपने साथी कमेंटेटर मदान जी का। जी नमस्कार। Thank you so much for the warm welcome as Yuzvinder Chahal introduced into the attack under the power play. हेमंत जी, That's fine as long as we get the partnership going. Meanwhile, Chahal introduced into the attack, back of the length, and the batsman rocking on the back foot, showing it his class in the end, getting a boundary, square cutting it, waiting all the way, and making sure the ball trickles into the fence. और श्रीलंका की पारी की शुरुआत की थी प्रथम निशांका और दरिश्का गुनातिलका ने। श्रीलंका टीम में 2 परिवर्तन हुए, लेकिन भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह से जो रनों की रफ्तार है उसे तेज़ किया जाए, क्योंकि पिछले मुकाबले में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा था उनका, और पहला 2020 मुकाबला वो 62 रन से हार गए थे। लेकिन धर्मशाला में माहौल काफ़ी ठंडा और वहाँ पर बारिश होने के भी आसार हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाज काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, और इस समय स्ट्राइक पर हैं गुनातिलका, जो कि 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने कवर्स में गेंद को खेलने की कोशिश की, और मिड ऑफ पर फील्डर खड़े थे संजू सैमसन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और रन बनने की यहाँ कोई संभावना नहीं थी। यहाँ पर 1 रन ज़रूर मिला है। 31 रन श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान के। निशांका इस समय स्ट्राइक लेंगे, 13 रन बना चुके हैं 14 गेंदों का सामना करते हुए, और युजवेंद्र चहल जिनकी पहली गेंद पर चौका ज़रूर लगा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने किफ़ायती गेंदबाजी की है।
और अगली 2 गेंदों पर उन्होंने केवल 2 रन दिए हैं। अब देखना है चौथी गेंद पर किस तरह की गेंदबाजी लेकर आते हैं। दर्शकों में काफ़ी उत्साह है और तिरंगा उनके हाथों में लहराता हुआ दरअसल 7 साल बाद के समय के बाद धर्मशाला में ये मुकाबला हो रहा है। और इस बीच यदुविंदर चहल की गेंद और इस गेंद को निशंका ने ऑन साइड में खेल दिया था और इससे पहले कि फील्डर गेंद तक पहुंचते 1 रन और श्रीलंका के खाते में जाता हुआ 32 रन बिना किसी नुकसान के निशंका 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए गुना तिलका भी 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ ये कोइंसिडेंट कहा जा सकता है, लेकिन अब अगर ये दोनों बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो फिर श्रीलंका को उम्मीद होगी कि ये तेजी से रन बनाए। Absolutely. They've laid the foundation. Meanwhile, a dot delivery on the stumps, cramping the batsman for room, making sure the ball ends in a dot. So 7 runs already coming of this over, the last delivery to go. So far, so good from Sri Lanka. They had a sorry looking scorecard in the last game. Much improved batting performance this time. Once again, on the stumps, the batsman trying to make room for himself, trying to square cut it, missing the line completely. The wicketkeeper collects it, and as a result, another dot. 7 runs coming of this over, 32 for no loss after 6. The power play done and dusted. Sri Lanka might just be pleased after having put into batting after Rohit Sharma winning the toss, electing to bowl. So far, so good for Sri Lanka. बिल्कुल सही कहा हेमंत जी। और जिस तरह से ये पावर प्ले समाप्त हुआ है उसके बाद 32 रन श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान के। और पावर प्ले में जब कोई विकेट नहीं गिरता तो फिर टीम अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकती है। अगर 2-3 विकेट गिरे तो फिर मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करने का मौका मिलता है। और हमने तो आईपीएल में भी देखा कि जो 2020 क्रिकेट का बहुत ही खूबसूरत प्रारूप है, वहाँ पर भी अगर पावर प्ले में 3-4 विकेट गिरते थे या 2-3 तो फिर काफ़ी दिक्कत आती थी। और अब रविंद्र जडेजा जो कि अपने नए स्टाइल में हैं और रिकवरी की है उन्होंने इंजरी के बाद, और पिछले मैच में अच्छी वापसी की और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की। उन्होंने 4 ओवर किए थे, 28 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि जो ये श्रीलंकाई टीम है इसमें दरअसल एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की काफ़ी कमी है। इस पिच ऑन साइड में गेंद को ड्राइव किया पथुमा निशंका ने और इससे पहले कि गेंद फील्ड होती 1 रन तेज़ी से चुराया, बल्कि 2 रन लिए। हालांकि रोहित शर्मा ने फील्डर का हौसला बढ़ाया, 34 रन बिना किसी नुकसान के। और धीरे धीरे रनों के बीच इन दोनों की जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी नज़र आई। और इस बार रविंद्र जडेजा ने बैट्समैन को मजबूर किया कि वो फ्रंट फुट पर आएँ लेकिन कोई स्ट्रोक ना खेल सकें। दरअसल काफ़ी वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं रविंद्र जडेजा पिछले कुछ दिनों। हालांकि कुछ साल पहले की बात की जाए तो वो काफ़ी टाइप्ड हो गए थे और इस बार रिवर्स हिट किया जो कि विकेट कीपर के सर के ऊपर से जाता हुआ सीधा फाइन लेग की तरफ। और ये 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। काफ़ी लंबे समय बाद श्रीलंका के खाते में कोई चौका जाता हुआ 38 रन बिना किसी नुकसान के। और अब ये दोनों बैट्समैन कोई भी खतरा उठाने से डर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने रविंद्र जडेजा को अपने ऊपर हावी होने दिया तो फिर वो बहुत कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। किसी तरह से रविंद्र जडेजा के कॉन्फिडेंस को हिलाना चाहते हैं बैट्समैन। Absolutely spot on there. And Nisanka is particularly dangerous as a batsman. We'd seen what he had done in the last series against Australia. Threatening batsman, meanwhile working the ball to the onside and scampers for a quick single. Gives the strike to Guna Tilaka, who is a change and who is introduced for the first time in the series. So far, so good for him as well. Good start to him, and he's very capable with his hefty hits. He's got a big strapping lad and a lot of capability under him as well. So Ravindra Jadeja continuing the over. Meanwhile, this one driven through the covers, might just get to the fence. The fieldsman at long off, cutting it over and making sure the ball doesn't trickle into the fence. Contains it for a couple of runs in the end. Deepak Huda, good effort there. बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब जाते हुए उन्होंने गेंद को बहुत ही सफाई के साथ रोका और उसके बाद बहुत ही शानदार थ्रो भी किया। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि पथुम निशंका जिनके पास केवल 18
2020 इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस है, 486 रन उन्होंने बनाए हैं और धनुष्का गुणतिलके के पास उनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 34 2020 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने 595 रन बनाए हैं और इधर स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो 41 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के निशांका खेल रहे हैं 21 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि गुणतिलका खेल रहे हैं 16 रन के स्कोर पर 22 गेंदों का सामना करने के बाद। और यहाँ हेमंत ऐसा लगता है कि ये जो स्कोर कार्ड है ये 2020 फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा। That is right. But one thing at the back of the mind of Sri Lankans is not losing wickets and then obviously lay the foundation for the next 10, 12 overs. And that's exactly what's seen here. Meanwhile, Chahal is continuing the attack. And that one driven on the onside for a quick single as well. So right point there, Adesh, that they've not accelerated, but I think that's what they're trying to do. Make sure they don't lose wickets. And then excel, launch themselves for the 5-10 overs in the death. अब देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इस बीच बैकफुट पर जाकर कवर्स में बेहतरीन ड्राइव किया युजवेंद्र चहल की, जो थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और ऑफ साइड एक तरह से रूम मिला था उन्हें, बैकफुट पर गए और पूरी ताकत लगा दी, लहराता हुआ चौका गया और इसी बीच स्टेडियम में श्रीलंकन फ्लैग भी लहराते हुए नजर आए। एक अच्छे जोश का संचार दर्शकों के बीच होता हुआ, क्योंकि काफ़ी सर्द मौसम और ऐसी ही सर्द बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी गर्माहट। इसी बीच ये युजवेंद्र चहल की अगली गेंद और इस गेंद में थोड़ी तेज़ी थी जिसकी वजह से गेंद में कोई टर्न नहीं था। इस गेंद को उन्होंने ऑन साइड में ड्राइव किया, उससे पहले कि मिड विकेट पर गेंद फील्ड होती। 1 रन मिला, श्रीलंका का स्कोर 47 रन बिना किसी नुकसान के। और अब जिस तरफ मेरे सहयोगी कमेंटेटर इशारा कर रहे हैं हेमंत बार बार कि कोई विकेट नहीं गिरा है, और मुझे लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज विकेट खोना भी नहीं चाहेंगे। Why not? Absolutely. I think Rohit Sharma winning the toss and putting Sri Lanka onto bat, and the decision was driven with the fact that the wicket had a little bit of grass on it, and it was kept under covers considering the weather. So the early first 5-6 overs there would be seam and swing on offer. We saw that. But good thing for Sri Lanka is they've not lost the wicket, and now it's on them to excel, and that's exactly what they're doing. Meanwhile, working the ball on the onside, sharpening for the second run. Would they get it? The non-striker says no, and common sense prevails. Ends up with a single, with one more delivery to go in this Chahal's over. Boundary consolidated. So far so good from Sri Lanka. Partnership thriving, and Nissanka, who is the dangerous man, 23 of 22, has got his eyes in, and he's potent, really potent to make this big. Chahal taking the last delivery of this over then. भुवनेश्वर कुमार पिछले मैच में हेमंत बहुत ही ये कह रहा होगा कि कंजूस साबित हुए थे और उन्होंने 2 विकेट बहुत जल्दी निकाल दिए थे। उसके बाद जो श्रीलंकन बैटिंग थी वो काफ़ी प्रेशर में थी। यहाँ पर जो ओपनिंग स्टैंड मिला है दरअसल वो पिछले मैच से बिल्कुल उलट है और ये अर्धशतक की साझेदारी इसी बीच पूरी हुई। 51 रन श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान के। You're right point there, and weather like this, it's cold conditions. If you kind of make sure that you don't lose early wickets and you get your eyes in, much like these two have done, and these are strong batsmen. The records say that for themselves. They've got the ability, and a big strapping lad in the form of Nissanka and Gunathilaka, who is a change, by the way, in this game. He's introduced for the first time in the series and looks like a welcome change for Sri Lanka, really. और अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो ये बॉलिंग एनालिसिस भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर्स और 8 रन उन्होंने दिए और बाकी गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और इसी बीच एक शानदार 6 रनों के लिए प्रहार किया। यहाँ पर अंपायर का इशारा इससे पहले आता पता चल चुका था कि ये कितना दमदार शॉट है गुणतिलका का और बहुत ही ख़तरनाक बल्लेबाज हैं और ये खब्बू का एक तरह से बेहतरीन शॉट होता है। ओवर पिच गेंद मिली थी और इस गेंद में कोई ज़्यादा फ्लाइट नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बैट के जड़ में ये गेंद आई और यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट खेलने का कोई मौका नहीं गंवाया। इस बीच ये गेंद जो कि हवा में लहरा रही थी लेकिन फील्डर काफ़ी ऊपर थे। अब रोहित शर्मा के चेहरे
के जो भाव हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ी चिंता श्रीलंकन बल्लेबाजी को लेकर हो रही है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की इस दूसरी गेंद पर पॉइंट बाउंड्री पर बेहतरीन चौका लगाया है, और 2020 क्रिकेट में हिम्मत इस तरह के शॉट बड़े ही स्वाभाविक होते हैं। Right, Gunathilaka now denting the Indian attack. Ravindra Jadeja under a bit of pump, slapped away on the onside, and the ball just rocketed into the fence. So he's taking a toll now. 6 with this. 6-4-6 coming of this over so far, and a bit of discussion between Rohit Sharma and Ravindra Jadeja. From the middle of the bat, and the beauty of this shot was he really judged the line and the length way too early. Flat 6 as a result of that. काफ़ी महंगा ओवर जाता हुआ ये, और यहाँ पर एक तरह से प्रहार करने के बारे में सोच ही लिया है धनुष्का गुणतिलके ने कि मुझे लॉफ्टेड शॉट खेलने ही हैं, और उन्होंने अब ये दिखा दिया है कि अगर वो समय पड़ने पर डिफेंस कर सकते हैं तो आक्रामक भी खेल सकते हैं। उस बीच अगली गेंद जो कि हवा में लहराता हुआ शॉट, और ये भारत के खाते में जाते हुई पहली सफलता। रविंद्र जडेजा आसमान की ओर देखते हुए धन्यवाद अदा करते हुए ईश्वर को, क्योंकि जिस तरह से उन्हें ये विकेट मिला है, और एक लंबा इंतज़ार भारत का आखिरकार समाप्त हुआ। 67 रनों की साझेदारी यहाँ पर हुई पहले विकेट के लिए, और धनुष्का गुणतिलका रविंद्र जडेजा की गेंद को, जो कि स्ट्रेट बाउंड्री पर शायद एक और छक्का लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने रविंद्र जडेजा के स्कोर में पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर चौका लगाया, तीसरी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हुए, और उनका हवा में जो खेला गया शॉट था वो दरअसल एक बहुत ही आसान सा कैच साबित हुआ, और वेंकटेश अय्यर ने इस कैच को पकड़ा। इस तरह से पारी समाप्त हुई यहाँ पर धनुष्का गुणतिलके की। Full marks to Ravindra Jadeja to try and induce the batsman to repeat that shot again, getting the toe end off the bat, and the ball spooning up in the air was nicely collected in the end by Deepak Huda, seeing the back of dangerous looking Gunathilaka, and Ravindra Jadeja having the last laugh. Full marks really to his ability to not be fearful and encourage the batsman to try and make the mistake, in the end winning and having the last laugh. दरअसल इसके पीछे रविंद्र जडेजा का बहुत ही जो अनुभव है वो दरअसल काम आया। नए बैट्समैन इस समय विकेट पर पहुंच चुके हैं, लंका, और अब देखना है कि वो किस तरह से रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाए रखते हैं। श्रीलंका को दरअसल जो शुरुआत की ज़रूरत थी वो उसे मिल चुकी है। 8.5 ओवर इस समय हो चुके हैं, और श्रीलंका का स्कोर 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जो आखिरी विकेट गिरा था यहाँ पर श्रीलंका का वो था धनुष्का गुणतिलके का। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्हें की, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें अपना शिकार बनाया, और इस बीच थोड़ी सी मिसफील्डिंग यहाँ पर होती हुई जिसका फ़ायदा श्रीलंका को मिलता हुआ, और अब श्रीलंका का स्कोर 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निशांका खेल रहे हैं 26 रन बनाकर। गुणतिलके की बात की जाए तो उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन बनाए, और एक बहुत अच्छा योगदान उन्होंने अपनी टीम के लिए दिया। तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम गुणतिलका की, क्योंकि उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का जो दबाव बन रहा था बल्लेबाजों पर उसे दूर किया, और ख़ासकर रविंद्र जडेजा की गेंदों पर उन्होंने जिस तरह से दिलेरी के साथ शॉट्स लगाए। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाता है, तो वही उनके साथ हुआ। लगातार गेंदों को हिट करने की कोशिश में आखिरकार वो शिकार बने रविंद्र जडेजा का। Yes, Ravindra Jadeja really a big heart, and he really bowls with that extreme confidence. Meanwhile, Chahal introduced into the attack, cutting the batsman into the half. The batsman trying to work the ball on the onside. Lanka, who got a 50 in the last game, so he's in form, and the ball cutting it into the two halves, and then moving away from the batsman. So the wrong one from Chahal at the outset. उन्होंने 53 रन बनाए थे, और सही कहा आपने कि सबसे कामयाब बल्लेबाज वही थे, और आज भी अगर वो पिछले मैच जैसी ही बल्लेबाजी करते हैं तो फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रीलंका यहाँ पर एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर
बहुत ही शानदार और दमदार बल्लेबाजी की सलामी बल्लेबाज धनुष्का गुणतिलका ने, और उनका बखूबी साथ निभाया प्रथम निशांका ने, और अभी भी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 रन उनके बल्ले से निकल चुके हैं। नए बल्लेबाज असलंका 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर नाबाद। निशांका इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ साइड में तेज़ी से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन रूम नहीं बना पाए स्ट्रोक के लिए। अच्छी गेंद थी। और इस बीच यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि रविंद्र जडेजा किस तरह से इशारा करते हुए कि गेंद बहुत ज़्यादा हवा में थी और फील्डर ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि कैचों के सहारे ही मैच जीते जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी फील्डिंग। Yeah, take catches, win matches. Old cricket saying, really. And Chahal keeping it nice and tight. Just 2 runs coming of this over. And he's in form. Last game also really went among the pick of the wickets, really, for him. Was slightly out of form in the last few games, but good to see him getting back into the act. Wrapped on the pads, big appeal by Chahal, and the umpire raises his finger, seeing the back of Asalanka. Asalanka looking slightly concerned, talking to his partner. Would they go for a review? In the end, they pressed the button. Asalanka believes that probably it was going down the leg side, would have to wait and watch. Meanwhile, a review is taken. What's your take, Adesh? ऐसा लगता है काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो स्वीप करना चाहते थे और विकेट के बिल्कुल सामने थे, और अंपायर्स ने बिल्कुल भी सोचा नहीं एक क्षण के लिए भी। तो ये बताता है कि जो अंपायर हैं उनका जो लिया हुआ निर्णय है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पर गेंद काफ़ी नीचे लगी है पैड पर, और बहुत ज़्यादा स्पिन भी नहीं था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गेंद इस तरह से ऊपर चली जाए। बिल्कुल पूरी तरह से बीट हो गए। दरअसल वो फ्रंट फुट पर सामने तो आए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आए, और गेंदबाज ने शायद पहले ही भाप लिया था, गेंद को खींचा। नतीजा ये निकला कि शॉर्ट गेंद थी, मिस टाइम हुआ शॉट, और गेंद सीधे विकेट के सामने उनके पैड पर रेफ करने में कामयाब रही। और ये देखिए कि मिडिल स्टंप पर जो दिखा रहा है कैमरा फाइनली, तो यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ 71 रन के स्कोर पर। और हमारे साथी कमेंटेटर देखिए किस तरह से परिस्थितियाँ बदली। जब वो हमें छोड़कर गए थे तो श्रीलंका का कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन अब वो जब वापस आएंगे कमेंट्री रूम में तो श्रीलंका के 2 विकेट यहाँ पर गिरे होंगे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प खेल यहाँ से चलेगा, क्योंकि अब श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहेंगे कि वो रनों की रफ्तार को थोड़ा तेज करें। Absolutely right. That one really pitching in line, impact in line, missing the off stump, missing the leg stump, crushing the middle stump. So really a good comeback from Chahal, keeping it nice and tight, and now obviously has opened his account as far as the wickets are concerned. 71 for 2 now, and Sri Lankan middle order would now be exposed. So far it was a good start for them, and just as we are about to close on 10 overs, they've lost 2 wickets. 2 in-form batsmen, 2 batsmen who were looking really promising. They've gone back in the dugout. Really a mix. First 10 overs was attacking stroke play. First 5-6 overs they negotiated pretty well, and then was a bit of attack. And now right at the end of the 10 overs they've lost 2 wickets. That would really dent Sri Lanka. Nisanka and Gunatilaka really looking strong and aggressive, had their boundaries coming their way. But just as we are about to close on 10 overs, some good bowling by Chahal and Ravindra Jadeja, seeing the back of the 2 in-form batsmen. Full marks really to both the spinners. These are the conditions which we all know and believe would assist the paceman, but scorecards reflect a different story. Chahal amongst the pick of the wickets along with Jadeja. Bhuvaneshwar, 2 overs for him, 8 runs, wicketless. Bumrah, stunning Yorkers. Good tight spell for him. 2 overs, 5 runs, wicketless. Harshal Patel, he got a bit of beating in his first over, conceding 10 runs. Meanwhile, I'd like to welcome my new commentator who's replacing Adesh. Welcome Nitish to the com box. धन्यवाद हेमंत। और
आदेश जी, आपका भी शुक्रिया। आप कह रहे थे कि देखिए कितना परिवर्तन कर दिया। जब पहले 5 ओवरों के बाद हमारे साथी कमेंटेटर्स बाहर जा रहे थे तो कोई भी विकेट नहीं थी, और 2 विकेट लेने का करिश्मा जो है ये आदेश जी ने और हेमंत जी ने कर दिया। लेकिन जब हम बाहर गए थे तो उस समय 5 ओवरों में सिर्फ 25 रन थे 5 की एवरेज से, लेकिन अगले 5 ओवर में आपने लगभग 50 रन बनवा दिए। जी देखिए, ये तो T20 क्रिकेट में होता है, और फिर धर्मशाला में जो इतनी ठंड है और बारिश का भी अनुमान है, तो गर्मी कैसे आएगी? तो इसलिए थोड़े बहुत अच्छे शॉट्स भी देना ज़रूरी है, और निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी की। जी बिल्कुल। और इस ओवर की आखिरी गेंद, 10वें ओवर की आखिरी गेंद, और आते ही हमने फिर से रनों का ड्रॉट लाना शुरू कर दिया। कोई रन नहीं ले पाए इस गेंद पे। और अच्छा, ये सही कहा आदेश जी आपने कि बहुत ज़रूरी है इस सर्दी में थोड़ी सी जो है वो, क्योंकि दर्शक भी जो बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए था कि एक्शन पूरा हो। सिर्फ ये नहीं है कि खाली रन बने, सिर्फ ये भी नहीं है कि खाली विकेटें गिरती जाएं। तो स्पिनर्स जो हैं वो, मुझे लगता है कि 5 ओवर तक जब तक वो नहीं आए थे खेलने के लिए, तब तक वो अपने अंदर ऊर्जा ही इकट्ठी कर रहे थे। उस ऊर्जा का अच्छा प्रदर्शन दिया स्पिनर्स ने, जडेजा ने और युजवेंद्र चहल ने एक एक विकेट चटका लिया। अर्जुन। Well, thank you so much. Sri Lanka 71 for 2. 2 wickets falling to the spinners, right and the left-handed. Good support from the field positions, especially in the outfield. It is Nishanka still on batting at 27 or 25 deliveries. Harshal Mehta about to begin a second over. This time playing it on the back foot and finding the fielder on the offside in that deep extra cover area. It's 72 for 2 with Nishanka now batting on 28 of 26 deliveries. And Mishara is the new man in, a left-handed batsman taking guard at this point. So the work is cut out for the Sri Lankans. Asalanka was a big wicket to fall. In the first T20, he made 53 of 47 deliveries. But the DRS review worked in favour of India, and he was dismissed cheaply. And you can see the glee on Chahal's face with the second wicket down after 10 overs. 72 for the loss of 2 wickets. It is Mishara on strike against Hemant Mehta, bowling from round the wicket, and this time popping the ball up just behind the bowler, falling short of the fielder, and a dot ball, but also possibly a life to the new batsman. बिल्कुल। अर्जुन, ऐसा लग रहा है कि जब हम कमेंट्री करने आ रहे हैं तो फिर से बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स को लेकर आ गए हैं। शायद थोड़ा सा खिलाना चाहते हैं श्रीलंका को, और जैसे ही हम जाते हैं स्पिनर्स आकर अपना करिश्मा कर देते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। आज जो ये मैच है थोड़ा कांटे का मैच लग रहा है। कमिल मिश्रा खेलने आए हैं, अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 ही मैचों में 14 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं, और पिछले मैच में कुछ अधिक नहीं कर पाए थे। इस समय इस गेंद को दिशा भर दे दी और 1 रन के लिए 1 रन चुरा लिया और खाता खोल दिया अपना आज के इस मैच में। हर्षल मेहता भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका दूसरा ओवर है और 12 रन अब तक दे चुके हैं। T20 के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। 6.95 की औसत से इस समय श्रीलंका अपनी पारी को आगे बढ़ा रहा है। 10 ओवर हो चुके हैं। अगर हम हाफवे मार्क का लें तो डबल से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक इस स्कोर को खींच के ले जा सकती है श्रीलंका की टीम? अर्जुन। Well, Nissanka is still batting on 29 now. He's taken a single as he just turned it on the onside, picking up a 2 in the process as well. There was a misfield there on the onside towards that mid-wicket area. 75 for 2, batting on 30 now. And just coming back to your question, Nitish, if they can manage to keep the wickets, then clearly 150, 160 is on the board. It should be an improvement on the first T20 match, where Sri Lanka lost by 62 runs to India. But at this stage, if they can tackle the spinners well, they've done well against the fast and the seam bowlers. But if they can do well against Jadeja and Chahal, then they should reach the mark of 160. हालांकि T20 मैचेस में जो धर्मशाला अगर देखें एज ए वेन्यू तो बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये नहीं रहा है कभी भी, और अगर 150 का स्कोर पार कर लेते हैं तो बहुत ही कंपेटिटिव स्कोर हो जाएगा। भारत के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं इस मैच में। श्रीलंका के दिमाग में ये ज़रूर चल रहा होगा। और इस समय एक ये रिव्यू, अंपायर ने रिव्यू लिया है कहीं शॉर्ट रन का, और उसको देखा जा रहा है, लेकिन क्रीज के ऊपर बैट चल गया। जो रिव्यू दिखाया जा रहा है उससे लग रहा है कि ये रन तो पूरा कर लिया, 2 रन ले लिए थे, मिस फील्ड के ऊपर 1 रन और दे दिया। देखिए, छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं T20 क्रिकेट मैच में, वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ पलट देती हैं गेंद। चाहे वो बैटिंग की बात हो या फील्डिंग की बात हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हर समय सजग रहें, सतर्क रहें और कहीं पर भी मौका न दें अपोजिशन को ऊपर आने का, आगे बढ़ने का।
Harshal Patel bowling his fifth delivery of his second over. A slower delivery, turning it on the onside towards long on and picking up a single. And we saw the earlier review of that second run being taken by the batsman. Because of the technology, they are slowing it down frame to frame. And we saw the bat just going beyond that popping crease marginally, which is why the 2 runs was awarded to the batsman. 76 for 2 into the 11th over. Still one more delivery to go with Harshal Mehta steaming in from round the wicket to the left-hander. We saw that in the first T20 as well, with Mishara on strike, batting on 1 of 3 deliveries. And a slower delivery. Does he find the fielder? He does! So the third wicket has now fallen with Mishara out for 1 off the bowling of Harshal Mehta, who has now finally struck in the final delivery of his second over. Sri Lanka 76 for the loss of 3 wickets. क्या बात है। और हर्षल पटेल विकेट चटकाने में कामयाब रहे, और ये उनकी चालाकी की बात कर सकते हैं हम। इसमें बहुत ही वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, राउंड द विकेट और बॉलिंग करवा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पेस में वेरिएशन कर रहे हैं, रिस्ट को रोल कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि मिडल ओवर जो रहते हैं T20 इनिंग्स में, वो बहुत बड़ा दारोमदार रहता है बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास 2 रोल रहते हैं वहाँ पर। अगर कोशिश करें, वो उतना अटैक नहीं कर सकते हैं, कोशिश करें रन रोकने की, और अगर उस रन रोकने के प्रोसेस में कहीं विकेट ले जाएं तो वो सोने पे सुहागा की बात होती है, और सोने पे सुहागा कर दिया हर्षल मेहता ने। इस समय निशांका जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनका जो मैचेस का अनुभव है, 16 मैचों 17 मैचेस का उनके पास अनुभव रहा है T20 खेलने का, और अब क्रीज पे टिकने का अनुभव भी है। तो इस समय उन्हें सीनियर पार्टनर का एक रोल अदा करना पड़ेगा और गाइड करना पड़ेगा अपने सामने वाले पार्टनर को, ताकि टीम को, मैच को आगे बढ़ाया जा सके। ये नहीं है कि आप दूसरी तरफ से तो विकेटें गिरती चली जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक एंकर का रोल दीजिए, ताकि जो बैट्समैन आए उसको कम से कम 3-4 गेंदों में अपनी आईज को सेट करने का मौका मिले और अपने फुटवर्क को थोड़ा सा चेक करने का मौका मिले। उसके बाद वो भी हिट कर सकते हैं। जब दोनों तरफ से बैट्समैन फायर करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर श्रीलंका कर सकता है। चंडीमल अब अंदर आए हैं इस समय खेलने के लिए, और श्रीलंका का स्कोर 11 ओवरों की समाप्ति पर 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। So Harshal Patel finally picking up the third wicket. It is Ravindra Jadeja into his third over now. His figures are 1 for 27, bowling to Nisanka, who opened the baton with his co-opener, batting on 31 of 29 deliveries. Chandimal at the non-striker's end, yet to open his score. This time steering it on the onside towards the short mid-wicket area. And the fielder giving chase, just picking up 1 run, 77 for 3. Into the 12th over right now, the current run rate just under 7. So Chandimal is also a right-handed batsman taking guard at this stage. And Jadeja bowling from round the wicket to the batsman, left-arm spinner, keeping it wicket to wicket. And going through his overs quite quickly. So we see the over rate, as my co-commentator mentioned earlier, the spinners being quite low. This time just tucking the batsman on the back foot there, on the popping crease itself. So it is Chandimal yet to open his account. He's faced 1 delivery. Pressure back on the Sri Lankans. 77 for 3 into the 12th over. 4th delivery. And this time just steering it on the offside, testing that cover fielder. Venkatesh it is. And Rohit Sharma not very happy. He felt that maybe he could have intercepted earlier and prevented that single. Really, if you rotate the strike at this stage, then you can reach that estimated target or projected score of 160, 170 even. जी बिल्कुल, ज़रूर। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जब कैमरा क्लोजअप में दिखा रहा था रोहित शर्मा का चेहरा, तो बिल्कुल वो बहुत एक प्रिसीजन के साथ खेलते हैं और उनको लगता है कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सिंगल्स भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मैच में। जहाँ तक आपने कहा कि इस समय बैकफुट पर श्रीलंका आ गया, लेकिन एक उनके लिए अच्छी बात ये होगी कि चंडीमल इस समय क्रीज पे आए हैं और उनके लगभग सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। अगली गेंद के ऊपर 1 रन फिर से चुरा लिया चंडीमल ने, और श्रीलंका का स्कोर 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर की समाप्ति पर। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो अगर कहें इस टीम में श्रीलंका के, वो चंडीमल ही हैं, जिन्होंने अब तक ये 59th गेम है उनकी, ये बल्कि 60वीं गेंद है, और पिछला मैच भी अगर उसको काउंट कर लें तो 60 गेमें खेल चुके हैं। और वो एक्सपीरियंस इस समय उनके ज़रूर काम आएगा श्रीलंका की टीम के, क्योंकि दूसरा जो खिलाड़ी है सामने वो जम चुका है क्रीज के ऊपर, और ये अपना तजुर्बा और वो उनका इस मैच के तजुर्बे को लेकर
कुछ अच्छा स्कोर, जो आपने कहा कि 150 का जो टारगेट है वो देने की क्षमता रखती है ये टीम, बल्कि उसके ऊपर भी जा सकती है। अब डिपेंड करेगा भारतीय गेंदबाज किस तरह से रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं। 12 ओवरों का खेल हो चुका है, 80 रन का स्कोर है श्रीलंका का 3 विकेटों के नुकसान पर। Well, 48 deliveries still remaining in this 20 overs innings of Sri Lanka. They're batting on 80 for 3. It is Chandimal on strike, batting on 2 of 3 deliveries. And Nisanka batting on 33 of 31 deliveries. And it's a good move, really, to bring in Bhuvneshwar Kumar as figures of none for 8 of his 2 overs. It was really in the first T20 that he made his mark. 2 for 9, also in his 2 overs. Sri Lanka losing that first T20 in Lucknow. This time just wavering in that line and tucking it towards that between fine leg and long leg. On the onside behind the wickets was single to adding to Sri Lanka's score 81 for 3. We are into the 13th over. Chandimal's rotating the strike. Nisanka is now on strike at the striker's end, 33 of 31 deliveries. And Bhuvneshwar Kumar, none for 9 into his third over. Rohit Sharma just bringing that crucial bowling change, and that's what's required, because we saw the momentum going Sri Lanka's way, and the third wicket picked up by Harshal Patel changed that. Once again, it is Sri Lanka looking to come on top. जी बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे हम पहले कह रहे थे कि रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़कर खेल दिया निशंका ने इनको, और लॉन्ग ऑफ पे 4 रन के लिए जबरदस्त शॉट। एक जैसे आपने कहा कि रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है इस समय, और इस समय अपना जो तुरुप का इक्का है उसको सामने लेकर आए हैं भुवनेश्वर कुमार को। हो सकता है कि वो डाइंग ओवर में उनको लाना चाहते होंगे, लेकिन इस समय विकेट लेना, निशंका की विकेट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो खतरनाक हो सकते हैं। और साबित भी हो रहे हैं, जैसे ही इस गेंद को खेला है उससे लग रहा है कि उनके जो इरादे हैं कुछ ज्यादा नेक नहीं है भारतीय बॉलर्स को लेकर। It was a short delivery by Bhuvneshwar Kumar, and that was spotted by the batsman, made room on the offside and picking up a boundary 85 for 3. This time Bhuvneshwar Kumar bowling it full on the popping crease, and the batsman doing well to dig it out, picking up a single, or is it a 2? Overthrows being called, but sent back by the non-striker. Both batsmen keeping the eyes on the ball. This yes and no may cause a run out. So that was pretty well taken care of by Chandimal and Nisanka. 86 for 3. We are into the 4th delivery of the 13th over. And yes, you're right. Chandimal looks like quite a mature player here on the field. बिल्कुल। और यहाँ पर जो ओवरथ्रो हो रहे हैं, बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि 2 बार तो ऐसा हुआ इस मैच में कि प्रैक्टिस पिचेस अपना कमाल कर गई, वहाँ पर गेंद टप्पा खाकर थोड़ा सा डिविएशन हो जाती है, तो क्लोजिंग फील्डर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एकदम से लास्ट मोमेंट के ऊपर गेंद जब चेंज हो जाती है। लेकिन भाग्यशाली रहे कि इस बार एक एक्स्ट्रा रन कंसीड नहीं किया, अगली गेंद भी डॉट बॉल और डॉट बॉल्स भी 1 रन लिया है। Yes, a late cut was played because Bhuvneshwar Kumar bowled it short, and he's been bowling it short in this over. तो मजेदार बात टी20 क्रिकेट में यही रहती है कि बैट्समैन और बॉलर, इवन फील्डर भी हर समय इनोवेट करता रहता है कि किस तरीके से, कौन से तरीके से आउट किया जाए। हर समय जो ब्रेन है वो ओवरड्राइव में रहता है, सोचता रहता है। यही मजा है, जो चेंजेस की जाती है ये एक किस्म से कुछ चेस से, रैपिड चेस से मिलता जुलता हो जाता है टी20 क्रिकेट। अर्जुन। Yes, and the level of fitness is also required of the highest category. Nisanka batting on 38 of 33 deliveries. Run rate just under 7. 87 for 3 Sri Lanka. We're into the 13th over. Bhuvneshwar Kumar proving a little expensive. So far 7 runs in this over. And this time bowling it short, hooking it. And does the fielder cut it off? Doing it well, but I'm sure the ball would hit the soft fencing. And it's a boundary against Sri Lanka's name. 91 for 3. बिल्कुल, ये गेंद डिजर्व भी करती थी कि इसको हिट किया जाए, क्योंकि कहीं पर ना दिशा थी, ना लेंथ थी, ना लाइन थी, और बैट्समैन के को इससे ज्यादा क्या चाहिए, और वो भी ऐसा बैट्समैन जो सेट हो चुका हो। निशंका को ये गेंद आते ही उन्होंने लगा कि अब तो बैट घुमा दीजिए, 4 रन मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छी कोशिश युजवेंद्र चहल ने की, लास्ट मोमेंट पे डाइव किया, अपने आप को पहुंचा दिया गेंद तक, लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर छिटक कर बाउंड्री लाइन को टच कर गई, और ये 4 रन। बहुत मेहनत की, बहुत ही खूबसूरती से उसको फील्ड करने की कोशिश की, और अप्लॉज कर रहे हैं रोहित शर्मा भी। एज ए कैप्टन की आपने कोशिश की, लेकिन हमेशा सारी कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं, और ये 4 रन श्रीलंका को मिल गए। 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर, 13वें ओवर की अंतिम गेंद के साथ भुवनेश्वर आगे बढ़ते हुए, और सामने है निशंका जो कि बिल्कुल अपने हाफ सेंचुरी के करीब पहुंचते हुए, और इस गेंद को कट कर दिया डीप में और 1 रन भाग के ले लिया। अगले ओवर को भी
फेस करना चाहते हैं खुद ही। 43 रन के स्कोर पर निशांका पहुंच के 92 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर के बाद 20 रन दिए हैं 3 ओवर्स के बाद भुवनेश्वर ने इस ओवर में काफी खासे महंगे साबित होते हुए। 12 runs in this over. Sri Lanka 92 for 3. Bhuvneshwar Kumar bowling it short, except that one delivery which he pitched it full, which was a yorker. But the remaining delivery is going for runs, and this is where India may lose their way. With the captain bringing in Bhuvneshwar Kumar, we saw a good performance by him in the first 2 overs, gave 8 runs. But at this stage, with 7 overs to go, 42 deliveries, Sri Lanka 92 for 3, and now the run rate has gone above 7 runs an over. Nissanka batting on 43, and Jadeja pitching it short, and the batsman Nissanka cutting it quite comfortably. No fielder in place in that deep cover area. So another boundary against Sri Lanka's name, 96 for 3. Pathum Nissanka living up to his reputation, batting on 47 not out of 36 deliveries. जी हाँ, निशांका इस समय पूरी तरह से भारत के ऊपर मंडराते हुए बादल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फील्ड के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं कि नहीं, लेकिन भारतीय बॉलिंग के ऊपर मंडरा रहे हैं, छा गए। और ये अगली गेंद, लेकिन अपील जरूर की है और लग रहा है कि कहीं लेग स्टंप को मिस कर रही थी, और डीआरएस भी नहीं ले रहे हैं। हालांकि टाइमर ऑन हो गया है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन निशांका 47 रन 37 बॉलों में बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेलते हुए, बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेलते हुए, और ये कहीं मैच विनिंग इनिंग्स भी हो सकती है। रविंद्र जडेजा का ये आखिरी ओवर है, 1 विकेट ले चुके हैं, अब तक 35 रन दे चुके हैं। 4 गेंदें और हैं, अगर कुछ करिश्मा करना है तो इन्हीं 4 गेंदों में कर सकते हैं, और जाने भी जाते हैं वो मैचेस को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, रुख बदलने के लिए। And this time, bowling it wicket to wicket, steering it on the onside and just challenging the long on fielder there in that mid-wicket area as well. Just sweeping the area, ensuring that it does not go beyond a run. So Sri Lanka's score is now being added by 1 run, with Jadeja pushing it quickly again. He has a figures of 1 for 37 in his into his 4th over now. Sri Lanka 98 for 3, and you can see the speed gauge there, 100.5 kilometers per hour. He's trying to bowl as quickly as possible, being a spinner, and he does go through his overs quickly, bowling from round the wicket to the right-hander. Nisanka, this time playing it straight to that short mid-off fielder on the offside in front of the wicket. One more delivery to go into this 14th over, 98 for 3. This time pitching a shot, but coming onto the bat quickly and not being able to hit it over mid-wicket, just in front of the wicket, in fact, and Jadeja fields the ball himself. So Nisanka batting on 48 of 40 deliveries. This over fetching 6 runs. Sri Lanka 98 for 3 at the end of 14 overs. जी, और इस तरह से 4 ओवरों में 37 रन देकर 1 विकेट लेकर अब जडेजा जो है अपना रोल एज ए बॉलर खत्म हो गया उनका। देखते हैं कि भारतीय इनिंग्स में एज ए बैट्समैन हम तो यही चाहेंगे कि उनको आना ही ना पड़े, उतरना ही नहीं पड़े, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट है। 98 फॉर 3 इस समय स्कोर है, अपना 100 रन पूरे करने के पास श्रीलंका की टीम। पहले 5 ओवरों में 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे थे, और अगले 5 ओवर में लगभग 10 रन। और अगर ये जो अभी 5 ओवर चल रहे हैं, मतलब ओवर नंबर 10 से लेकर 15 तक, अगर उस 10 की औसत से नीचे ले आते हैं, बॉलर गेंदबाज ले आते हैं, तो हम उनको एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उन्होंने ब्रेक्स लगा दी जो मिड इनिंग्स में बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसलिए अब लाया गया है बुमराह को अपना 30वां ओवर करने के लिए। इससे पहले अपने 2 ओवरों में 5 रन दिए थे उन्होंने। पहले ओवर में तो 2 उन्होंने वाइड बॉल्स कराई थी, उसके बाद बहुत ही सदी हुई, बहुत ही नपीतुली कसी हुई बॉलिंग की है बुमराह ने। सामने है चंडीमल, पहली गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर, और रन के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। ये हमारे जैसे बैट्समैन अभी कोशिश करेंगे कि ये जो स्पेल है इन दोनों बॉलर्स का, बुमराह का 2 ओवर्स हैं और अब 1 ओवर बचा है भुवनेश्वर कुमार का, वो निकल जाए तो फिर दोबारा से अटैक में आ सकते हैं। Sri Lanka 98 for 3, and I agree with you. Bumrah gave those 2 wides in the first over that he bowled, but the remaining runs have only come off the bat. This time a wild swing without the front foot ahead. Chandimal batting on 5 of 8 deliveries, keeping his head not on the ball, not in the level of the ball, and therefore missing. It was a slower delivery. Bumrah mixing it up there. So another dot ball against his name, and it's all to the credit of India if they can restrict this batting pair. 98 for 3 into the 15th over. Bumrah bowling his 3rd delivery. The run rate has now come down below 7.
The projected score, if it's at this rate, it would be 137. If it's at 10, it would be 155. This time, attempting a Yorker and a tremendous hit down the ground towards that long off area. A boundary by Chandimal, doing well to dig out a potential Yorker. So Bumrah going for a boundary there. The 100 has come up for Sri Lanka. 102 for the loss of 3 wickets. बिल्कुल सीधा स्ट्रोक मार दिया बॉलर के, बैक टू द बॉलर, इससे ज्यादा सीधा नहीं हो सकता था। और ये एक स्कोरिंग एरिया है क्योंकि पीछे डीप में फील्डर वहां पर नहीं है। 4 रन मिल गए और बहुत ही बढ़िया 100 रन पूरे हुए श्रीलंका की इस इनिंग्स के। The risk is that if the Yorker is misdirected, it turns into a half volley, and that's exactly what happened with Chandimal. Taking that opportunity, picking up a boundary, batting on 9 not out. Sri Lanka 102 for the loss of 3 wickets. The 4th delivery of the 15th over. A slower delivery and he finds a fielder. Rohit Sharma, the captain, standing in that short mid-wicket area, and a valuable catch, which means the 4th wicket has fallen with the score 102. जी हाँ, बुमराह सिर्फ अपनी गति के लिए नहीं पहचाने जाते हैं, वो अपनी वेरिएशन के लिए पहचाने जाते हैं। और जो पिछले यॉर्कर को जब उन्होंने देखा कि इस तरह से खेल लिया, बैट्समैन इस समय उस मूड में है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, तो इस बड़ी ही चालाकी के साथ एक धीमी गति की बॉल अपनी रिस्ट को रोटेट करते हुए बॉल करवाई और बैट्समैन जल्दी खेल गए, जिसकी वजह से बॉल उछल गई और सीधा आसान सा कैच रोहित शर्मा के हाथों में। और इस तरह से चौथी विकेट गिरती हुई श्रीलंका की। स्कोर 102, 4 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर, 15वां ओवर चल रहा है। तो अब इसके बाद वैसे जिस रोल के लिए आए थे वो उनका यही रोल था कि रोक नहीं सकते, क्योंकि इनिंग्स यहां तक पहुंच गई है कि इसके बाद में आपके पास ज्यादा ओवर्स नहीं है, ज्यादा गेंदें नहीं है, आपको अटैक करना ही पड़ेगा, रन गति को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि एक अच्छा टारगेट दिया जा सके। तो वो करने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठे और अब शनाका आए हैं खेलने के लिए। निशंका बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 40 गेंदों में 48 रन बनाए हैं अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए। देखते हैं कि इसके आगे कहां और कैसे लेकर जाती है इस पारी को श्रीलंका के ये 2 बैट्समैन। बुमराह 2.4 ओवरों में 1 विकेट 9 रन पर और उनकी इस ओवर की ये आखिरी 5वीं गेंद। Dusan Shanaka, the captain of the Sri Lankan side, now at picking up a single, a full toss really. Bumrah attempting a Yorker there, but misdirected in terms of the length. Full toss picked up for a single. So it's 103 for 4 with Dusan Shanaka opening his account. And it was really the slower delivery earlier which beat Chandimal. As a result, he was caught in that short mid-off, short mid-wicket area by the captain Rohit Sharma. And you are right there, Nitish, that he uses his wrist very well while keeping the seam upright. Another slower delivery picked up by the batsman, looking to pick up a single, but called back by Shanaka, the non-strikers. And really, it is a call of the non-striker at this stage with the score 103 for 4 at the end of 15 overs. Jasprit Bumrah, a key change in this bowling attack, figures a 1 for 10 after 3 overs. चलिए ये कह सकते हैं कि हम वो ब्रेक जरूर लगा देते हैं रन गति में। जो हमने शुरू में पहले 5 ओवर में किया था वही ये वाले 5 ओवरों में भी किया, और अब जब टीम आ रही है दूसरी हमारी कमेंटेटर्स की तो वो शायद रन गति बढ़ा दें, लेकिन हमने इस बार निराश नहीं किया। अगर 2 विकेट वो लेकर गए थे तो 2 विकेट्स हमने भी ले ली। अब ये क्रेडिट खुद को दे दें या आने वाले कमेंटेटर्स को, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा। लेकिन इस समय बहुत ही मज़ेदार फेज में एंटर कर गया है ये मैच। आखिरी के 5 ओवर देखें कहां से धमाका होता है। भारतीय गेंदबाज धमाका करते हैं या श्रीलंकाई बल्लेबाज। Well, it's time to rotate the strike, and we have Hemant Madan and Adesh Kumar Gupta in the commentary box, doing the commentary in English and Hindi, with the 16th over now in progress and runs being picked up on the onside towards the square leg area. And the score is 104 for 4 as I welcome my co-commentator, Hemant Madan, who will be doing the commentary in English. Thank you, Arjun. Yes, quite a series of events against run of play, really, in the last 5 overs. Plenty happening, and smart captaincy by Rohit Sharma coming to the rescue of Indians, introducing Bumrah and then having to rotate his ace bowlers shows about his captaincy instincts. Meanwhile, Chahal is brought back into the attack. This was a half-tracker to which Nisanka slotted towards the long on. One bounce to him. No damage done, so just one short of a well-compiled 50.
and he's partnered with Shanaka, who's the captain of Sri Lanka, and he's due for a big one. Welcome, Adesh, to the Combox. Really interesting phase of the game. बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद एवं जी। श्रीलंका का स्कोर इस समय 4 विकेट खोकर 106 रन। निशांका जो कि सलामी बल्लेबाज हैं 49 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 15.3 ओवर का खेल हो चुका है और यानी इसके बाद केवल 4.5 ओवर का खेल बाकी रहेगा और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये ठीक ठाक बल्लेबाजी करें तो शायद 130-140 रनों का लक्ष्य भारत को मिले। जिस तरह की शुरुआत की थी उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस बीच बहुत ही शानदार कवर ड्राइव फील्डर गेंद के पास, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि गेंद को सफाई के साथ नहीं रोक पाए और यहाँ पर 4 रनों का इशारा अंपायर का। निशांका ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया 43 गेंदों का सामना करते हुए और ये उनके 2020 करियर का 5वां अर्धशतक है। और चहल की जो गेंद थी दरअसल काफ़ी रूम मिला, बैकफुट पर गए, ड्राइव किया और ऑफ साइड में जो फील्डर्स थे वो काफ़ी दूर थे अपने बल्ले को लहराते हुए और इसी बीच अगली गेंद और इसे कवर्स के बीच से निकाल दिया और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो 1 रन लेने का मौका और मिला। निशांका का जो 2020 करियर है उसमें जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने यहाँ की है तो काफ़ी सराहनीय प्रदर्शन उनका रहा है और अब वो चाहेंगे कि थोड़ा और तेज़ी से बल्लेबाजी करें। अर्धशतक पूरा करने के बाद उनके मनोबल में और वृद्धि हुई है। फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी आगे आ गए थे लेकिन चहल ने गेंद को खींचा और रन बनाने का मौका नहीं दिया। 16 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट खोकर 111 रन। शनाका बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 रन बनाकर केवल 4 गेंदों का सामना उन्होंने अभी तक किया है। पिछले ओवर में 8 रन युजवेंद्र चहल ने खर्च किए। तो इस तरह से अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन दिए। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 10 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। हर्षल पटेल ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 15 रन देकर 1 विकेट लिया। युजवेंद्र चहल ने 27 रन देकर 1 विकेट लिया और रविंद्र जडेजा थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 37 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया। तो इस तरह से युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा इन दोनों के स्पेल पूरे हो चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर बाकी है, जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर बाकी है और हर्षल पटेल के 2 ओवर बाकी हैं। काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की है हर्षल पटेल ने। तो ये कहना होगा कि जो भारत के तेज़ गेंदबाज हैं या फिर मध्यम गति के तेज़ गेंदबाज, उन्होंने काफ़ी हद तक कसी हुई गेंदबाजी की है। और जैसा कि हेमंत जी मैं कह रहा था कि एक प्रोजेक्टेड स्कोर 140 रन के करीब तक हो सकता है या फिर 150 रन तक अगर यही रनों की रफ्तार रही तो, और ये कुछ ठीक ठाक स्कोर कहा जाएगा। हालांकि 170-180 रन विनिंग टारगेट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं वो थोड़ा फाइट कर सकते हैं। हर्षल पटेल को यहाँ गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है और देखना है कि वो इस जोड़ी पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। प्रथम निशांका जिन्होंने 7 चौके लगाए हैं अपनी बल्लेबाजी के दौरान और 45 गेंदों पर 55 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ही साइड में अच्छे स्ट्रोक लगाए हैं, चाहे वो ऑफ साइड हो चाहे ऑन साइड हो, और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलते हैं। और इसी बीच अगली गेंद और इसे लॉफ्टेड शॉट के रूप में खेला है। देखना है कि गेंद कहाँ जाती है और ये गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी है। 6 रन का इशारा अंपायर्स का और इस तरह से जो श्रीलंका का स्कोर है वो अब 16.2 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो गेंद करने की कोशिश की थी और बैट्समैन ने उसे भांप लिया था। पहले से ही हाईली बैकलिफ्ट के साथ वो गए थे जिसकी वजह से गेंद उनके बैट पर पूरी आई। हवा में तैरती हुई गेंद सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड्स में जाकर गिरी। निश्चित रूप से निशांका का मनोबल बड़ा होगा। 45 गेंदों पर 55 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ दे रहे हैं शरा का 9 रन बनाकर। इसी बीच अगली गेंद के लिए तैयार और ये थोड़ा सा हवा में उछाल लेते हुए गेंद थी ऑफ स्टंप पर। बैट्समैन सोच रहे थे कि शायद मिडिल स्टंप पर आएगी और उन्होंने अपना मन बनाया था कि ऑन साइड में ड्राइव खेलेंगे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इस गेंद को कोई बहुत सफाई के साथ वो नहीं खेल सके। ऐसा लगता है कि दोनों बैट्समैन अब पूरी तरह से हिटिंग के लिए जाएंगे और
यहाँ पर हर्षल पटेल की तारीफ करनी होगी कि छक्का खाने के बाद उन्होंने दूसरी गेंद को काफ़ी चतुराई से किया। ये ओवर पिच गेंद थी जिसे अपने बैट पर लिया और हवा में उछाल दिया। काफ़ी शक्तिशाली शॉट था। इसी बीच हर्षल की अगली गेंद तैयार है बैट्समैन और इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर उछाल कर मारा और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ भारतीय गेंदबाजों को सोचना होगा कि बैट्समैन की मनोस्थिति क्या है और अगर ऑफ साइड में फील्ड ली हुई है तो ऑफ साइड में फील्ड रखने के हिसाब से गेंद करनी होगी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद थी, बाउंसर करने की कोशिश की थी, लेकिन बैट्समैन बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और उसके बाद स्क्वायर लेग पर इस गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि अब इशारा कर रहे हैं हर्षल पटेल की फील्डर जो वहाँ हैं वो थोड़ा बाउंड्री लाइन के पास जाए ताकि कैचिंग पोजीशन बन सके, लेकिन ये एक ऐसा शॉट था जिसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। प्रथम निशांका इस समय 59 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और इस बीच अगली गेंद हल्के से उन्होंने ऑन साइड में टर्न किया। जसप्रीत बुमराह खड़े थे, बैकवर्ड शॉट लेग की पोजीशन पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच 1 रन और पूरा होता हुआ 124 रन 4 विकेट के नुकसान पर। And really, these two young guns from Sri Lanka, Nisanka and Shanaka, all set to make it big. Already 2 boundaries coming of this over. And I mentioned earlier, they've got the potency. Shanaka, a lot relies on how they want to close this innings. Still 4 more overs, in fact 3 more to go after this. And in T20s, the contrast can be done very quickly. Meanwhile, this is whipped away on the onside through the square leg fence for yet again another 6. Third boundary coming of this over. Harshal Patel under a bit of pump. काफ़ी दबाव में इस समय हर्षल पटेल नज़र आते हुए, हालांकि पिछले आईपीएल में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेट का जो अंबार लगाया था उसे देखते हुए उन्हें यहाँ पर मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिशा से चूकते हुए और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर चाहे वो धनुषा गुनातिलके थे जिन्होंने 38 रन बनाए थे और उसके बाद प्रथम निशांका के बल्ले का कहर इस समय भारतीय बल्लेबाजों पर ढाता हुआ। 4 विकेट खोकर 130 रन और अब रनों की रफ्तार ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक बढ़ गई है और टेलीविज़न पर देखा जा सकता है कि ग्राफ किस तरह से एकदम से कुतुब मीनार जैसा नज़र आने लगा है। जो पहले पठारी प्रदेश में था, पहले ज़मीनी पर था, अब एक तरह से जैसे पठारी प्रदेश पर चला गया है। तो रविंद्र जडेजा जिन्होंने अपना स्पेल ख़त्म किया था 4 ओवर में, उन्होंने 37 रन दिए, 1 विकेट उन्हें मिला। यजविंदर चहल ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट उन्हें मिला। लेकिन देखना होगा कि अब जो बचे हुए ओवर्स है उसमें जसप्रीत बुमराह किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हर्षल पटेल सोच रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंकन बल्लेबाजों से पीछा छुड़ाया जाए, जिस अंदाज में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और 17 ओवर की खेल के बाद श्रीलंका का स्कोर 130 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही गेंद का स्वागत 4 रनों के साथ होता हुआ 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर निशांका 48 गेंदों का सामना करने के बाद 64 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और ये जो पार्टनरशिप है केवल 15 गेंदों में 32 रन की हो चुकी है। हेमंत, Yeah, really nothing can be taken away from these two. Nisanka going across the wicket and then very quickly, that was the recipe of this shot, very quickly judging the line and length of the ball and ballooning it over the fine leg fieldsman Rohit Sharma, appalled and surprised with the shot making of this young lad Nisanka, who's looking very threatening at the moment on 64 of just 48 deliveries. बहुत ही रोमांचक खेल इस समय धर्मशाला में चलता हुआ ये दूसरा एक दिवस 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला श्रीलंका के लिए इस मैच में जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हारे तो फिर सीरीज़ उनके हाथ से जाती रहेगी। और इस बीच फुल टॉस गेंद जो कि पैड्स पर थी एक तरह से, और इस गेंद को फाइन लेग की तरफ फोड़ दिया। गेंद बहुत तेज़ी से बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए, तो जसप्रीत बुमराह भी यहाँ पर काफ़ी महंगे साबित होते हुए, और कप्तान उन्होंने दोनों हाथ अपने कंधों के नीचे दबा लिए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये जो रनों की बाढ़ आ गई है, धर्मशाला में आज प्रिडिक्शन है बारिश की, लेकिन फिलहाल रनों की बरसात होते हुए। Yeah, very hard to contain this pocket dynamo Nisanka. And what's making the matters worse is the outfield of this HPCA stadium. Glorious, picturesque stadium
and equally good outfield. The ball does the rest if you get the timing just right. Followed by a fantastic Yorker around the foot crusher around the leg stump, which is softly played by the batsman and jogs across to the non-striker. That's good cricket. Boundaries followed by a single. Mature cricket by Nisanka. और आखिर में जो जसप्रीत बुमराह उन्हें अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा, यॉर्कर जिस तरह की गेंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर निशांका जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और श्रीलंकन जो खेमा है वो काफ़ी खुश होगा उनसे। 4 विकेट के नुकसान पर 139 रन, 17.3 ओवर का खेल हो चुका है। शनाका इस समय स्ट्राइक पर हैं और काफ़ी खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 7 गेंदों पर उन्होंने 15 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह की ये गेंद जो कि आखिरकार इस ओवर की पहली डॉट बॉल साबित हुई, बिंदी बॉल बोलते हैं कई बार जब भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर कमेंट्री करते हैं, डॉट बॉल की जगह वो कहते हैं बिंदी बॉल। तो वो ये जो बिंदियां हैं ये बॉलर्स को बहुत अच्छी लगती हैं और बैट्समैन को काफ़ी गुस्सा आता होगा, लेकिन 9 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 3.4 ओवर की गेंदबाजी की है, 19 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया है। लंबा उनका बॉलिंग रनअप। निशांका उनके सामने 50 गेंदों पर 69 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ओवर पिच गेंद और गेंद पर पूरी तरह से अपने बैट को लाए और गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया। मिड ऑफ पर इससे पहले गेंद फील्ड होती, 1 रन लेने का मौका। तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए और ये जिस तरह से विकेट गिरे, लंका LBW आउट हुए और ये एक शानदार कैच पकड़ा गया था जिस तरह से श्रीलंकन बैट्समैन आउट हुए और ये जिस तरह से दिनेश चांदीमल आउट हुए। जसप्रीत बुमराह काफ़ी खुश नज़र आए और दिनेश चांदीमल निराश नज़र आए। बुमराह की अगली गेंद और इसे रिवर्स हिट किया है और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। यहाँ पर अगर कहा जाए कि अगर कट जाता तो इसको थर्ड मैन कहा जाता, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिवर्स हिट किया है तो ये फिर उनके लिए फाइन लेग का एरिया हो गया क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शॉट को बनाया, हालांकि राइट हैंडेड बैट्समैन है लेकिन जिस तरह से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बल्लेबाजी करते हैं उस तरह से उन्होंने उस शॉट को बनाया। तो अगर ये गेंद सीधे बल्ले से खेलते हुए अगर उनके बैट से लगकर जाती तो ये उनके लिए थर्ड मैन होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिवर्स हिट किया तो ये एक तरह से उनके लिए फाइन लेग। तो बहुत ही चतुराई भरा शॉट। Yes, it was manufactured from the craftsmanship of the batsman. Nothing wrong with the delivery. It was furious and it was darted into the leg stump. Good pace, good Yorker, but the likes of the heroics of Nisanka and Shanaka really making sure that the ball trickled into the fence and ended the over with 15 runs. An expensive over from Bumrah coming to an end. Meanwhile, 19th over about to commence as Bhuvaneshwar takes the ball away from us. Widest delivery around the 5th stump mark. This is driven straight up. Might just get a couple of runs as Ravindra Jadeja from long on cuts it off and returns the ball back to Bhuvaneshwar. So the impetus that was required in this Sri Lankan innings is coming courtesy of the innings, the cameo by Shanaka, and well assisted, well partnered by young Nisanka. प्रथम निशांका का ये तीसरा अर्धशतक है, हालांकि वो अपना 19वां मैच खेल रहे हैं। 486 रन ही उन्होंने बनाए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 73 रनों की पारी खेली है तो उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें किस तरह का पोटेंशियल है। और ये जो पार्टनरशिप है अब 21 गेंदों पर 44 रन की हो गई है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और उसे अपने बल्ले पर लेते हुए सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और 5 छक्के पिछली 16 गेंदों में लग चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी धुआंधार बल्लेबाजी श्रीलंका के बल्लेबाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि धर्मशाला की ठंड का उन पर कोई असर नहीं है। Yeah, and in यहाँ fact, पर माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। exactly, that's what I was about to say. They've really warmed the conditions. Rahul Dravid now slightly looking concerned. यहाँ पर पसीने आ रहे हैं उनके चेहरे पे धर्मशाला की ठंड में। And only hard hitting by the Sri Lankan duo can do that. Flurry of boundaries, 16 fours and 5 sixes in this Sri Lankan innings.
And so far, it's raining cats and dogs as far as boundaries by the Sri Lankan batsmen are concerned. Shanaka on 24, just faced 11 deliveries, about to face his 12th delivery, back of the length as Shanaka tries to hoik the ball towards the mid-wicket, getting the leading edge of the bat, and as a result, the ball flies over the wicketkeeper's head, one bounce into the fence. It's not stopping boundaries, Adesh here. बिल्कुल यहाँ पर जैसे बरसात की झड़ी लगती है उसे रोकना मुश्किल होता है उसी तरह से यहाँ पर रनों की बरसात होती हुई दरअसल इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे भुवनेश्वर कुमार के लेकिन काफ़ी बाउंस लेती गेंद और जो बैट का निचला हिस्सा होता है वहाँ गेंद लगी और विकेट कीपर के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई और भुवनेश्वर कुमार के हाव भाव अजीब सी तरह के बहुत ही आश्चर्य में हैं कि उनकी गेंदों का किस तरह का हश्र किया है 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर और अब स्कोर 157 रन 18.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है तो इस तरह से जो शनाका है उनका जो रिकॉर्ड है साल 2018 के बाद से यहाँ पर वो ये दिखा रहा है कि 16 से 20 ओवर के बीच में जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो फिर वो ज़्यादा बाउंड्री लगाते। इस बीच अगली गेंद बहुत ही करारा पारार लेकिन वहाँ पर बहुत खूबसूरती से गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑफ पर लेकिन इस बीच मौका था 1 रन लेने का 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन श्रीलंका का स्कोर अभी भी 1 ओवर और 2 गेंद का खेल बाकी और ऐसे में अगर 10-12 रन और आते हैं तो फिर श्रीलंका का स्कोर 170 रन तक पहुंच सकता है तो ये एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। फिलहाल निशांका 51 गेंदों पर 73 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जबकि शनाका 13 गेंदों पर 29 रन बना चुके हैं। अभी तक कोई डॉट बॉल भुवनेश्वर के इस ओवर में नहीं है। एक गेंद वाइड भी थी जहां पर चौका लगा था दरअसल विकेट कीपर के ऊपर से। Right, so onslaught continues. Meanwhile, this one taken from the toe end of the bat by Nisanka. Ravindra Jadeja has to do a lot of work as the ball goes far from the mid-on, long on. Meanwhile, 2 runs taken on the full by Nisanka. Gets to his 75. Nothing really going India's way in these closing overs as Sri Lanka toying with Indian bowling. Nothing really wrong with that delivery. Was taken by the batsman Nisanka on the full, on the onside, wide of long on, making sure in the end he gets a couple of runs. And these two men out here in the middle, seeing the ball like a football, ready to face the last delivery of this penultimate over of Sri Lankan innings. 160 for 4 as Nisanka sets himself for the last delivery. Meanwhile, trying to play this ball on the other side, in fact, changing the grip, trying to improvise, was trying to play it towards the fine leg, if you will, but in the end trapped right up in the front of the stumps and LBW appeal going India's favour as the umpire raises his finger to see the back of Nisanka. रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे दरअसल और बीट हुए गेंद उनके पैड पर जाकर लगी और भुवनेश्वर कुमार की जोरदार अपील और इस तरह से प्रथम निशांका की पारी का अंत हुआ। 53 गेंदों पर 75 रन उन्होंने बनाए और 140 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो भारत के लिए जो समस्याएं हैं वो तो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं लेकिन जो नए बैट्समैन आएंगे उन पर अब कोई दबाव नहीं होगा क्योंकि अभी भी 5 विकेट बाकी हैं। 1 ओवर का खेल बाकी है। 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन श्रीलंका का स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर तो आज उन्होंने काफ़ी अच्छी दावत उड़ाई है और सबसे ज़्यादा दावत का मज़ा लिया है ये जो बैट्समैन हैं आउट होकर पेविलियन जा रहे हैं लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जिस तरह से 70 रनों से ज़्यादा रनों की पारी खेली और थोड़ी देर पहले उनका विकेट मिला भुवनेश्वर कुमार को। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 51 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए थे जिसमें उनके 11 चौके शामिल थे लेकिन अंततः वो पेविलियन लौट रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने भारत को ये कामयाबी दिलाई है। 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन। नए बल्लेबाज करुणा रत्ने अपना खाता खोलेंगे। शनाका बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 गेंदों पर 29 रन बनाकर जो करंट रन रेट है वो 8.42 है लेकिन पिछली 20 गेंदों पर वो 15.00 रही। And Harshal Patel bringing the last over, looking slightly nervous as this one
down the offside. Easy a call by the umpire, and an extra added to to Sri Lanka's tally with that wide. 34 already conceded by Harshal Patel, so that would be something at the back of his mind, and very important. He's a champion bowler and he knows how to deliver under pressure. Needs to control the nerves for the last 6 deliveries. और जितने भी रन आएंगे वो श्रीलंका के लिए बोनस होंगे, और जितने भी रन अगर भारतीय टीम बचाती है तो वो फिर भारत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरह से पिछला मुकाबला वो एक तरह से उन्होंने हथियार ही डाल दिए थे। जब भारत ने 199 रन बनाए थे तो श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 137 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ धर्मशाला में उनके बल्लेबाज अच्छी गति से रन बनाते हुए उसी बीच एक चौका निकलता हुआ करुणारत्न शनाका के बल्ले से, और श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 165 रन। और हर्षल पटेल थोड़ा सा हैरान ज़रूर हैं, लेकिन जो ये इनकी गेंद थी वो कुछ इस तरह की थी कि जो पैड पर लगी और उसके बाद जो विकेट कीपर और स्लिप का एरिया है वहाँ से निकलते हुए सीधे 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल गई। और हालांकि खेल भावना का परिचय देते हुए ताली बजाई कप्तान रोहित शर्मा ने। इस बीच अगली गेंद थोड़ा सा फुल टॉस गेंद थी, काफ़ी लोअर फुल टॉस, और रन आउट होने का यहाँ मौका, और थर्ड अंपायर के लिए यहाँ पर इशारा कर दिया गया है। ऐसा लगता है काफ़ी मुश्किल में यहाँ पर बल्लेबाज पड़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल श्रीलंका का स्कोर 165 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जो श्रीलंका की पारी है उसे सजाया और संवारा एक तरह से दुरुष्का गुना तिलका ने, जिन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन बनाए। उसके बाद चरिथा असलांका कुछ खास नहीं कर सके, उन्होंने केवल 2 रन बनाए। कामिल मिश्रा ने केवल 1 रन बनाया। दिनेश चांदीमल केवल 9 रन बना सके, लेकिन दर्शन शनाका 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस समय उनका स्कोर है 15 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन। Playing captain's knock, Shanaka, 31 of just 15 deliveries at a strike rate of beyond 200. And he is the man who is responsible to take Sri Lanka to a formidable total here at a beautiful, picturesque HBCS stadium. Interesting scenes. Shanaka going mid-pitch, halfway down the track. Harshal Patel, as a result of that, saw him advancing and withdrawing his action, withdrawing his stance at the very last second of his delivery stride. श्रीलंका की पारी, केवल 4 गेंद और उनके हिस्से में। फिलहाल उनका स्कोर 167 रन 5 विकेट के नुकसान पर। करुणारत्न ने अभी अपना खाता खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। शनाका 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, इस बीच मिड विकेट पर खेला गया शॉट जो कि हवा में भी था, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर थे, जिसकी वजह से ये एक आसान चौका मिला। श्रीलंका का स्कोर 171 रन, जो करंट रेट है वो 8.77। इस मुकाबले में श्रीलंका के गेंदबाज निश्चित रूप से सांस लेकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये गेंद जो कि फुल टॉस गेंद थी और इसको मिड विकेट के ऊपर से मारा। फील्डर काफ़ी नज़दीक थे, इस वजह से कैचिंग पोजीशन पर कोई फील्डर ना होने से, और फील्डर एक तरह से सर्कल के पास ही थे, जिसकी वजह से ये चौका मिला। फिलहाल हर्षल पटेल अपने रनअप पर थोड़ा सा चूके और अब एक बार फिर से वापस अपने रनअप पर जाते हुए। Shanaka manufacturing those world-class T20 shots, and Harshal Patel with his body language clearly looking nervous and anxious. He's seen those moments many times in the past at the IPLs, getting ready for the 4th delivery as the batsman monkeying and trying to bamboozle Harshal Patel, but in the end he's had the last laugh as he traps the batsman in front, appeals to the umpire, and the umpire, without wasting time, raises his finger. Although a review has been taken, my first feel is it's going down the leg side, and Shanaka might just be a bit lucky and he might just be staying. We'll have to wait and watch, but this one clearly looking as if it's going down the leg side. लेकिन देखना होगा, क्योंकि ओरिजिनल डिसीजन आउट है और श्रीलंका के पास एक रिव्यू बाकी था, वो उन्होंने लिया। अल्ट्रा एज को देखा जा रहा है, यहाँ पर बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। टीवी अंपायर है अनिल चौधरी, जो बताएंगे कि
यहाँ पर अंतिम निर्णय क्या है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर है। जैसे कि आपने कहा हेमंत, तो आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। और अभी भी श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन, केवल 3 गेंदें बाकी, और कोई औपचारिकता वाली बात नहीं थी। जब गेंद इतना बाहर थी तो थर्ड अंपायर को फैसला लेने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। करुणारत्ने अभी भी अपना खाता खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि शनाका 17 गेंदों पर 35 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की है। और जो श्रीलंका का स्कोर है वो इस समय काफ़ी सम्मानजनक नज़र आता हुआ। इस ओवर की अभी 2 गेंदें बाकी। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर थी, हवा में खेला गया शॉट और काफ़ी तेज़ी से हवा में लहराता हुआ सीधे दर्शकों के पास जाकर गिरा है। तो ये 6 रन के साथ ही जो श्रीलंका का स्कोर है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। और यहाँ पर जो कप्तान रोहित शर्मा हैं वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यह तारीफ़ करनी होगी बैट्समैन की, क्योंकि उन्होंने उस शॉट के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। आसान नहीं होता इस तरह का शॉट लगाना, और क्रीज से बाहर भी नहीं निकले थे कि अगर गेंद मिस होती तो शायद इस टाइम का कोई मौका होता। और शनाका का स्कोर इसी के साथ बढ़कर 18 गेंदों पर 41 रन, और श्रीलंका का स्कोर 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर। This is blazing batting already by Shanaka. Nothing really wrong with the delivery. From the back of his hand, a slower one trying to disguise the batsman, but long reach of Shanaka, making sure that he had enough contact. And from the middle of the bat, seeing the ball sail over the long off fence for a 6. Meanwhile, the last delivery, the ultimate delivery, ends with yet again another 6 taken on the full by Shanaka, and chancing his arms to get to the middle of the bat and over the long on fence for yet another exciting hit, closing the innings at 183 for 5. That's a mammoth total, Adesh. बिल्कुल आपने सही कहा, मेहमत टोटल है। और हम शुरू से ही आशंका जाहिर कर रहे थे, जिस तरह से पहले विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, कि शायद श्रीलंका का स्कोर 170 और 180 के बीच में हो, लेकिन यहाँ तो 183 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब भारत को निर्धारित 20 ओवर में जीत के लिए 184 रन बनाने होंगे। और निशांका की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम, क्योंकि उन्होंने विकेट के दोनों तरफ जिस तरह के शॉट्स लगाए, गगनचुंबी छक्के लगाए, तो भारतीय गेंदबाजों की उन्होंने काफ़ी परीक्षा ली और उस परीक्षा में वो कामयाब भी रहे। और जो भारतीय तेज़ गेंदबाज हैं खासकर वो काफ़ी महंगे साबित हुए, और चाहे वो हर्षल पटेल थे या फिर जसप्रीत बुमराह की भी इस मुकाबले में काफ़ी खबर ली गई। तो जो शनाका हैं, एक तरह से हिमाचल के इस स्टेडियम में उन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी गर्मी पैदा कर दी है। बहुत ही दर्शनीय शॉट्स उन्होंने लगाए, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा था, गेंद की पिच तक सही तरह से पहुंच रहे थे। निश्चित रूप से बहुत ही दर्शनीय बल्लेबाजी उन्होंने की। They've given more than a ray of hope for the underdogs. At the start of the game, they were rated underdogs, but clearly they've batted like champions, and more than a ray of hope. Formidable total as far as Sri Lankan bowling is concerned. They've got the depth, and now it's the time for them to assess, and can they contain against this heavy-looking Indian batting side. That'll be a test of their character and a moral and a confidence booster if they can turn the tables around on a game that really matters as far as the series is concerned. India winning the first game, and if Sri Lanka wins this one, we would be all very set for the decisive game tomorrow, which would be the third T20I between India and Sri Lanka. Can Sri Lanka turn the tables, Adesh? बिल्कुल कर सकते हैं अगर उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करें, लेकिन फ़िलहाल तो स्क्रीन पर दरुष्का गुनतिलका, और ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में श्रीलंका की पारी की शुरुआत की, और उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जो भारतीय गेंदबाजों का दबाव था, खासकर पिछले मुकाबले में जिस तरह से वो 62 रन से हारे थे। लेकिन इस मैच की शुरुआत की थी हमारे साथी कमेंटेटर अर्जुन चौधरी और अमित नीतीश अरोड़ा जी ने, तो वो बताएंगे बहुत अच्छी तरह से कि किस तरह से सलामी बल्लेबाजों ने जो एक नींव रखी और उसके बाद जो एक इमारत खड़ी की है। यहाँ पर लगभग 9 रनों से ज़्यादा का औसत होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए।
हालांकि भारतीय टीम पिछले काफ़ी समय से जीत के रथ पर सवार है, तो क्या श्रीलंका भारत के जीत के रथ को रोक पाएगी? और ये जो अजय नज़र आ रहे हैं रोहित शर्मा, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2020 सीरीज़ थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज़, और यहाँ श्रीलंका पहला मुकाबला जिस तरह से बुरी तरह से हारी थी, लेकिन आज भारत के सामने चुनौती है 184 रन की। आदेश जी, आगे क्या हो और बाकी टीमें क्या करें, लेकिन एक बात है कि श्रीलंका की टीम जरूर आपको हायर करना चाहेगी, क्योंकि पिछले मैच में जो उनकी हालत थी, आज आपने काफी कमाल कर दिया, उनकी टीम में काफी परिवर्तन कर दिया है। जी नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो तीसरा मैच है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि इस सीरीज़ का रोमांच ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ भारत जीतता है। तो एक जीत की किरण ज़रूर श्रीलंका को नज़र आ रही होगी। मैं ये नहीं मानूंगा, कहीं आपसे वो थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि भारत को जीतना ही चाहिए और जीतने के बाद भी रोमांच बना रहेगा कि अगला मैच कितने रनों से जीत सकते हैं, अगला मैच कितनी विकेटों से जीत सकते हैं। तो रोमांच क्रिकेट का खत्म नहीं होगा, चाहे दोनों 2-0 की बढ़त भी ले लें। हाँ, ये बात है कि आज जिस तरह का कॉम्पिटिशन श्रीलंका की टीम ने दिया है दर्शकों के लिए, और ये भी एक खुशी की बात है कि कोरोना के बाद अब कहीं दर्शक भी फील्ड में आकर देखने लगे हैं इन मैचों को, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एक्शन, जो जिस तरह का मैच होना चाहिए T20 का, वैसा ये मैच होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और भारत के पास अच्छे नहीं, बहुत अच्छे विश्व स्तरीय बैट्समैन हैं और वो आज अपना कमाल जरूर करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भारत के चांसेस अभी भी 70 और 30 का प्रतिशत है। अब आप बताइए। जी देखिए, भारत की जीत से हमने इनकार नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि श्रीलंका की टीम जिस तरह से पिछले मुकाबले में उन्होंने जब भारत ने 199 रन बनाए थे तो एक तरह से घुटने टेक दिए थे, और 60 रनों से ज़्यादा की हार, निश्चित रूप से कंधे काफ़ी गिरे हुए थे। लेकिन यहाँ पहले तो सलामी जोड़ी, उसके बाद शना का जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की, आसमानी छक्के भी नज़र आए, और ये जो ठंडे बस्ते में जाता हुआ मैच नज़र आ रहा था, तो काफ़ी गर्माहट इस सीरीज़ में आई है। मैच का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन श्रीलंका ने बहुत अच्छी वापसी की है, और अब उनके गेंदबाजों के पास इतने रन हैं कि वो दिल लगाकर गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की थी, और यहाँ देखना होगा कि ईशान किशन एक बार फिर से इस तरह की फॉर्म में हैं और अपनी स्थिति को वो और कितना पुख्ता कर पाते हैं। ना भूलिए कि जो खिलाड़ी हैं सबकी नज़रें इस पर हैं कि किस तरह का पोटेंशियल है, अपनी फॉर्म को किस तरह से बरकरार रखते हैं, और फिर 2020 के लिए कितना तैयार हैं जो वर्ल्ड कप है। जी, बिल्कुल सही आपने ये कहा कि श्रीलंका की टीम ने इस बार बहुत अच्छी रिकवरी की है दूसरे मैच में, और मैच जहां इनिंग्स की भी बात करें और मैच की भी, पहला मैच अगर फील्ड में खेला गया तो उसके बाद में जाके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर भी मैच की आगे की रणनीति तैयार की जाती है। और श्रीलंका ने पहली हार से, जो पहले मैच की हार से काफ़ी कुछ सीखा, बहुत सीख हासिल की। उनकी टीम के लिए ये एक एप्रिसिएशन की बात है कि टीम के मैनेजमेंट, उनके कोचेज़ ने मिलकर जो आगे स्ट्रेटेजी बनाई, और टॉस हारने के बाद भी फ्रंट फुट पर आकर खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं और बहुत बढ़िया खेले हैं। अब जो भारतीय थिंक टैंक है वो इस समय जो ब्रेक है उस ब्रेक में बैठकर देखेगा कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरह से अटैक से ही शुरू से, क्योंकि पहली गेंद से अटैक करना पड़ेगा, रन गति बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। अब मज़ेदार हो जाएगा ये मुकाबला, चाहे रात हो रही है, तापमान, पारा जो है वो गिर रहा है धर्मशाला में, लेकिन क्रिकेट का पारा जो है वो तो चढ़ रहा है, वहां तो गर्मी बढ़ रही है और बढ़नी ही चाहिए। Well, we can see the play of words here between our two Hindi commentators, and I must say that Adesh has spoken quite well of Sri Lanka, which shows that the commentary is unbiased, that there is no bias in the commentary. It's a balanced view of what is happening at the HPCA Stadium in Dharamshala, Himachal Pradesh. But all credit really to Sri Lanka. They made the most of the loose bowling by the Indian bowlers, especially Harshal Patel, who gave 52 runs in his 4 overs, just picked up the 1 wicket. He held plenty of promise initially, but Bhuvneshwar Kumar also bowling loose, his first 2 overs in the first spell, going for only 8 runs, and thereafter he gave away 28 runs in his next 2 overs, finishing his spell with 1 for 36 in 4 overs. The pick of the bowlers, I must say, was Jasprit Bumrah, who took 1 for 24 in his 4 overs. But it's the Sri Lankan captain, Shanaka, who came with an unbeaten 47 of 19 deliveries, which allowed Sri Lanka to score 183 for 5 in their allotted 20 overs. अर्जुन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हम तारीफ तो ज़रूर करेंगे अगर हम कहेंगे कि भारतीय
गेंदबाजी कहीं थोड़ी सी कमज़ोर रही है, लेकिन हम वे भी कह सकते हैं कि श्रीलंका की बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी रही है। निशंका ने जो शुरुआत दी एज एन ओपनर, उन्होंने जिस तरह से एग्रेसिव खेला, एक छोर संभाल कर रखा, उसके बाद के बल्लेबाजों के लिए कहीं आसान हो गया। अगर शुरू से ही विकेट्स गिरना शुरू हो जाते, जैसे पहले मैच में हुआ था कि 2 विकेटें बहुत तेजी से गिर गई थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीम के लिए कमबैक करना, और एक बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर चेज कर रहे थे। अब भारत को 9.2 की रन गति के साथ इस स्कोर को चेज करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा, देखना एक हर किसी का, देखिए उत्सुकता से पूरे के पूरे दर्शक भी फील्ड में भरे पड़े हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। और बहुत ही अच्छी चुनौती श्रीलंका ने पेश की है भारतीय स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी के लिए। Well, Chamira is their opening bowler, and he did quite well in the first T20, which Sri Lanka lost, but somehow he wavered off length thereafter. And I'm sure Shanaka, with his 47 not out in the first innings, will be able to use the bowling tactics much better. It's a change of bowling that really brings about the difference, and that's what we have seen. But speaking about Shanaka, the captain of the Sri Lankan side, we have Rohit Sharma, the counter, the captain of the Indian side, now walking into the field, is going towards the pitch. He should be opening the strike and ensure that the first 6 overs are fully taken advantage of with the field restrictions and only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. अब ये कहा जा रहा था मैच शुरू होने से पहले कि दूसरी इनिंग्स में जो है बल्लेबाजों के लिए, और ड्यू फैक्टर जो है इस ग्राउंड के ऊपर, उसका भी एक असर कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। ग्रिप करना गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। भारत को एडवांटेज हो सकती है सेकंड खेलने के लिए, और यही सोचकर इन सभी कंडीशंस को, ग्राउंड की कंडीशंस को, वेदर की कंडीशंस को देखते हुए ही टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है परेशान ज़रूर हुए होंगे रोहित शर्मा, क्योंकि बॉलिंग जिस तरह की तेज़ धारदार बॉलिंग वो सोच रहे थे होगी, और जिस तरह से अटैक कहीं उनको डिफेंस पे करेगा श्रीलंका को, पहले मैच में जिस तरह से खेला था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब तो उनके हाथ में है कि वो अब किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। Well, Rohit Sharma, the captain of the Indian side, best of 118 with a strike rate of 140 in 124 matches, 3,307 runs. And as my co-commentator in Hindi, Adesh, spoke about Ishan Kishan, who was declared the player of the match in the first T20. He had scored 89 of 56 deliveries, and his career average is 122. He just played 9 matches before this. He's into his 10th. And I was earlier mentioning about Chamira, the right-arm fast bowler. He made quite an impression in the first T20, and it's key how the first over is bowled. We saw in the first T20 match at Lucknow at the Ekana Sports Stadium, where the other bowlers were struggling to grip the ball, especially with the dew that you mentioned. Over here, that may be another concern, but the confidence is there with the Sri Lankan side. They have scored 183 in their allotted 20 overs, and the asking rate for India is 9+ per over. अब तक खेले 46 मैचों में चमीरा ने 45 विकेट्स ले लिए हैं, और बहुत अच्छा उनके पास तजुर्बा है मैचेस का, बॉलिंग करने का। लेकिन उतना ही अच्छा तजुर्बा क्रिकेट के हमारे कप्तान, भारत के कप्तान रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा तैयार इस समय बिल्कुल पहली गेंद को फेस करने के लिए चमीरा की, और ये गेंद बिल्कुल सीधी सधी हुई गेंद, विकेट टू विकेट। अगर बॉलिंग करवाते हैं, अगर कुछ बहुत ज़्यादा चमत्कार करने की कोशिश ना करें, इंड्यूस करें बैट्समैन को गलती करने के लिए, तो भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल खाता खोल दिया है भारत का, और रोहित शर्मा ने इस एक सिंगल के साथ। Picking up a single behind a square leg, just turning the bat with the ball being delivered at 143 kilometers per hour. So Chamira is quite nippy, bowling the first delivery of Sri Lanka's reply after scoring 183 for 5 in the 20 overs. It's Ishan Kishan who's on strike. He was the player of the match in the first T20, where he scored 89 of 56 deliveries. You have one slip in place, and you also have a gully and a point fielder inside the 30-yard circle for Chamira. This time pitching it up and flicking it off his pads. Ishan Kishan picking up 1, maybe 2. And they run 2 runs as a result of a misfield in that deep square leg area. The score now moves on to 3 without loss. Kishan batting on 2, Rohit Sharma batting on 1.
जी हाँ, ये जो मिस फील्ड का आपने जिक्र किया है, तो ये जो ड्यू फैक्टर है ग्रिप करने का, फील्डर के लिए भी मुश्किल होता है। बॉलर के लिए तो मुश्किल होता है क्योंकि ग्राउंड के साथ जब लगकर गेंद जाती है तो वो अपने साथ ओस को लेकर आती है, ग्रिप करना मुश्किल होता है, लेकिन फील्डर्स के लिए भी मुश्किल होता है। तो ये एडवांटेज जो है ये भारत को मिल सकता है इस मैच में। 2 गेंदों में 3 रन बना लिए और ईशान किशन बिल्कुल तैयार अगली गेंद को फेस करने के लिए। पहले ही गेंद को फेस करके 2 रन लिए थे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिशा भर मात्र दे दी गेंद को, बॉलर की स्पीड का फायदा उठाया और 4 रन। Well, he found the gap. It was a full pitch delivery, an attempted Yorker by Chamira, but Ishan Kishan coming off a strong innings in the first T20 with 89, steering it in that vacant third man area for a boundary. And that just goes to show how well he's playing. He got the front foot in front and was able to steer the ball with effectiveness. It wasn't a bad delivery by Chamira, but 4 runs for an informed left-handed batsman for India. 7 for no loss after 3 deliveries of the first over. तो स्टार्ट जो शुरुआत है भारत ने अच्छी की है, लेकिन अभी बहुत ही खूबसूरत गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर आती हुई और बैट्समैन के पैड को अटैक करती हुई ये गेंद समझ नहीं पाए, कमिट कर चुके थे, आगे आकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पर भी स्पेस नहीं दी बॉलर ने और भाग्यशाली रहे कि लाइन थोड़ी सी कहीं छूट रही थी स्टंप्स की, इसलिए हाँ खेल गए बैट्स के साथ, लेकिन पैड पे जाकर लगी, रन नहीं लिए। चलिए ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन अर्ली डेज अभी बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है। वो दोनों तजुर्बेकार बैट्समैन हैं और ये ज़रूर समझते हैं कि किस तरह से पेस करना है। 7 रन और इस ओवर की ये 5वीं गेंद चमीरा की ईशान किशन को वाइड बॉल, और कोशिश की कि कहीं टच कर जाता और अगर टच कर जाता तो ज़रूर 4 या 6 रन मिल सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। 1 रन तो वाइड बॉल का जुड़ ही गया भारत के खाते में। 8 रन 4 गेंदों के बाद। Well, it was Ishan Kishan attempting to hit it in that fine leg area, but a white call by the umpire as he played and missed. We must remember that Chamira is bowling at quite a high pace, 143 kilometers per hour, and to his credit, he's hitting the seam with consistency, but just diverting in that line earlier. We'll have to wait and see. Ishan Kishan, who is in form, faces the 5th delivery and once again steering it, attempting to steer it down fine leg, but finds the fielder at a square leg. It's probably a leg bar. We'll have to wait and see what the umpire rules. But another single adding to India's score. It is 9 for no loss. Still one more delivery to go in this first over. And Chamira has done fairly well in this opening over. Just the 1 boundary and the 1 wide. But the remaining deliveries have been challenging for the batsman. It's Rohit Sharma on strike, batting on 1. और 9 रन बना लिए हैं अभी तक 5 गेंदों में। भारत ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन जहां तक बात, ओहो ये पहला नुकसान भारत को, पहला झटका। टेंटेटिव खेल रहे थे रोहित शर्मा, गेंद बिल्कुल उनके सामने आई, उन्होंने हल्के से बैट से उसको डैब करने की कोशिश की और बैट से लगकर वो बॉल विकेटों को हिट कर गई और ये भारत को पहला झटका। चमीरा ने एक जबरदस्त शुरुआत कर दी है श्रीलंका के लिए। Well, it was a seeming delivery, an inside edge off the bat. Rohit Sharma still early days in his innings and the ball crashing on to the stumps. Out for 1, the Indian captain. So the first wicket has fallen with the score 9 on the board at the end of the first over. Let's not forget Rohit Sharma's contribution in the first T20 match where he scored 44 of 32 deliveries, and things not going India's way ever since Sri Lanka took charge after the 15th over in their innings when they reached the target of 183. And right now India is struggling. Ishan Kishan, on the other hand, is looking in very good nick, batting on 7 of 4 deliveries. So we now have Binura, who would be sharing the new ball with Chamira, and a new batsman is at the crease, which is Shreyas Iyer. ज़रूर मायूस होंगे अपने इस अटैम्प्ट से रोहित शर्मा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये वैसे ही खेलना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था पहले ओवर को देखकर कि एक शीट एंकर का रोल प्ले करेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन अटैकिंग खेलेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। 4 गेंदों में 7 रन बनाए और शायद उसी चक्कर में, ताकि किशन को ज़्यादा स्ट्राइक दी जाए, उस चक्कर में इस बॉल को धीरे से खेल के, हालांकि बॉल में ऐसी बात नहीं थी, अगर वो अग्रेसिव होकर खेलते तो अच्छे रन इसमें बना सकते थे, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी करके आए हैं कि ईशान किशन जो है वो अटैकिंग खेलेंगे और वो डिफेंसिव खेलेंगे, वो कहीं भारी पड़ गई। Well, Binura, the left arm fast medium and really challenging Ishan Kishan on the back foot there, batting on 7 of 5 deliveries. Binura quite distinctive with his black headband, bowling from over the wicket
left arm overhead and really challenging Ishan Kishan there with his height also. He's getting some bounce off the wicket. Remember, the ball is new, but for the fast bowler, the run-up rhythm is important, but how they're able to hit the seam as the ball hits the deck off the wicket and comes off, that is what troubles the batsman. And we saw that with Rohit Sharma as well when he got out to Chamira. The second delivery, and this time challenging the first slip as the outside edge goes towards the third man boundary. So India lucky to pick up 4 runs. It's 13 for 1. 4 runs adding to Ishan Kishan's score. He's batting on 11 of 6 deliveries. And Shreyas Iyer at the non-strikers and still yet to open his account. जो 2 चेंजेस श्रीलंका की टीम ने किए उसमें एक ये है बिनारो फर्नांडा आज इस मैच में आए हैं, उनका इस टूर्नामेंट का इस श्रृंखला का पहला मैच, और लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर जो हैं भारतीय बैट्समैन को हमेशा से कुछ ना कुछ दिक्कत देते आए हैं। ये हमने एक ऐतिहासिक हम कह सकते हैं कि जितनी भी हम पिछली इनिंग्स को देखें, और ये शुरू में ही पहली 2 बॉलों में उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो थोड़ा सा, और ये बॉल बहुत भाग्यशाली रहे ईशान किशन, उन्होंने खेलने की कोशिश की। वैसे तो ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल थी, लेकिन बैट से लगकर वापस आई, लेकिन स्टंप्स के ऊपर से निकल गई, और पिछले बार जो 4 रन लिए थे इससे पिछली बॉल में वो भी थोड़ा लकी ही 4 था। Well, again, the ball just bouncing unexpectedly, and Ishan Kishan had soft hands, lucky not to be dismissed. Inside edge, missing the leg stump, and the fieldsman and Binoru really keen for that to be the second wicket down. But fortunately for India, it's 13 for 1. 4th delivery of the second over, and this time being played towards the square leg area on the onside. Steered by Ishan Kishan, picking up the score. He's on 12. India 14 for 1, and more importantly, rotating the strike. जी, बिनूरा फर्नांडा में अगर फर्स्ट लुक हमने देखी है तो थोड़ा सा इनमें गति भी है, और पिच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो जूस है पिच के अंदर वो उसका बेनिफिट उसका उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि हाइट है इनकी अपनी, तो ऊंचे से बॉल आ रही है जिससे बॉल जो है वो हाइट भी ले जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो जैसे ही समझ लेंगे, जैसे ही उसकी गेंद को समझ लिया तो ज़रूर उस पर भारी पड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। श्रेयस अय्यर इस समय पहली गेंद को फेस करेंगे बिनूरा की। 4 बॉलों में 5 रन दिए हैं, लेकिन हर बॉल में कहीं ना कहीं बैट्समैन को तंग जरूर किया, और ये गेंद अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन में आते हुए गेंद की दिशा मात्र दे दी, स्ट्रेट एक पंच कह सकते हैं, सॉफ्ट पंच, लेकिन 4 रन के लिए बहुत ही खूबसूरत शुरुआत श्रेयस अय्यर की। Well, it reminds of Ricky Ponting and Shreyas Iyer playing that front foot drive and picking up a boundary. Very important really for this pair, as a challenge is left arm fast bowler bowling from over the wicket. He didn't change it to round the wicket to the right hander, and Shreyas Iyer showing his class, playing with the full face of the bat and picking up a 4. So India's score now moves along at the end of 2 overs, and really challenging the fielder there. 18 for 1. Still one more delivery to go in the second over. Long winding run up. This time just pitching a shot, giving Shreyas Iyer some room to cut, but finds a fielder in front of the wicket in that mid-off area. No runs, a dot ball. 18 for 1 at the end of over number 2. 2 ओवरों की समाप्ति पर भारत 18 रन बना देगा। जगह रन गति की बात है, वो जैसी चाहिए वही रन गति है, लेकिन एक विकेट जो नीचे गिरी है भारत की, कप्तान रोहित शर्मा 1 रन बनाकर आउट हुए। चमीरा की बॉल पर सीधे बोल्ड, क्लीन बोल्ड, वो थोड़ा भारी पड़ सकता है, लेकिन भारतीय टीम में डेप्थ काफ़ी है, भारतीय बैटिंग में डेप्थ काफ़ी है। और पिछले मैच से अभी जो नया जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जडेजा को नंबर 4 पे लाने का, पिछले मैच में खैर इतनी ज़रूरत खासकर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी उनकी, लेकिन इस मैच में ये ज़रूर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। भारत ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ श्रीलंकाई गेंदबाज भी पहली विकेट लेने के बाद काफ़ी उत्साहित होंगे। लेकिन ये अगली गेंद चमीरा की, अगले ओवर की, दूसरे ओवर की पहली गेंद, वाइड बॉल, और 1 रन भारत के खाते में जाता हुआ। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। It was really a long hop, but Ishan Kishan was not able to pull the ball behind square on the onside with a white call by the umpire. Chamira just not being able to adjust to the left-handed Ishan Kishan. He had bowled off the inside edge to the right-hander Rohit Sharma earlier for 1 in his first over. Into his second over now, his figures are 1 for 10. India is 19 for 1 with that extra being called by the umpire. And we're into over number 3 now, bowling from over the wicket to the left-hander, and an inside edge running it down towards the third man. And in fact, it is Binuru
who has been sent in that outfield. So it's 20 for 1, and both the fast bowlers, right and left, Chamira and Binuru, are troubling this pair with their pace and bounce. थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है आज रूप रंग श्रीलंका की टीम का देखें तो, और वो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है वो बैटिंग की वजह से आया है। पहले बैटिंग करके जो इतना अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए हैं, तो बैट्समैन के ने जो एडवांटेज दिया है उसका पूरा का पूरा फायदा बॉलर भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना होगा कि किस तरह से अननर्व कर सकते हैं बॉलर्स को अपने खेल से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। अगली गेंद श्रेयस अय्यर फेस करते हुए विकेट तो थी बॉल में, मार भी सकते थे, लेकिन चेक किया अंतिम समय पर अपनी इस स्ट्रोक को, कवर्स में खेल दिया और कोई रन नहीं ले पाए। Yes, the cover point fielder coming into play, and you're right, he did check his shot because he was on the back foot and then playing it to the cover point fielder. A dot ball there, India 20 for 1 into the third over, and Rohit Sharma regretting being dismissed for 1 after scoring a valuable 44 in that first T20 match which India won in Lucknow, and it is now the third delivery of this third over, with the batsman trying to make room. Shreyas Iyer lucky not to be bowled. What's the thinking here? Batting on 4, trying to make room, he would have been bowled. जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा चकित करने वाला इनका मूव था कि पहले ही इतना ज्यादा अपने फुट मूवमेंट किया, अननर्व करना चाह रहे थे बॉलर को, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है कहीं पर, क्योंकि बॉलर तो बिल्कुल भी अननर्व नहीं और बहुत ही स्टीक गेंद की थी। हल्का सा चूक गई गेंद, डिविएट कर गई टप्पा खाते समय, नहीं तो सीधा स्टंप्स पे लग सकती थी। पूरी की पूरी स्टंप्स प्रस्तुत की थी, 3 की 3 विकेटें सामने प्रस्तुत की थी बॉलर को, लेकिन बॉलर मिस कर गए। And credit to Chamira because he didn't waver from his line. Pitched it up. Lucky for Shreyas Iyer that the off stump was not struck, with Shreyas Iyer batting on 4. India 20 for 1 into the third over. 3 deliveries have been bowled so far. And Chamira this time pitching it up. A run called by the batsman because it was played in front towards that mid-off fielder. It was a call of the batsman, and Ishan Kishan responding quite well there, picking up a single. India 21 for 1. Ishan Kishan on strike, batting on 13. चैलेंजिंग स्कोर है और स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब कुछ देखकर धर्मशाला की जो सर्दी है, इस समय लगभग 11 के आसपास का तापमान है, ठंडा तापमान है, लेकिन वो एक गर्मी महसूस कर रहे होंगे, उसके गर्मा गर्म क्रिकेट की गर्मी महसूस कर रहे होंगे जितने भी दर्शक इस समय इस मैच को देख रहे हैं। और ठंडक तो महसूस इस समय जो भारतीय खेमा है इस वक्त बैटिंग का वेट कर रहा है और भारतीय 2 बल्लेबाजों को खेलते हुए देख रहा है, उनको कहीं लग रहा होगा कि भाई अगर ये पेस नहीं पकड़ पाए, गति नहीं पकड़ पाए इनिंग्स में, तो मुश्किल हो जाएगा टारगेट। Well, this time driven off the front foot, but not getting to the pitch of the ball there. Ishan Kishan challenging that fielder at mid-off, and it was a call of Ishan Kaya to take that single. Lucky not to be run out as well, but he made his ground early enough. So it's all happening here at Dharamshala at the HPCA Stadium. India 22 for 1. Still one more delivery to go in this Chamira over. He's given 4 runs so far. And this time just wrapping the batsman on the pads. Good call there by the non-striker as they pick up a crucial leg by. And India's run chase is on, 23 for 1 at the end of 3 overs. जी हाँ, 3 ओवर्स के बाद भारतीय स्कोर 23 रन 1 विकेट के ऊपर। ये गेंद पैड के साथ टकराई थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो रनर हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से नॉन स्ट्राइकर एंड ने 1 रन पूरा कर लिया और एक लेग बाई अपने खाते में, टीम के खाते में जोड़ते हुए ईशान किशन 10 बॉलों में 14 रन बनाकर और 6 बॉलों में 5 रन बनाकर श्रेयस अय्यर इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं भारत की तरफ से। और गर्मा गर्म धुआंधार बॉलिंग इस समय श्रीलंका कर रहा है। क्यों ना करेंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन ने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है अपनी टीम को, अपने बॉलर्स को। अब पूरा का पूरा एफर्ट जो है वो बॉलर्स के हाथ में है, किस तरह से वो श्रीलंका को इस मैच में लेकर आते हैं। और बॉलिंग चेंज की है, लाहिरू कुमारा को लेकर आए हैं, जेंटल राइट आर्म फास्ट बॉलर, जेंटल पेस के साथ ये बॉलिंग कराते हैं। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप्स गेंद करवाते हुए, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब रहे श्रेयस अय्यर। Well, he's a seam bowler and just trapping Shreyas Iyer on the pads, the ball going down leg side. A leg by picked up by the batsman there, 24 for 1 as they rotate the strike. Ishan Kishan is now batting at the striker's end, batting on 14. And this bowling change not continuing with Binuru Fernando,
who has come into this game, this left-arm fast bowler. He made quite an impression on the batsman earlier. But let's not forget that Lahiru Kumara is also quite strong, stout, long run up. And this time pitching a shot, he has hit Ishan Kishan. Has it hit the helmet? We'll have to wait and see. Is he hurt? He walks off, takes off his helmet. The players are surrounding him, just trying to egg him on to make sure that he's not hurt. And that's a kind of team spirit that we are seeing in this T20 series. The physiotherapist has run into the field examining Ishan Kishan to see if he's been hurt or not. But it's really been a jolt, even when the ball hits the helmet. बिल्कुल ये उछलती हुई गेंद को हुक करना चाहते थे, लेकिन शायद उसकी लेंथ को पूरी तरह से परख नहीं पाए. हेलमेट से जाके, जो हेलमेट का फेस गार्ड होता है, उस पे जाकर टकराई गेंद, पीठ दिखा दी बॉलर को. लेकिन ठीक लग रहे हैं. उसी समय फिजियोथेरेपी आ गई, क्योंकि ये मैंडेटरी काउंट देना पड़ता है देखने के लिए कि कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है, हेड के ऊपर कॉन्कशन तो नहीं है, और उसकी वजह से फिजियो तुरंत टीम के आ जाते हैं. अच्छा अटैकिंग खेला है. और जैसे आपने कहा कि कैसे बिनोरू फर्नांडो को चेंज कर दिया, ये एक सोचने की बात है. कहीं श्रीलंका के बैक ऑफ द माइंड में ये होगा कि पहला ओवर इतना अच्छा उन्होंने किया है, कहीं ज़्यादा एग्रेशन में टीम इंडिया की अच्छा खेल रही हो तो उस समय उसको लेकर आएंगे, ताकि एक झटका दे सकें और किसी तरीके से चेक कर सकें उस रन रेट को. फिलहाल अभी वो मैंडेटरी काउंट दिया जा रहा है ईशान किशन को, और ठीक लग रहे हैं. पूछा जा रहा है कि कहीं आपको कुछ ज़रूरी सवाल पूछे जाते हैं. देखा जाता है कि उनको चोट जो सर पे लगी है वो इतनी तो नहीं है कि कहीं उसमें, क्योंकि ये अभी हादसे कुछ क्रिकेट में हो चुके हैं, इवन हेलमेट होने के बाद भी, हेलमेट पहनने के बाद भी. भारत के केस में रमन लांबा का केस कोई भूल नहीं सकता, हालांकि वो फील्डिंग कर रहे थे. Well, once we have the benefit of the replay, the ball hit the visor. And you have batsmen who prefer not to wear the visor, just the helmet. And if the visor was absent, then it could have been a serious injury. And Kumara is deceptively quick. He's getting bounce off the wicket into his first over and being brought in place of Binuru Fernando, who's impressed everyone with his left arm fast from over the wicket. And it's very important to see how Ishan Kishan recovers from this, because he tried to play a pull shot and the ball hit the visor at speed. Batting on 14 of 11 deliveries, we'll have to wait and see how he recovers playing the next delivery. फाइटर बैट्समैन है और देखते हैं कि किस तरह से फाइट को वापस लेकर जाते हैं. देखिए, घुमा दिया इस बॉल को. लकी रहे कि ये फील्डर के पास तक नहीं पहुंची, उनसे कुछ कदम पहले ही टप्पा खा गई गेंद, नहीं तो ये कहीं आउट होने का चांस भी हो सकता था. ये शायद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जो बॉल की हिट लगी है उससे वापस आने के लिए उन्होंने ऐसा एग्रेशन दिखाया है. Absolutely right. He tried to slog it and it was an outside edge of the bat. It flew towards third man. The fielder picking it up in one bounce, throwing it to the striker's end. And really, you're right. It's a psychological response to the hit to his visor. He's a young cricketer, 25 for 1, India. और ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, उसको दिशा जरूर दे दी. 4 रन जरूर मिल गए, लेकिन पहली स्लिप के साथ से ज्यादा दूर नहीं गई थी गेंद. थोड़ा सा टंग इन चीक, थोड़ा सा श्रेयस अय्यर को भी लगा कि शायद मैं गलती कर दी थी, लेकिन फिर भी अच्छा है कि 4 रन भारत को मिल गए, लेकिन कोई बहुत कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं थी. प्लेसमेंट उन्होंने किया, कुछ इंच मात्र का फर्क रह गया जंप लगाते हुए, छलांग लगाते हुए पहली स्लिप के फील्डर से, और 4 रन भारत के खाते में जाते हुए. No footwork at all by Shreyas Iyer, and Kumara, I think, has got a little excited after hitting the visor of Ishan Kishan. And over here, Sri Lanka may well lose their way because they're giving away runs. India 29 for 1. A second slip has now been brought into position. This time a single picked up by Shreyas Iyer, playing it with soft hands in front of the wicket towards that mid-off area. 30 for 1. Still one more delivery to go. And the bowler, Kumara, getting overexcited, is bowling at a quick speed of over 140 kilometers per hour, but bowling short as well. जी हाँ, बिनुरो का हटाना जो है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए. वो चाहते हैं कि उनको आखिरी गेंदों के लिए जहां पर जरूरत पड़े ब्रेक्स लगाने की, वहां पर लेकर आए. लेकिन अगर पहले शुरू के 2 या 3 ओवर भी उनसे करवा दिए जाते और भारत पहले ही डिफेंस पे आ जाता है 1 या 2 विकेट लूज करके, तो शायद ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होती. लेकिन ये तो समय ही बताएगा आगे क्या होगा. 3.5 आखिरी ओवर, इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद करवाते हुए, और ये गेंद नहीं कन्विंसिंगली खेल पाए ईशान किशन.
लेकिन भाग्यशाली रहे कि बैट का किनारा नहीं लिया गेंद ने और सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन भी नहीं और कोई क्षति भी नहीं। भारत का स्कोर 4 ओवरों की समाप्ति पर 1 विकेट खोकर 30 रन। Once again, Ishan Kishan trying to slog it over mid-wicket and taking his eyes off the ball. Still not recovered from that blow to his visor from Kumara's bowling, and it gave the impression initially that maybe he's nicked it behind, but nobody appeals. So it's a 30 for 1 after 4 overs. India having won the toss and electing to field. Sri Lanka putting up an imposing total of 183 for 5 in their 20 overs. It was Nissanka who scored 75, but Shanaka, the captain of the Sri Lankan team, scoring 47 crucial runs in that first innings of Sri Lanka. It is now Binuru. Fernando comes back into the attack, bowling from over the wicket to the left-hander. Kishan, he is now batting on 15. जी हाँ, बिनुरो का छोर बदला है। हमने सोचा था कि उनको शायद हटा दिया है अटैक से, लेकिन उनका छोर बदला है और दूसरी तरफ से आ गए, फिर से उनको लेकर आ गए। शायद कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया कि अगर इस समय विकेट्स ली जाएं तो भारत को ज़्यादा प्रेशर में लाया जा सकता है, और वाइजर पर गेंद लगने के बाद थोड़ा सा हिले हुए तो लग रहे हैं इस समय, और कोशिश कर रहे हैं कि हर बॉल के ऊपर स्लॉग करें। वो स्ट्रेटजी नहीं है, हिट करना बहुत ज़रूरी है। अगली गेंद बिनोरो की, और ये गेंद स्टंप्स के ऊपर थी, लेकिन इस बार छोर बदलने का कोई ज़्यादा फायदा लग नहीं रहा, और जो पहले ओवर में धार दिख रही थी उनकी, वो शायद पहली 2 गेंदों में नहीं दिख रही है इस समय। Well, Ishan Kishan couldn't take advantage of that full toss on the off stump, not getting on the front foot, and we didn't see that force behind the shot, picking up a single. 32 for 1. Shreyas Iyer is now on strike, batting on 11 of 10 deliveries. We're into the 5th over right now. The target is 184 to win. The current run rate is about 7.5, and the required run rate is just below 10. Shreyas Iyer on strike, batting on 11. And Binuru, who has one slip in place, is trying to pitch the ball up, but we aren't seeing that speed. He's bowling below his pace in this second over. I think he just lost his rhythm a little bit after Kumara had replaced him in that spell. और श्रेयस अय्यर को इस समय थोड़ा सा मेच्योरिटी इस सेंस में दिखानी पड़ेगी कि कहीं थोड़ा शांत करना पड़ेगा ईशान किशन को, क्योंकि वो एक मैच विनिंग बैट्समैन है, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा अभी सेटल होने दिया जाए तो इस समय थोड़ा स्ट्राइक अपने पास रखना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को। शायद वैसा ही कर भी रहे हैं और घुमा दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। बहुत खूबसूरत आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी बॉल, लेकिन लेग साइड पर खेल दिया और बहुत ही खूबसूरत 4 रन अपने लिए और अपनी टीम के लिए जुटाते हुए श्रेयस अय्यर। Playing a pull shot in front off the wicket, finds a long on boundary. Shreyas Iyer, the bowling of Binura Fernando. And India now moving along quite well. Binuru's second over has been far from impressive as compared to his first. He has been brought into this match, and what we're also seeing is that he's not being able to pitch on the seam of the ball, which is why the ball is coming slower off the wicket and it is not as predictable. He's not been able to use the pitch to his advantage. India 36 for 1 as a result of the boundary. This time pulling it, Shreyas Iyer in that same long on area, 2 boundaries in a row. The score is now 40 for 1, and India now has the upper hand into this 5th over. 1 delivery to go, and Binura Fernando proving expensive. जी हाँ, ये 2 एक के बाद 2 लगातार ताबड़तोड़ चौकों से देखिए कि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, उनमें भी एक जान आ गई है, और स्पेक्टेटर्स के आगे खेलने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत देर बाद ऐसी फील जो है खिलाड़ियों को मिल रही है, और वही एक जो चार्म है क्रिकेट का या किसी भी मैच का, वो फील्ड के अंदर खेलने का वही होता है कि जब उसी समय इमीडिएट अप्लॉज मिलता है। इस ओवर की आखिरी गेंद करवाते हुए बिनोरा, और ये गेंद को भी फुल लेंथ पर ले लिया और 4 रन के लिए हैट्रिक चौकों की। Tremendous straight drive there, taking advantage of that full toss. It attempted Yorker by the left-arm bowler Binura Fernando. He's gone for 14 runs already in this over. His figures of none for 23 after 2 overs. India 44 for 1. And that's a comeback which Shreyas Iyer has allowed for the team. 3 boundaries already in this over. तो पहले 5 ओवर समाप्त हुए और भारत को हम कहेंगे कि एक झटके के बाद रिकवरी का फेज चल रहा है, और अच्छा फेज चल रहा है रिकवरी का, लेकिन अभी बहुत मंजिल तय करनी है और तेज गति से खेलना पड़ेगा और तेज गति से रन
बटोरने पड़ेंगे। और दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों बैट्समैन ने एक अच्छी नज़र उन्होंने पिच पर गड़ा दी है और पाँव भी जमा ली हैं। अब देखते हैं कि वो कहाँ तक लेकर जाते हैं, मंजिल के कितना करीब लेकर जाते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका ने 25 रन बनाए थे, लेकिन भारत 44 रन बना चुका है और 1 विकेट का नुकसान भी हो गया है। समय है हमारी कमेंटेटर्स टीम में भी तब्दीली लाने का, बदलाव लाने का। We'll now be joined by Hemant Madan, who will do the commentary in English, and Nitish, who will do the commentary in Hindi. But having said that, India has now lost a second wicket. It's 44 for 2. Maybe this rotation of the commentary box is unwelcome as far as India's performance is concerned. It is the second wicket down in the 6th over. And to take it forward, we have Adesh on the microphone. Kumara giving trouble to Ishan Kishan, who has been dismissed now. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी और नीतीश अरोड़ा जी। और जैसे कि अर्जुन जी ने बताया कि ईशान किशन के लिए ये गेंद काफ़ी घातक साबित हुई और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ेगा। 15 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 16 रन बनाए। शनाका के हाथों वो कैच हुए और इस तरह से भारत को ये दूसरा झटका लगा। भारत का स्कोर 44 रन। तो इस तरह से हेमंत ये कहा जा सकता है कि जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं उन्हें जिस तरह का शेड मिला है एक अच्छा स्कोर बनाने के बाद, जिस तरह से उन्होंने 183 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, तो काफ़ी जोश में गेंदबाजी कर रहे हैं। Why not? They've got a mammoth 184 to defend, and the confidence is clearly visible and well assisted by the wicket here at HPCA Stadium. Getting a lot of purchase and early seam and swing, plus the pace of Kumara doing the rest. Probing, asking questions to this Indian batting. Already the openers back in the dugout, so a lot of concerns and bothers for India. 44 for 2 already with Sanju Samson. Shreyas Iyer on 23. Did a bit of beating in the last over. Had 3 back-to-back boundaries. And just when the impetus was going with India, they've lost Ishan Kishan against the run of play. श्रेयस अय्यर पर इस समय काफ़ी दारोमदार रहेगा बल्लेबाजी करने का। और श्रेयस अय्यर को जितने भी मौके मिले हैं उन्होंने अच्छी तरह से भुनाया है। 34 T20 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेले हैं। 30 पारियों में 662 रन बनाए, जिसमें उनके 4 अर्धशतक शामिल हैं। 67 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। फिलहाल भारत का स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं 117 रन बनाए हैं। 27 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि संजू सैमसन को बहुत पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि आईपीएल में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है उसके अनुरूप वो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और यहाँ कुमारा की गेंद जो कि उनके पैड पर रेफ कर रही थी, एक अपील ज़रूर हुई और यहाँ पर डीआरएस के लिए आखिरकार कप्तान, विकेट कीपर और बॉलर की सलाह बनी। अब देखना होगा कि कितना ख़तरे में हैं श्रेयस अय्यर। फिलहाल भारत का स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। I think it's a very good review. It looked like it pitched in line and definitely hitting in line. But yeah, the edge there, as we can see on the monitor, the inside edge onto the pads clearly must have saved Sanju Samson. So this review going in vain then as far as Sri Lanka is concerned. It really looked close. The only thing that could have perhaps saved him was an edge, and clearly there was a heavy inside edge onto the pads. So you'd very quickly would see that the decision would be stayed intact and there won't be any damage done. तो भारत को कोई झटका नहीं लगा। क्षमा चाहेंगे श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि संजू सैमसन के पैड पर गेंद लगी थी। तो यहाँ पर हेमंत ने हमें सही किया और ये जो अंपायर का फैसला था ये बॉलर्स के पक्ष में नहीं गया। और लाहिरू कुमारा जो कि तेज़ गेंदबाज हैं, फ़िलहाल काफ़ी तेज़ी से अपने बल्लेबाजों को बीट करते हुए अगली गेंद तैयार है बैट्समैन खेलने के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद थी, कवर्स में उसको ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई और यहाँ पर रन लेने का कोई अवसर नहीं था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले
भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उसके बाद श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। फिलहाल भारत का स्कोर 5.4 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को पहला झटका लगा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में, जो चमीरा की गेंद पर बोल्ड हुए, वो केवल 1 रन बना सके और उसके बाद ईशान किशन ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए और वो लाहिरू कुमारा की गेंद पर शनाका के हाथों कैच हुए। इस बीच श्रीलंकाई गेंदबाजों की तरफ से एक और गेंद की गई और उस पर कोई रन नहीं। फिलहाल कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों की कि वो गेंद पर और नज़र जमाएं, खासकर संजू सैमसन, क्योंकि उन्होंने अभी तक केवल 4 गेंदों का सामना किया है। सुरेश अय्यर इस समय 14 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरेश अय्यर स्ट्राइक के लिए तैयार हैं और यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत एक गेंद के बाद होगी। इस गेंद को हल्के से ऑन साइड में टर्न किया और मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाते हुए भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 46 रन। सुरेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं 15 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर। संजू सैमसन 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत को 2 बड़े झटके लगे हैं। अगर भारत को 1-2 झटके और लगते हैं, खासकर 10 ओवर तक, तो फिर श्रीलंकाई गेंदबाजों का मनोबल और पूरा होगा। बैटिंग ऑर्डर में यहाँ हेमंत काफ़ी आश्चर्यजनक परिस्थितियाँ हुई हैं कि रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को काफ़ी प्रमोट किया है बैटिंग में, और वो जो लोअर ऑर्डर होता था, बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी नहीं आते थे, अब तो टॉप ऑर्डर पर हैं रविंद्र जडेजा। It could just well be an experiment to have Jadeja at 5. That's to kind of make sure that they don't really expose the Indian middle order. It's a long inning still left in the game, 14 overs, and that too decisive 14 overs of play left. And they might just want to protect the middle order just a wee bit, introducing Jadeja at 5. But let's just wait and watch how things progress and how this experiment may just work for India. Meanwhile, power play done and dusted, 46 for 2, just under 8 runs per over. So far, so good. As far as Sri Lanka is concerned, they've had a tight leash on this game so far. Meanwhile, Jaya Vikrama introduced the left arm orthodox into the attack, and Shreyas Iyer just closing the face of the bat and moving it, knocking the ball towards the mid-wicket for a quick single, gives the strike to Sanju Samson. और हेमंत, कितनी शानदार बल्लेबाजी की थी श्रीलंका की सलामी जोड़ी ने। प्रथम निशंका ने 75 और दरुष्का गुणतिलका ने 38 रन बनाए और उसके बाद कप्तान दासुन शनाका ने 47 रनों का योगदान दिया। अब यहाँ देखना होगा कि जो भारत का मिडिल ऑर्डर है वो किस तरह की बैटिंग करता है। और इस बीच अगली गेंद, और सुरेश अय्यर ने इस गेंद को फाइन लेग की ओर निकाल दिया, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, तेज़ी से दौड़ते हुए पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा रन लेने का मौका वहाँ पर नहीं था। जया विक्रमा जो कि स्पिनर हैं, और कितना दबाव वो बैट्समैन पर बनाते हैं ये देखना होगा। खब्बू स्पिनर, जैसा कि हेमंत ने बताया, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर, और इस बीच 2 रन लेने का मौका। भारत का स्कोर अब 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और 6.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। सुरेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना किया है। संजू सैमसन 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं श्रीलंका के कप्तान, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो 2020 फॉर्मेट है, इसमें कुछ इसी तरह से गेंदबाजी में परिवर्तन किए जाते हैं। और आप देखिए कि अभी तक ये केवल 7वां ओवर चल रहा है, लेकिन 4 बॉलर्स को उन्होंने आजमा लिया है। दुष्मंता चमीरा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 13 रन देकर उन्हें 1 विकेट मिला है। और इसके अलावा बिनूरा फर्नांडो ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन खर्च किए हैं। लाहिरू कुमारा ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन देकर 1 विकेट लिया है, जबकि परवीन जया विक्रमा जो कि अपना ओवर कर रहे हैं, 5 गेंदें अभी तक कर चुके हैं और उनके ओवर में 5 रन आए हैं। तो
काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं वो भारतीय बल्लेबाजों पर। श्रेयस अय्यर 34 मुकाबले 2020 के खेल चुके हैं, 662 रन उन्होंने बनाए हैं और 67 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो काफ़ी अनुभव है श्रेयस अय्यर के पास और आईपीएल में भी बड़ा धमाकेदार प्रदर्शन उन्होंने किया और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रहे। हालांकि बीच में फिर इंजर्ड हुए और फिर ऋषभ पंत को कप्तानी करनी पड़ी और अब नई टीमों से खेलते हुए नज़र आएंगे आईपीएल में और 10 टीमों के बीच ये 2 पूल में बांटा गया है। इस बार नया रूप नज़र आएगा आईपीएल का और श्रेयस अय्यर काफ़ी महंगे भी बिके, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले की बात की जाए तो वहाँ पर 57 रनों की पारी खेली थी, केवल 28 गेंदों पर नाबाद रहते हुए श्रेयस अय्यर ने, तो काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी की थी। लेकिन यहाँ जिस तरह से 2 विकेट भारत के जल्दी गिर गए, कप्तान रोहित शर्मा कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, ईशान किशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने पिछले मुकाबले में 89 रन बनाए थे केवल 56 गेंदों पर। तो बहुत ही 2 शानदार विकेट लेने में श्रीलंकाई गेंदबाज कामयाब रहे हैं। Yeah, absolutely. You spot on there. Sri Lankan pace attack was off the rails in the first game, but definitely making the most of it, most of the conditions, ideal conditions for swing and seam. And Sri Lankans really on top, pushing the Indian batsmen, testing them and probing them. और आप कह रहे हैं कि लगातार परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं और प्रूव करना होगा यहाँ भारतीय बल्लेबाजों को। और यहाँ पर एक काफ़ी नज़दीकी निर्णय के इंतज़ार में श्रीलंकाई फील्डर्स थे, लेकिन कुछ ऐसा खतरा भारत के लिए नहीं है। श्रेयस अय्यर के बल्ले को छूती हुई गेंद लगभग विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई थी। इस बीच नई गेंद के साथ गेंदबाज श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को ऑन साइड में ड्राइव किया और लॉन्ग ऑन पर गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का मौका ज़रूर मिला, लेकिन ये मिस टाइम शॉट था। दरअसल बैट के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, जिसकी वजह से शॉट के पीछे जो ताकत आनी चाहिए थी बैकलिफ्ट के थ्रू वो नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, दोनों सिरे चेंज हुए और ये अच्छा रहता है कि चाहे सिंगल्स के थ्रू बैट्समैन चेंज करे अपने आप को। इसी बीच अगली गेंद और इसे पुल कर दिया और गेंद मिड विकेट पर गई। बहुत आराम से टहलते हुए दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया और ये हैं कुछ पिछले मैच के दृश्य जो पहला 2020 मुकाबला था। और थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए बॉलर्स वो शायद चेंज करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि हुक या पुल के लिए शायद श्रेयस अय्यर जाएंगे तो कैचिंग पोजीशन पर कोई फील्डर हो, खासकर मिड विकेट को थोड़ा पीछे भेजा गया। इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को बहुत ही सावधानी के साथ संजू सैमसन ने खेला। रन बनने की यहाँ कोई संभावना नहीं थी। भारत का स्कोर अभी भी 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को अपने रनों की रफ्तार थोड़ा सा तेज़ करने की शायद ज़रूरत होगी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 11 रन के करीब पहुंच गया है और जो करंट रेट है वो 7 से थोड़ा सा ऊपर। अगली गेंद और पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन, इस बार ओवर पिच गेंद थी और हिट करना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से संजू सैमसन, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे। ओवर पिच बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ा शॉर्ट थी। गुथलैंड स्पॉट पर पिच हुई और उसे काफ़ी उछाल भी मिला। और जैसा कि हेमंत ने बताया कि यहाँ का जो माहौल है वो बॉलर्स को काफ़ी रास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ठंड है और विकेट में भी थोड़ा सा घास है, तो इसकी वजह से उछाल भी है और स्विंग भी है। लेकिन इस बार बैकफुट पर जाते हुए गेंद को ऑन साइड में ड्राइव किया संजू सैमसन ने, और ये थोड़ी मिसफील्डिंग ओवर थ्रो के रूप में, लेकिन रन बनने जैसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि 2 रन से संतुष्ट थे बैट्समैन और शायद तीसरे रन के लिए तैयार भी नहीं थे और शायद ये सोचा भी नहीं था कि ये ओवर थ्रो होगा। लेकिन फिलहाल 2 रन के सहारे भारत का स्कोर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका ने
निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए और ये बता रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने किस तरह से 24 रन देकर 1 विकेट लिया, युजवेंद्र चहल ने 27 रन देकर 1 विकेट लिया, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन टॉप पर निशांका, जिन्होंने 53 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाए, शनाका ने 47 और कुनातिलका ने 38। तो ये जो तिकड़ी थी, इन्होंने अपनी छोटी पारी को फिर बड़े रनों में बदला। अब यहाँ सुरेश अय्यर ने क्योंकि 30 रन बना लिए हैं तो उम्मीद होगी कि वो अपनी बैटिंग को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करे, क्योंकि एक समय जब भारत मुकाबले हारता था तो उसका रीज़न यही रहता था कि जमने के बाद बैट्समैन बड़े स्कोर नहीं बनाते थे। उसके बाद फिर जो कैलेंडर्स आते थे, और वो टेल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी काफ़ी लंबी है, लेकिन इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को हिट करने के साथ साथ ही एयर रूट पकड़ा इस बार बैट्समैन ने, और ये बेहतरीन छक्का यहाँ पर बैट्समैन के बल्ले से। बहुत ही स्लो स्पिन गेंद थी, अपने कदमों को आगे निकाला सुरेश अय्यर ने और बॉलर के ठीक सर के ऊपर से उठा दिया और गेंद सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। Dancing down the wicket and getting to the pitch of the ball, and played it with the straight bat. As a result, got the distance and the aviation as well. So maximum and a welcome 6 for Shreyas Iyer and India. Just breaking the shackles. Jaya Vikrama continuing then. And it's going to be a back-to-back sixes as it's a dead ringer by Shreyas Iyer. Almost a replay of what we saw in the last ball. Getting to the pitch of the ball once again, dancing down the track and smashing it over long on. So yet another 6, and the momentum clearly shifting now, and the young spinner under a bit of pump and pressure. ये शॉट काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि देख लिया था बॉलर ने कि सुरेश अय्यर अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी आगे आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को खींचने की कोशिश की और काफ़ी छोटी गेंद भी की, लेकिन सुरेश अय्यर बहुत आगे निकल आए। एक तरह से उन्होंने अपने कदमों को रोका नहीं। उसका फ़ायदा उन्हें ये मिला कि गेंद उनके बैट पर सही तरह से पिच हुई, और फिर जो बैकलिफ्ट की ताकत थी, निश्चित रूप से बहुत ही शानदार छक्का लगाने में कामयाब रहे। तो ये श्रीलंका के लिए काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ। भारत का स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और काफ़ी मुश्किल में यहाँ पर जय विक्रमा। और स्पिन के खिलाफ तो वैसे भी सुरेश अय्यर अच्छा खेलते हैं, और संजू सैमसन का तो कहना ही क्या, वो तो चाहे तेज़ गति की गेंद हो या फिर स्पिनर, दोनों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। सुरेश अय्यर के पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं, वो ऑफ साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर तेज़ गेंदबाज इन्हें शॉर्ट पिच गेंद देते हैं तो फिर उनका स्क्वायर कट बहुत अच्छा होता है, और फिर ऑन साइड के तो वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। और निश्चित रूप से इस खिलाड़ी ने काफ़ी अपनी रेपुटेशन को इंटरनेशनल क्रिकेट में बढ़ाया है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर पहुंचाकर 1 रन अपने लिए जुटाने में कामयाब रहे। और हाईली बैकलिफ्ट के साथ जब कोई बैट्समैन खेलता है तो फिर 6 लगाने में आसानी होती है, और फिर आजकल तो बैट के कहने ही क्या, बॉलर्स की शामत आती है। हमारे समय में यानी 20-25 साल पहले इस तरह के 6 पूरे मैच में 2 छक्के देखने को मिलते थे। अब तो एक बैट्समैन खुद ही 3-4 छक्के लगा देता है। और अगर विराट कोहली भी इस मैच में होते या फिर ऋषभ पंत होते तो ये मैच और दिलचस्प होता, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के लिए उन्हें आराम दिया गया है। और अहमद निश्चित रूप से जो कोलकाता, जो मोहाली में टेस्ट मैच होगा, वो उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि वो विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच होगा। और 100 टेस्ट मैच के आंकड़े तक पहुंचना आज की धुआंधार क्रिकेट को देखते हुए बहुत मुश्किल। Yeah, legendary cricket. And you can say by his standards, struggling with a bit of form, although he's well beyond par with the rest of the Indian players, but he sets very high standards and due for a big one. I'm sure he's going to bounce back in those test matches and delight all his fans with blooming centuries. You talked about young era. Adesh, you're still very fit, very young. And this era certainly belongs to you as well. मैंने डीडी स्पोर्ट्स के लिए ही पहली बार विराट कोहली के लिए कमेंट्री की थी, और वो भी अंडर 16 टूर्नामेंट था।
But you still look very young, Adesh. थैंक यू। और उस समय जो कॉमनवेल्थ क्रिकेट टूर्नामेंट था, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमें थी और उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विराट कोहली। और इस बीच अगली गेंद थोड़ा खतरे में पड़ सकते थे क्योंकि हवा में खेला गया शॉट और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल पास खड़े थे श्रीलंकन फील्डर, लेकिन फिर भी गेंद उनके हाथों के नीचे से निकल गई और जो बॉलर्स हैं इस समय काफ़ी निराश। लेकिन ये चौका भारत और श्रेयस अय्यर के खाते में जाता हुआ, हालांकि गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी और हाथों तक पहुंची भी हेमंत। Yeah, you would have to say a chance went begging. The fieldsman really was in good position to take that one. Shanaka, the bowler, the captain who introduced himself into the attack, clearly appalled with this chance, went begging. Sanju Samson getting a life for himself. Meanwhile, the second delivery, flicking it on the onside, might just return for a couple of runs. A misfield there in the deep, allowing the batsman to settle for the second run. Sanju Samson really has got the second life. How big he can make, that's a question. ऐसा लगता है कि संजू सैमसन हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना चाह रहे हैं और इसकी वजह से जो उनके शॉट की टाइमिंग है वो उस तरह की नहीं है और उन्हें काफ़ी सावधानी से खेलना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि 2 जीवन दान उन्हें मिल चुके हैं तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने स्ट्रोक्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसी तरह की ब्लाइंड हिटिंग करते रहे तो फिर वो अपना विकेट भी गंवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 12 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, और इस गेंद को बहुत ही हल्के हाथ से पुल किया हवा में और सावधानी के साथ खेला गया ये शॉट, इस पर कोई खतरा नहीं था और इस तरह से भारत का स्कोर 1 रन और मिला यहाँ पर संजू सैमसन को। 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 10वां ओवर यहाँ पर किया जा रहा है। 3 गेंदें अभी बाकी हैं और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 गेंदों पर 43 रन बनाकर संजू सैमसन 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर। इस बीच अगली गेंद, हल्के से गेंद को ऑन साइड में टर्न किया और जो मेडॉन का फील्डर है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। बॉलर ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका इस बीच ज़रूर था। तो इस तरह से जो भारत की करंट रन रेट है वो भी थोड़ा सा बढ़ती हुई, क्योंकि पिछले ओवर में जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने लगातार 2 छक्के लगाए थे और फिलहाल भारत का स्कोर 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद और एक बार गेंद को फिर हल्के से ऑन साइड में टर्न किया। हिम्मत यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी लगती है आपको कि जिसे सर्कल कहा जा सकता है? अब तो कंपलसरी नहीं है कि 2 फील्डर ही बाहर रहेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग फील्डिंग है वो काफ़ी पीछे की हुई है। आपको लगता है बहुत ही डिफेंसिव फील्ड ली हुई है? One reason for that, Adesh, might just be it's a very quick outfield in the HPCA. And plus it's a small ground, so that said, there's very little chance for the second and third run. So they've made sure that they're patrolling the field, which I think is the right thing to do. Meanwhile, Shreyas Iyer getting the inside edge of the bat onto his shin area. Nevertheless, runs scampers for a single, closing the 10th over, 80 for 2 then, and a 104 to get in the next 10. So really interesting phase of the game, and it'll be really interesting to see how Indian middle and lower order would respond to this. A lot depends on how the young guns would take the game from here on. It's the time for change in voices now. जी बिल्कुल, और हमारे साथी कमेंटेटर तैयार हैं, अर्जुन चौधरी और नीतीश अरोड़ा, और हम छोड़े जा रहे हैं उन्हें आगे का हाल सुनाने और दिखाने के लिए। 80 रन भारत का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन इस समय बल्लेबाजी करते हुए। कुछ कैच छूटे हैं, कुछ रनआउट के मौके, लेकिन फ़ायदा अंततः भारत को ही। संजू सैमसन का जिस तरह से एक कैच थोड़ी देर पहले छूटा तो 2 जीवनदान उन्हें ज़रूर मिले हैं, लेकिन देखना है कि वो इस जीवनदान का कितना फ़ायदा उठाते हैं। स्वागत है अर्जुन चौधरी जी और नीतीश अरोड़ा जी आपका। Well, thank you, Adesh, for those lasting words. I got the impression that you want to continue see India batting at 80 for 2 in the commentary box, but you'll have to do with us as Nitish and I take you forward in this India's run chase.
The target is 183 to win this match in the remaining 10 overs, which is another 100 runs. The asking rate is 10 runs per over. And the pick of the bowler so far for Sri Lanka has been Kumara, 1 for 8 in 2 overs with 7 dot balls. मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सा आसान लग रहा है, सीधा सीधा, क्योंकि ज़्यादा डिवाइड और वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्लियर कट टारगेट है आगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ये जो विश्राम होता है 10 ओवरों के बाद, वो थोड़ा भारत को ये देखने के लिए और बैट्समैन को ये देखने के लिए कि क्या आगे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। दोनों बैट्समैन ने पिच का और गेंदबाजी का अच्छा मुआयना कर लिया है, उन्हें मालूम चल गया है कि क्या है, इसको किस तरह से खेला जा सकता है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। दोनों ही एक्सपीरियंस है और संजू सैमसन अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस मैच को हाथों हाथ लें, वही जाने ना दें इस मौके को, जैसा ही उनको ये मिला है ये मौका, और वो शायद इसको काउंट करेगा उनके लिए। इसलिए श्रेयस अय्यर तो एक चैंपियन खिलाड़ी है ही और उसी तरह से खेल रहे हैं। 27 बॉलों में 45 रन, जो मोमेंटम चाहिए था 2 विकेटें गिरने के बाद भी उसको कहीं कम नहीं होने दिया, मैच के ऊपर पकड़ को कम नहीं होने दिया, और बहुत ही मज़ेदार ये अगले 5 ओवर और पूरा का पूरा मैच होने वाला है। अर्जुन। Yes, Shreyas Iyer is at the strikers' end, batting on 45 of 27 deliveries. Right now, the key batsman for India, if they are going to overhaul the target set by Sri Lanka. 183 to win this match. It's 80 for 2. We are at the halfway stage with another 104 runs required to win this match. A slower delivery off the first ball and picking up runs behind the wicket on the onside. The square leg fielder coming into play. 81 for 2 as Iyer just rotates the strike, batting on 46. Samson is on strike now. He's batting on 14 of 16 deliveries. We're into the 11th over. And it is Karuna Ratne into his second overs. He has given away 6 runs with 2 dot balls. नेक टू नेक की अगर बात करें तो इस समय एडवांटेज इंडिया है, क्योंकि इसी मौके के ऊपर, मैच के इसी पड़ाव के ऊपर श्रीलंका 72 रन था 2 विकेटों के ऊपर और भारत 81 रन है 2 विकेटों के ऊपर। अगली गेंद को उठा दिया हवा में, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची गेंद, ना 6 रन मिले, लेकिन फायदा ये रहा कि अगर ज्यादा दूर जाती तो शायद ये सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती। फील्डर ने एक दौड़ लगाई, लंबी दौड़ लगाई गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन उनसे पहले ही गिर गई। 1 रन संजू सैमसन ने अपने खाते में जरूर जोड़ लिया। A pull shot there, but the ball just coming on to the bat a little quicker than expected as the ball went up towards mid-wicket, and lucky that the fielder was not able to catch it on the fly. And a single to India's name. 82 for 2 as another single in that mid-wicket area on the onside. It is now 83 for 2 with Samson back on strike. Shreyas Iyer doing the running there, 47 of 29 deliveries. Karuna Ratne is mixing it up right now. 3 runs off the first 3 deliveries of this over. Samson batting on 15 of 17 deliveries. And if you do a comparison between Sri Lanka and India, India are 83 for 2 at the same stage when Sri Lanka was 73 for 2. Bowling from over the wicket, Karuna Ratne, this time playing an on-drive to the fielder at long on. Another single adding to India's score, 84 for 2. And what's positive here, Nitish, is that they're rotating the strike, even if they're not picking up the boundaries. But if they give away the wicket like the earlier lofted shot towards mid-wicket, which was almost a catch, then India would be in deep trouble. यही बात मैं कर रहा था कि रोटेट जरूर कर रहे हैं स्ट्राइक को। अगर एक एक रन स्ट्राइक रोटेट करने से आते रहे, लेकिन फिर भी 1-4 या 1-6 प्रति ओवर चाहिए इस समय, क्योंकि जो रन गति है वो 10 के करीब आसपास है और वो सिर्फ सिंगल्स लेने से नहीं आएगी। और शायद इस बात को सुन लिया और श्रेयस अय्यर ने घुमा दिया बैट को 6 रन के लिए, और इसके साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 30 बॉलों में 53 रन की शानदार जानदार पारी खेलते हुए 10.5 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 90 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। A unique shot played by Shreyas Iyer as he hooked it in front of the wicket for a 6. And it's a shot worth looking at again. Almost a tennis match return here. 79 meters is the distance covered by that 6 hit by Shreyas Iyer. And with that 6, his 50 has also come up. He's key to this run chase by India. The target, remember, is 184 to win. India's 90 for 2. Shreyas Iyer batting on 53 not out of 30 deliveries. जी हाँ, T20 के करियर में उनका ये 5वां अर्धशतक, और बहुत ज़रूरी इस समय मैच के लिए एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की कोशिश करते हुए 1 रन लेकर आखिरी गेंद के ऊपर
छोर बदला और फिर से तैयारी करेंगे अगले बॉलर को फेस करने के लिए। 11 रन इस ओवर में पड़ गए। जैसे मैंने कहा कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के साथ एक एक रन तो आ रहा है, लेकिन एक 4 या एक 6 रन जरूर दरकार है हर ओवर में। अगर उसके हिसाब से भी खेलते रहें और विकेट को बचाकर खेलते रहें तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर क्रिकेटिंग विजडम के साथ अगर खेला जाए तब भी इस मैच को भारत जो है वो जीत में तब्दील कर सकता है, बढ़त ले सकता है। 2-0 की अजयी बढ़त इसी मैच से ले सकता है। 11 ओवर के बाद 91 रन भारत का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 16 रन 18 गेंदों से संजू सैमसन और 31 गेंदों से 54 रन की पारी श्रेयस अय्यर। अगली गेंद खेल दिया बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं ले पाए। शनाका ने पहले ओवर में 10 रन दिए थे, ये उनका दूसरा ओवर। Well, Shanaka is a captain of the Sri Lankan side now in his avatar as a bowler. None for 10 after his first over. He's into his second over now. And India is 91 for 2 into the 12th over with Shreyas Iyer batting on 54 not out. On strike of 32 deliveries, Samson and the non-strikers then batting on 16, making room and playing it over the infield towards third man. It's hit the boundary ropes. Is it a 6 or a 4? We'll have to wait for the umpire's call there. But the runs are coming thick and fast for India with Shreyas Iyer making room. His score has now moved on to 58, which means that it's a boundary call by the umpire. 95 for 2 into the 12th over. जी हाँ, बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर ही डिप कर गई ये गेंद और थोड़ा सा इंचेस मात्र का फर्क रहा। अभी भी चेक किया जा रहा है अंपायर्स द्वारा कि कहीं ये 6 तो नहीं है, क्योंकि ऐसे क्लोज मैच में 1 या 2 रन भी बहुत क्रूशियल प्रूव हो सकते हैं और ये तो 6 ही दिख रहा है। अर्जुन, आप क्या कहेंगे? Well, Anil Chaudhary, the TV umpire, will have to rule on this because they are running the replay over and over again. And the ball did hit the soft fencing, the boundary rope, as we traditionally called it. We'll have to wait and see if it's a 4 or a 6. And we cannot rule on that till the umpire indicates that it's a 6. For now, it's a 4. It's 95 for 2. And indeed, it's been changed now. It's a 6, which means India is 97 for 2. Into the 12th over, the target is 184. जी, हमारे श्रोता जो नहीं देख पाएंगे उसकी बारे में बात कर देता हूं कि मैंने इशारा कर दिया था कि ये 6 रन है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि जब तक अंपायर नहीं कहता तब तक मैं नहीं मानूंगा और बिल्कुल ये 6 रन में परिवर्तित किया गया। उस पहले तो 4 का ही दिया था और जो एक दरकार है, जो जरूरत है इस समय कि मेजर्ड एग्रेशन के साथ खेला जाए, वो कर रहे हैं। हर ओवर में अगर ऐसा भी चलता रहेगा तो बहुत आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। विकेटों को भी बचाकर खेलना पड़ेगा और धीरे धीरे जो ड्यू फैक्टर है, धीरे धीरे वो सभी फैक्टर जो हैं वो भारत के फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि आप टिक कर खेलें और टिक्कर और एग्रेशन के साथ। वाइट बॉल को दिशा देना चाहते थे, शायद 4 रन के लिए चली जाती, लेकिन हाँ, वाइट का इशारा हुआ और 1 रन दौड़कर भी ले लिया प्लेयर्स ने। छोर बदला है श्रेयस अय्यर ने। 100 रन इसके साथ ही भारत के पूरे होते हुए 11.3 ओवर्स में। शनाका द कैप्टन एज बैट्समैन तो अपना रोल अच्छा अदा करके गए हैं, लेकिन एज ए बॉलर वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस ओवर को देख के तो लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं उनका वो जो भारत को रोकना चाहते थे वो नहीं अचीव कर पा रहे। Well, I'm sure the captain was lucky that there was a short square leg field. Otherwise, it would have run for a boundary. Once again, playing it off the toes there. Shreyas Iyer challenging that deep square leg fielder. And he picks up a single in the process. 101 for 2. And India well on course in this run chase. 184 is the target. Shreyas Iyer batting on 62 with 5 boundaries and 4 sixes of only 35 deliveries. A strike rate of almost 200. And he has been the pick of the batsman so far for India. He had taken the risk initially, especially exposing his wickets to full pitch deliveries, but lucky not to be dismissed. Samson batting, and this time a long hop outside the leg stump. Samson doing well not to play at it. White ball called by the umpire, 102 for 2. Extras is now 7. Samson is on 16 of 18 deliveries. Shreyas Iyer, the pick of the batsman so far, and ensuring that he rotates the strike, picks up the 2s and 3s, the boundaries, and the 6s well. So Anil Chaudhary, the TV umpire, has had to work overtime to rule on this, and the soft fencing and multiple cameras helping him. It is Samson on strike, batting on 16, playing it on the onside towards the square leg fieldsman, looking to take up, convert the 1 into 2, but restricting it to a single only. India 103 for the loss of 2 wickets into the 12th over.
जी हाँ, और श्रेयस अय्यर की जहाँ तक बात करेंगे, जो पारी वो खेल रहे हैं, जो इनिंग्स वो यहाँ पर खेल रहे हैं, मैं दर्शकों के अगर एंगल से कहूँ, जो आज फील्ड में बहुत देर के बाद क्रिकेट मैच देखने के लिए आए हैं, उनके लिए पूरा पैसा वसूल इनिंग्स खेली जा रही है। बड़ा मज़ेदार, आनंदित हो रहे हैं और बार बार बीच में कैमरा किसी ना किसी ऐसे दर्शक के ऊपर जाता है और इस बीच में ये गेंद को सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, लेकिन रोक लिया। दो प्लेयर्स कन्वर्ज करके, दो फील्डर्स कन्वर्ज करके उसके ऊपर आए, लेकिन बैट्समैन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। Straight bat, and once again the straight drive by Shreyas Iyer, showing his class there, picking up 2 runs in the process. Both the fieldsmen from long on and long off are trying to cut it off, and lucky that the ball didn't spill over the boundary or the soft fencing. So India picking up 2 runs in the process. It's 105 for 2 at the end of over number 12. Shreyas Iyer batting on 64 and Samson batting on 17. We'll have to wait and see what Shanaka does now. Does he bring himself back on? He has figures of none for 24 in his 2 overs. He still has plenty of bowling left with Chamara, Binuru and Karuna Ratne, who really made a strong impression in this match so far, and Kumara has been the pick of the bowlers with 1 for 8 in his 2 overs. So we'll have to wait and see what Shanaka does, a captain who is now playing as an all-rounder. He was earlier the key to the Sri Lankan response to the Indian bowling attack, 47 not out, helping Sri Lanka score 183 in the allotted 20 overs. अगर नेक टू नेक की बात करें तो भारत ने लगभग 20 रनों की इस वक्त एक एडवांटेज बना ली है और कुमारा को वापस लेकर आए हैं। पहली गेंद को जोरदार स्ट्रोक लगाते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया है संजू सैमसन ने। उनके पास भी यही एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का और दोनों हाथों से ग्रैब कर दिया है इस मौके को, पहली ही गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए। Well, the long leg fieldsman there is Binura Fernando, and Kumara was not happy with it because it should not have been more than 1 run, a single, but a misfield there meant that it was converted into a boundary. So one bowler to the other, Kumara not happy. He has been the pick of the bowlers so far, and the captain turned to him to bring a crucial breakthrough because India is well on course to overhauling this target, 109 for 2, and a slower delivery, playing it down the wicket over the boundary rope for a 6. So Sanju Samson now into the action, batting on 27, not out of 21 deliveries. India 115 for 2. जी, पहली ही गेंद के ऊपर मिसफील्ड होने की वजह से 4 रन जो चले गए, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक हुआ बॉलर का और अगली गेंद थोड़ा सा स्लोअर पेस की करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गति को, दिशा को पढ़ लिया संजू सैमसन ने और बॉलर के ऊपर से ही सीधा उछाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन अपने खाते में जोड़ते हुए 2 गेंदों से 10 रन। ओवर काफी महंगा और भारी साबित होता हुआ श्रीलंका के लिए। 12.2 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 115 रन। और अब कह सकते हैं कि एक जो भारत की इनिंग्स को स्टेबिलिटी चाहिए थी, ये दोनों खिलाड़ियों ने दे दी है और जो एग्रेशन चाहिए था वो भी दे दिया है। अब इसके आगे कहां तक लेकर जाते हैं, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से कम रह गया है और अगली ही गेंद देखिए बॉलर का कॉन्फिडेंस कैसे शेक हुआ। अगली ही गेंद वाइड करा बैठे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मैं 10 रन दे चुका हूं, इससे ज्यादा रन ओवर में नहीं दे सकता हूं, वो क्रिमिनल हो जाएगा। और उस क्राइम से बचने के लिए दूसरा जुर्म कर बैठे, वाइड बॉल, गेंद भी नहीं हुई और एक रन भी भारत के खाते में जुड़ गया। एक्स्ट्रास का स्कोर 8। This shows how crucial your field positions are, and if they don't support your bowling, then the bowler can lose confidence, and that's what we have seen. Binuru's misfield resulted in a boundary, and thereafter going for a 6, and now a wide ball. India 116 for 2, extras is 8. We are into the 13th over, and this time wide outside the off stump, and Samsung square drives it towards the offside for a huge 6. India 122 for 2. We were earlier talking about whether India is losing momentum. They haven't. They have gained it now. Sanju Samson batting on 33 not out. जी हाँ, कहीं ना कहीं बारिश की बात हो रही थी कि आज बारिश हो सकती है। आसमान से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जमीन से गेंदों को आसमान में पहुंचाकर बारिश जरूर कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। छक्कों की बौछार हो गई है यहां पर। Well, to put it simply, 84 meters, a 6 hit by Sanju Samson, batting on 33 not out of 22 deliveries. India 122 for 2, although I may not be as eloquent as my
co-commentator, the results speak the same. The required run rate has now come down versus the current run rate, which is now under 9 runs and over. Earlier it was 10 runs and over. Now it's under 9 runs and over. आई थिंक कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को सही कर रहे हैं, क्योंकि पैरों को अभी भी जमीन पे रखना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा एग्रेशन में अगर कहीं ना कहीं अपनी विकेट्स को गंवा दिया तो मुश्किल हो जाएगा. इसलिए एलोक्वेंसी की जरूरत अगर बातचीत में नहीं है तो शॉट में भी नहीं है उतनी ज्यादा. लेकिन जी हाँ, हर ओवर में 1-2 सिक्सर, 1 या 2 बाउंड्री लग जाए और बाकी सिंगल्स रहे तो अच्छा ही रहेगा भारत के लिए. 12.4 ओवर का खेल हो चुका है. 122 रन 2 विकेटों के नुकसान पर भारत इस रन चेज में पूरी तरह से अब मैच को अपनी पकड़ में करता हुआ. ये दोनों बैट्समैन जबरदस्त क्रिकेट प्रस्तुत करते हुए और कहीं पर भी उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं. जिस गेंद को जिस मेरिट पर खेलना चाहिए वैसे ही खेला जा रहा है और वैसे ही रन बटोरे जा रहे हैं. Kumara coming back strongly with a Yorker which just tested Sanju Samson. He dug it out. Dot ball for Sri Lanka. India 122 for 2. As Kumara this time bowling stump to stump. And once again lofting it. Does it find the fielder? No, for a huge 6 over that long off boundary. So over pitching in that case. India is now 128 for 2. Still one more delivery to go in this 13th over. The required run rate has come down below 8. It is a 7-6 of the innings so far for India. जी, बौछार हो गई, बारिश हो गई, रनों की बौछार हो गई, बारिश हो गई छक्कों की. और संजू सैमसन इस समय बिल्कुल जबरदस्त एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए. खासकर इस ओवर में तो कुमारा सोच रहे होंगे कि मैं बॉलिंग करवाने के लिए क्यों आया. पहली भूल तो जरूर की थी फील्डर ने, लेकिन उसके बाद किसकी भूल है ये भाई. बहुत बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही उम्दा क्रिकेट. और दर्शक इस समय झूम रहे हैं, मस्त हैं और धर्मशाला के ठंडे सर्द एटमॉस्फेयर में बहुत जबरदस्त गर्मा गर्म क्रिकेट परोसते हुए भारतीय बल्लेबाज. 56 runs to win this match in the remaining 7 overs. Sanju Samson batting on 39. And once again, a tremendous catch there by Binoru. Responsible for runs in this over. A one-handed catch by this tall left-arm fast bowler at first slip. Rewarding Kumara for his pace and length. And a wicket falling as far as India is concerned. The third wicket, 128 for 3. बिल्कुल, इस आंधी और इस तूफान को कोई चमत्कार ही रोक सकता था. और ये चमत्कार जो है वो ऐसे नहीं किया, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ किया. सबसे लंबे फील्डर को वाइड बॉल करवाई और उस फील्डर को ऐसे जगह पर रखा गया था कि अगर उछाल ले लेगी गेंद, क्योंकि खिलाड़ी ऐसे ही खेलेगा, तो वो भी उछल कर उस गेंद को पकड़ लेंगे. सिंगल एक हाथ से ऐसे कैच स्टक कर जाते हैं और ये स्टक कर गया कैच और बहुत ही बढ़िया कैच. इफ कैचेस विंस मैचेस, दिस इज द कैच व्हिच कैन टर्न द मैच. Well, I'm sure it can also be rated as a catch of the year. It was taken so well by this left-arm fast bowler. Sanju Samson batting on 39 out for that score. India losing the third wicket for 128. Shreyas Iyer is batting on 64. And it appears that Binuru Fernando has probably hurt his left hand, the left bowling hand, as a result of that catch. And it's Jadeja who is now walking on to the field. He would be at the non-strikers end as there's a change in the bowling after over number 13. लेकिन लगता है कि ये इंजरी इतनी महंगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विकेट बहुत महंगा पड़ने वाला था. और संजू सैमसन बहुत अच्छा खेल रहे थे. मायूस होकर बाहर गए हैं, क्योंकि वो जिस पर्पल पैच को हिट करना चाहिए किसी प्लेयर को, वो उस पर कर गए थे. वो बहुत बढ़िया एक गैस के ऊपर पाँव रख दिया था उन्होंने. बहुत तेजी से खेल रहे थे, लेकिन जाना पड़ा उनको. वैसे ही जैसे कह रहे थे कि होश थोड़ा सा रखना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एग्रेशन की जरूरत नहीं है. पर ओवर 1 या 2 जो बाउंड्री है वो भी काफी थी इस मैच को पार पहुंचाने के लिए. अब जडेजा को थोड़ा सा समय लगकर सेट होना पड़ेगा, लेकिन जडेजा ज्यादा समय लेते नहीं है. इस समय फिलहाल फेस कर रहे हैं श्रेयस अय्यर करुणारत्ने की अगली गेंद को. पहली गेंद ओवर नंबर 14 की और उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे 1 रन के लिए. Yes, and the single adding to India's score, 129 for 3. Way into the 14th over. Target is 184. And really Sanju Samson making it count in that over number 13. 23 runs going in that over. And losing his wicket also. Binuru Fernando responsible for that flurry of runs with his misfield and then taking a blinder of a catch. हाँ, उनके लिए एक अपने पाप को क्षमा कराने का मौका मिल गया था, क्योंकि पहली गेंद में उन्हीं की वजह से 4 रन गए थे मिसफील्ड की वजह से. लेकिन उन्होंने इस जबरदस्त कैच को पकड़कर अपनी भूल का सुधार कर लिया. अब
किस तरह से श्रीलंका कैपिटलाइज करता है इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर, इस जबरदस्त कैच के ऊपर, ये देखना रहेगा। क्योंकि कई बार मैच का मोमेंटम जो है वो फील्डर भी चेंज कर देते हैं। अगली गेंद को घुमा दिए 4 रन के लिए, बहुत खूबसूरत शॉट जडेजा का, ज्यादा समय नहीं लिया जडेजा ने। मैंने कहा था ना कि आते ही वो शुरू हो गए, पहली गेंद के ऊपर 4 रन। Timing, that's what we saw here. He wasn't really committed on the front foot, but a boundary of the very first delivery he has faced. And that just goes to show the class that he has. He's still early in his innings, picking up a boundary, just easing the pressure after losing Sanju Samson's wicket for 39. बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट थी ये, बिल्कुल इसमें कहीं एग्रेसिव उस तरह से नहीं था। बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट, जज किया कि कहां पर फील्डर है और कहां पर बॉल को भेजा जा सकता है, डिस्पैच किया जा सकता है, और उसी जगह को फिर से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की धीमे, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए। ओवरथ्रो से कुछ नहीं मिला, लेकिन 1 रन जडेजा ने छोर बदल लिया। 5 रन पर जडेजा, 65 रन पर श्रेयस अय्यर अगली गेंद का सामना करेंगे। Picking up a single by just testing that long off fielder who was standing short, and it was Jadeja's call because he was running towards the wicket with the fielder in his sight. Good running between the wickets and a good response by Shreyas Iyer, who is really the key batsman for India. 134 for 3, we into over number 14 with the 4th delivery now being bowled. Shreyas Iyer batting on 65 of 37 deliveries. Pitching his shot. Does he take advantage of it? He does, and almost a catch to that mid-wicket fielder. It beached him with bounce. So the luck going India's way, but it was a loose delivery. It deserved to be hit. Somehow he couldn't convert it into a boundary. लेकिन एक आप देखेंगे कि चतुराई का काम उन्होंने किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं इसको इस तरह से हिट करूंगा, बाहर नहीं जा पा रही थी बाउंड्री, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी शॉट को चेक किया तो फील्डर तक नहीं जा पहुंची। उन्होंने फील्डर को देख लिया था और उस तरह से अपनी विकेट भी बचा ली और रन भी ले लिया। Right, and it's not always easy to control the hook shot with a horizontal bat. Jadeja batting on 5 of 2 deliveries. And this time another short delivery and appeal by the wicketkeeper, not supported by the bowler as he tried to hook it on the onside behind the wicket. But the umpire nodding, saying not out. India 135 for 3. And probably a ruse to avoid being called a wide there. जी हाँ, बिल्कुल ये भी हो सकता है। और विकेट कीपर काफी देर तक परसिस्ट करते रहे जब तक कि वाइड भी नहीं दी अंपायर ने। और आपका बिल्कुल सही आपने जज किया कि उस वाइड को बचाने के लिए विकेट कीपर शायद अपील करते रहे। बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, होपफुल ही लग रहे थे सिर्फ। और आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर नंबर 14 की आखिरी गेंद, 135 रन 3 विकेट पर भारत का स्कोर, और इस गेंद को स्टीयर कर दिया 1 रन के लिए जडेजा ने। Very good timer, Jadeja playing a late cut and just testing the third man, using the pace of the ball at 138 kilometers per hour, rotating the strike. His score now moves on to 6. India 136 for 3. Shreyas Iyer batting on 66 of 38 deliveries. He's on strike right now. 6 overs still to go. The target is 184. Which means that 48 runs are required to win this match in the remaining 6 overs. 36 deliveries, 48 runs. That's an asking rate of 8 runs and over. Not a difficult task. India still has 7 wickets in hand to overhaul this target set by Sri Lanka. Rohit Sharma would be disappointed with his performance in this match. He just scored the 1. But the previous match is where he really made his mark, scoring 44 in that opening partnership with Ishan Kishan. जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया कि कहीं डिसअपॉइंटेड होंगे। जरूर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा उनके मन में मलाल रह गया होगा, क्योंकि मौका था अच्छे रन बटोरने का। लेकिन इस समय जो उनके खिलाड़ी खेल रहे हैं उससे उनका मन गदगद होगा, जरूर प्रसन्न होगा। उनको लग रहा होगा कि नहीं, ये मैच भी कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट में जा रहा है, क्योंकि दोनों मैच्योर्ड खिलाड़ी इस समय फील्ड के बीच में हैं और उन्हें मालूम है कि किस तरह से रन गति जो अब चाहिए वो तो 8 है, मतलब जितनी रन गति चाहिए। और अब ये एक बॉलर जिसका इंतजार शायद श्रीलंका कर रहे होंगे, बिनूरू, और पहली गेंद को ये बहुत ही बढ़िया दिशा दे दी। जहां पर फील्डर नहीं थे वहीं पर जडेजा ने अपने क्रिकेटिंग जीनियस का इस्तेमाल करते हुए 4 रन के लिए अपने खाते में और भारत के खाते में। Tremendous square cut there between cover and point on the offside, picking up a valuable boundary. And Binuru Fernando, who impressed everyone with his bowling, has now
bowled a no ball as well, indicated by the umpire. And we can see on the popping crease as well, with the foot being overstretched, which is a double whammy, 5 runs off this delivery. तो ये तो दूसरा क्राइम कर दिया है। पहले तो इन्होंने विकेट फील्डिंग में गड़बड़ कर दी थी, 4 रन दे दिए थे मिसफील्ड करके, और अब पहली ही गेंद में वैसे भी 4 रन अर्जित किए और नो बॉल करके फ्री हिट दे दिया है। अब देखिए इस फ्री हिट से कितना नुकसान होता है, क्योंकि इस फ्री हिट को लेने वाले हैं जडेजा। 141 रन 3 विकेटों के नुकसान पर भारत 14 ओवर के बाद में बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत की टीम 43 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, बल्कि 44 रन चाहिए 6 ओवरों में, और फ्री हिट लेने के लिए बिल्कुल से तैयार होते हुए जडेजा, और उसके बाद शायद वो उनको मौका मिल जाएगा अपने बैट की वो तलवारबाजी दिखाने का, जो उनका एक ट्रेडमार्क है। Well, you can sense the enthusiasm of my co-anchor there. The asking rate was 8, now it's 7. Jadeja on strike, batting on 10. And a beautiful straight drive. Does he beat the fielder? And he does! Picking up another boundary. It's 145 for 3 into the 15th over. Just a one delivery so far and 9 runs already, taking advantage of this free hit because a no ball was bowled earlier. 12 boundaries, 7 sixes in this India run chase. और इस बार जो पहले मैच से श्रीलंका ने इंप्रूव किया है अपनी बैटिंग को, लेकिन जहां पर यहां पर गलती कर गई इस मैच में वो है उनकी बॉलिंग और एक्स्ट्रास। पिछले मैच में बहुत सदी हुई बॉलिंग उन्होंने की थी, फिर भी भारत के बैट्समैन ने उनकी बॉलिंग को पनिश किया था, लेकिन आज यहां पर थोड़ी सी कहीं कमी रह रही है, और उस कमी का भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाज 14.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 145 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 35 बॉलों में अब चाहिए 39 रन्स, तो अब काफी आसान ये टारगेट और भी पास नजर आता हुआ। 145 for 3, just the one delivery so far in this 15th over. And Jadeja really timing the ball very well. We saw boundary off the very first delivery he faced, batting on 14 of 6 deliveries faced so far, pitching a shot, a long hop, and doing the right thing by letting it go, and a wide ball called by the on-field umpire there. So which means an extra delivery, 146 for 3. Extras counting, it's into the 10. And just the one delivery so far, 2 boundaries already with an extra. So India well on track. Now the asking is 38 runs required of 35 deliveries. क्राइम पे क्राइम बिनूरों का होता जा रहा है, और इस मैच में इंड्यूस किया था, इनको चेंज करके लाए थे, और शायद जिस पर्पस के लिए लाए थे वो पर्पस तो हल होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत ही एक्सपेंसिव साबित होते हुए अगली गेंद, और कहीं कॉन्फिडेंस भी उनका शेक हुआ, लेकिन जडेजा ने इसको बहुत ध्यान से खेला और वहां पर प्लेस किया जहां पर 2 फील्डर्स के बीच में वो गेंद गई, दोनों कन्वर्ज करके आते हुए, लेकिन इस बीच में 2 रन चुरा लिए जडेजा ने। And that's a pressure when you have good runners between the wickets. They put the mid-wicket fielder under pressure. They misfielded and they converted that 1 into 2. India 148 for 3. Jadeja retains the strike, batting on 16 of 7 deliveries. And Shreyas Iyer, who has been quite quiet, he was the attacking player earlier, batting on 66. And this partnership really blossoming right now. 36 runs to win off 34 deliveries. We're into the third delivery of the 15th over. Another short delivery, playing it on the back foot and just testing that gully fielder who is really more short in that third man area. 149 for 3 into the 15th over. Shreyas Iyer now on strike. Right-handed batsman batting on 66 of 38 deliveries. जी हाँ, किसी भी गेंद को बेकार नहीं जाने दे रहे हैं। अगर बाउंड्री नहीं लग रही है तो सिंगल तो जरूर लेना है। श्रीलंका के लिए इस मैच से भी बहुत कुछ सीखने को है, और ये यकीन मानिए कि ये सारी की सारी टीमें इस समय जो T20 मैचेस खेल रही हैं वो वर्ल्ड कप की ही तैयारी के लिए खेला जा रहा है, और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा एक तजुर्बा मिल रहा है। श्रीलंका ने काफ़ी यंग टीम को चूज किया है यहाँ पर लाने के लिए, और सबको यहाँ पर एक मौका दिया जा रहा है। भारत में भारतीय कंडीशंस पे भारतीय पिचेस के साथ भारत के खिलाफ खेलना, विश्व की टॉप की टीम के साथ खेलना अपने लिए में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। और अगली गेंद श्रेयस अय्यर को, और उन्होंने दिशा दे दी गेंद को, 1 रन भागकर पूरा किया, 2 रन बल्कि, और भारत का स्कोर 150 के अंक को पार करता हुआ 151 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Once again, the field restrictions on the onside, which means that the fielder had to run wide towards the right, and that single was converted into 2. Strong running, 151 for 3. Way into the 15th over. Shreyas Iyer batting on 68 of 39 deliveries. It's Binura
who is now given away 38 runs into his third over. Jadeja, the non-strikers, end batting on 17. Binora bowling from over the wicket, and this time another straight drive, testing that long off fielder. And is that a single? Yes, because of the speed with which he hit the ball, he was only able to pick up a single. 152 for 3 despite the misfield by the long off fielder. Shreyas Iyer batting on 69, and it's Jadeja who's on strike. जी हाँ, दम तो बहुत है स्ट्रोक में, इसलिए सीधी प्लेयर के हाथ में चली गई, दूर तक तो जरूर गई, बिल्कुल बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई, लेकिन एक ही रन ले पाए। लेकिन भारत माइंड नहीं करेगा, श्रेयस अय्यर माइंड नहीं करेंगे इस सिंगल को भी, क्योंकि हर रन जो है वो भारत को और नजदीक लेके जा रहा है उस जीत की तरफ। इस गेंद 15वें ओवर की ये आखिरी गेंद खेलते हुए जडेजा, और ये गेंद एक रन के लिए इस गेंद को भी मोड़ दिया। जी हाँ, फील्ड पोजीशंस का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं कि फील्डर से दूर खेल दिया, क्योंकि इस समय तो सिर्फ हर बॉल पर अगर एक रन भी ले लें तो आराम से इस मैच को जीता जा सकता है। इसलिए 15 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 153 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। जो मोमेंटम, जो गति इस 10 हाफ वे मार्क के बाद भारत को चाहिए थी, वो इन दोनों प्लेयरों ने उस मोमेंटम को दिया है भारत को, और अब ये ले गए हैं इस मैच को जीत के पायदान के बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक। और इसी मौके पे हम जीत का सेहरा चूमने के लिए अपनी अगली कमेंट्री टीम को बुला लेते हैं। उनका समय आ गया है, तो जीत इन्हीं के हाथ। I'm sure our next a batch of commentators will ensure that India wins this match. It should be easy going now, Adesh, with 31 runs required of 30 deliveries. And I hope you're able to help India win this match and also ensure that the commentary is in an unbiased manner. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी और नीतीश अरोड़ा जी। और जहाँ तक बात है भारतीय जीत की, तो भारतीय बल्लेबाजी इतना सक्षम है कि वो, जैसा कि नीतीश कह रहे थे, कि जीत की दहलीज तक तो पहुंचा ही दिया है लगभग टीम को। और श्रेयस अय्यर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाकर खेल रहे हैं, और रविंद्र जडेजा 18 रन बनाकर केवल 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया। भारत का स्कोर 153 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच मिस फील्डिंग होती हुई श्रीलंकन फील्डर से, और ये दबाव का नतीजा है जो साफ नज़र आ रहा है। ख़राब गेंदबाजी के साथ साथ ख़राब फील्डिंग भी, और यही वजह थी कि एक रन और भारत के खाते में जुड़ता हुआ। देखिए किस तरह से दोनों टांगों के बीच में से फंबल होते हुए, और कुछ ऐसा ही पिछले कुछ ओवर्स में भी देखने को मिला, जब जो डीप पर फील्डर कर रहे थे, डीप बाउंड्री लाइन के पास, उन्होंने भी मिस फील्डिंग की, और जहां केवल एक रन बनना चाहिए था वहां 4 रन मिले। इस बीच अगली गेंद रविंद्र जडेजा का लॉफ्टेड शॉट, जो कि गेंद हवा में बिल्कुल खड़ी हो गई है, लेकिन फील्डर ने फिर कैच छोड़ा, बल्कि कैच ही नहीं छोड़ा बल्कि 6 रन के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन तक भी पहुंचा दिया। बाहर गिरी ये गेंद उनके हाथ से छिटक कर, गेंदबाज काफ़ी निराश होंगे, और रविंद्र जडेजा भाग्यशाली रहे। ये जो गेंद थी थोड़ा शॉर्ट पिच थी, और रविंद्र जडेजा ने मन बना लिया था कि इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना है, और गेंद फील्डर के पास तक भी पहुंची, लेकिन उनके हाथों से छिटक कर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो श्रीलंकन फील्डर हैं वो बहुत निराश होंगे। रविंद्र जडेजा को जीवन दान मिला, लेकिन इसी के साथ साथ 6 रन भी एक तरह से इनाम में मिले उन्हें। अब भारत का स्कोर 3 विकेट खोकर 161 रन है। श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं 69 रन बनाकर, रविंद्र जडेजा 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद हैं, और इन दोनों बल्लेबाजों ने 28 गेंदों पर 23 रनों की साझेदारी, बल्कि अब भारत को 28 गेंदों पर 23 रनों की ज़रूरत है जीत के लिए। तो हेमंत, काफ़ी मुश्किलें यहाँ श्रीलंका ने अपने लिए पैदा की है। Yeah, some blistering stroke making by Indian middle order. And just as we speak, another cracking shot from the blade of Ravindra Jadeja through mid-wicket, finding himself another boundary there. That's adding insult to injury after that catch being dropped. Back of the length, and Jadeja getting rocking on his back foot. And the body weight transfer just perfect, immaculate from the middle of the bat. And one bounce into the boundary ropes. In fact, two bounces into the boundary ropes. Seeing another boundary. I think we are in for an early close for sure, Adesh, with the way Indian middle order is responding to this run chase. बिल्कुल, और रन बनाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं, और खासकर उन्हें फील्डर का भी काफ़ी साथ मिल रहा है।
श्रीलंकन टीम की फील्डिंग इतनी ख़राब इससे पहले हमने शायद ही कभी देखी हो। और इसी बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद और रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर इसे 4 रन के लिए निकाल दिया। 169 रन भारत का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर रविंद्र जडेजा ने, ऐसा लगता है कि जैसे जो पारी संजू सैमसन ने छोड़ी थी वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। और रविंद्र जडेजा को बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह से प्रमोट किया गया है उससे भी उन्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा है। और फिर रविंद्र जडेजा के पास तो बहुत सारे शॉट हैं उनके खजाने में, किसी भी शॉट की कोई कमी नहीं है। कट अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा खेलते हैं, हुक अच्छा करते हैं, बहुत बेहतरीन फील्डर हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। तो हमें लगता है कि इस समय अपने करियर के शानदार दौर में चोटिल होने के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है। और इस बीच अगली गेंद, और इस बार कवर्स में गेंद को निकाल दिया, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और जो श्रीलंकन फील्डिंग है वो ऐसा लगता है कि इस मैच में बिल्कुल तितर बितर हो गई है। एक ज़माना था जब रोशन महानामा जैसे फील्डर होते थे, हालांकि अरविंद डिसिल्वा काफ़ी भारी भरकम खिलाड़ी थे, लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड तब भी काफ़ी अच्छा था। या सनत जयसूर्या या फिर कालू वितरना विकेट कीपर होते थे। एक स्टाइलिश बैटिंग, आक्रामक बैटिंग और करिश्माई फील्डिंग नज़र आती थी। श्रीलंकन कभी भी मैच को अपने हाथ से जाने नहीं देते थे यहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे चौको छक्कों की जो बरसात है उसमें हाथ गीले हो गए हैं श्रीलंकन फील्डर के। Yes, literally toying with this bowling lineup, inexperienced bowling lineup of Sri Lanka, and that's followed up by the wide. This is pressure telling on the young guns. Ravindra Jadeja really literally toying with the bowling here. 38 of just 14 deliveries, and we are sure for an early close in this competition. At one time, Sri Lanka was threatening and posing challenges when they got Rohit Sharma out in the first over. Followed by another wicket in the form of Ishan Kishan. But the way Shreyas and Sanju Samson in particular responded, hats off to the young guns. Meanwhile, Jadeja going inside out, and he will clear the extra cover. Might just be a couple of runs again. No, will satisfy with just a single. A solid batting performance this. 16 overs gone, 175 for 3. और अगर रवि जडेजा की बात की जाए तो उन्हें सर जडेजा ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। 56 मैचेस उन्होंने खेले हैं इससे पहले, और जो उनका हाईएस्ट स्कोर है, आपको ताज्जुब होगा क्योंकि काफ़ी पीछे बल्लेबाजी करने आते थे, तो 44 रन था। आज यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या वो उसे पार करते हुए अपने अर्धशतक को बना पाते हैं या नहीं। लेकिन तारीफ़ करनी होगी यहाँ संजू सैमसन की, जिन्होंने दोनों हाथों से जो भी मौका उन्हें मिला उन्हें भुनाया और केवल 25 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। श्रेयस अय्यर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं 69 रन बनाकर, और रविंद्र जडेजा 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने इससे पहले 56 2020 इंटरनेशनल मैचों में 47 विकेट लिए हैं। ये थोड़ा सा ताज्जुब में डालने वाली बात है कि जिस तरह के गेंदबाज वो माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो दौर ऐसा था जहाँ गेंदबाज आपस में विकेट बांट लेते थे। लेकिन फ़िलहाल रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में अपने जोहर दिखाते हुए और इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 39 रन पर, अपने सर्वोच्च 44 रन से केवल 5 रन पीछे। और भारत को जीत के लिए औपचारिकताएं पूरी करनी है। 24 गेंदों में 9 रन उन्होंने बनाने हैं। इस बार गेंद को कट किया, लेकिन गली पर फील्डर खड़े थे और उन्होंने गेंद को बहुत ही आसानी से फील्ड किया। लेकिन भारत का स्कोर अभी भी 176 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब भारत को केवल 8 रनों की ज़रूरत है, और यहाँ पर श्रीलंका की टीम इतना मुश्किल में पड़ी हुई है कि अब वो ना केवल मैच हारेगी बल्कि सीरीज़ भी हारेगी, क्योंकि ये जो 3 2020 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ है, इसे भारत अपने नाम आज कर लेगा और उसके बाद औपचारिकता के लिए तीसरा मुकाबला धर्मशाला में ही खेला जाएगा। Absolutely, this would be an invincible win, invincible series win for India if they win today, which more or less would be happening anytime soon with the way Shreyas and Jadeja batting. Really top class performance. Goes to give you an idea of the depth of this Indian bench strength and Indian ODI. They're perfectly placed for their contendership for the World Cup to be held in Australia. Ravindra Jadeja had a sorry day when he was bowling, but
His strong batting has ensured that he's had the last laugh again as far as the batting is concerned. 40 runs already scored of just 16 deliveries. Fired once again towards the mid-wicket, would just have to satisfy with a single on this occasion. Bruno Fernando, who was introduced for today's game, wasn't there on a game in the first game of the series. He's also had a very forgettable day. Taken to the cleaners by heroics of Shreyas Iyer. Sanju Samson also joined in the party, followed by Jadeja, really doing the bulk of work as far as this run chase is concerned. तो यहाँ पर हेमंत जिस तरह से पहला मुकाबला भारत ने 62 रन से जीता था, जो बताता है कि कितनी आसान जीत थी। और यहाँ पर भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, 178 रन भारत का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए केवल 6 रनों की ज़रूरत। इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत 7 विकेट से इस मुकाबले को जीतने की ओर अग्रसर है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, 1-2 विकेट गिर भी सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बीच यहाँ पर गेंद को कट कर दिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 16.5 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 182 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 19 गेंदें शेष हैं, लेकिन भारत को जीत के लिए केवल 2 रनों की दरकार। और भारत ने जीत के लिए पीछा किया था 184 रनों का। रोहित शर्मा केवल 1 रन बना सके, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने 16 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 69 रन बनाकर खेल रहे हैं। संजू सैमसन 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। और श्रीलंका के लगभग 6 गेंदबाज जिन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला, किसी तरह का कोई दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर नहीं डाल सके। चाहे वो दुश्मन था चमीरा थे, 3 ओवर में उन्होंने 35 रन दिए, काफ़ी महंगे साबित हुए। और इसके बाद बिनुरू फर्नांडो 3 ओवर में 40 रन दिए, कोई विकेट उन्हें नहीं मिला। लाहिरू कुमारा ने 3 ओवर में 31 रन दिए और परवीन जिया विक्रमा ने 2 ओवर में 19 रन दिए। इसके अलावा चंबिका करुणा रत्ने ने 3 ओवर में 24 रन खर्च किए और दसुन शनाका ने 2 ओवर में 24 रन दिए। तो कुल मिलाकर काफ़ी खर्चीले साबित हुए, दोनों हाथों से इन्होंने रन लुटाए। और भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ़ करनी होगी संजू सैमसन, जिन्होंने केवल 25 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों के मदद से 39 रन बनाए। रविंद्र जडेजा नाबाद है, 39 रन बनाकर 2 रन भारत बस जीत से दूर। 182 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग का मुआयना करते हुए इस समय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा जो स्ट्राइक पर हैं, 41 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं केवल 17 गेंदों पर। और ओवर पिच गेंद, और इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में धर्मशाला में भारत का तिरंगा लहराता हुआ और जीत का परचम भी यहाँ पर लहरा दिया है भारत ने। तो हेमंत, यहाँ पर 7 विकेट से भारत ने न केवल इस मुकाबले को जीता है, बल्कि विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद भारतीय टीम 2020 इंटरनेशनल में जीत के रथ पर सवार है। ये लगातार 12वीं जीत भारत की। Yes, closing things in a style, Ravindra Jadeja. What a way to capture the win and be invincible in this series. Shreyas Iyer and Ravindra Jadeja thumping hands, and then followed by a very content-looking body language from these young guns of Indian cricket. And clearly, a bold Sri Lankan bowling attack. At one time, they were right on top, but decimated by this formidable Indian young middle order, making sure India captures and books an invincible series win against the underdog Sri Lankan team. यहाँ पर ये कहना होगा कि भारतीय टीम भी अंडरडॉग की तरह ही थी, क्योंकि विश्व कप में जिस तरह का प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद पहले तो न्यूजीलैंड को अपने घर में जिस तरह से हराया, ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की टीम एवरेस्ट से सीधा पहाड़ के नीचे पहाड़ी क्षेत्र पर आकर गिरी है, क्योंकि वो फाइनल में हारी थी। लेकिन भारत में वो तीनों मुकाबले बहुत बुरी तरह से हारी, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी भारत ने आसानी से हराया, न केवल 2020 बल्कि वनडे सीरीज़ में भी।
और मैं अपने साथी कमेंटेटर नीतीश अरोड़ा से जानना चाहूँगा कि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की, खासकर प्रथम निशांका ने 75 रन बनाए, गुनातिलका ने 38 रन बनाए और उसके बाद शनाका ने भी 47 रन बनाए और जो स्कोर था वो कोई कम नहीं था जीत के लिए, 184 रन। लेकिन उनके गेंदबाज पूरी तरह से नाकाम रहे और फील्डर्स ने बहुत निराश किया। जी हाँ, बिल्कुल आपने खुद ही जो पंच लाइन दे दी वो जो मैं कहना चाह रहा था कि बॉलिंग जो है उतनी ही अच्छी हो सकती है जितना अच्छा क्षेत्र रक्षण हो। और आज अगर श्रीलंका ने कहीं गलती की है, कहीं चूक की है तो उनके क्षेत्र रक्षण में की है। गेंदबाज भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना तजुर्बा नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि बार-बार T20 क्रिकेट में ऐसा समझा जाता है कि बार-बार हम जल्दी-जल्दी अगर चेंजेस करते हैं बॉलर्स की तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन पहला ओवर जो बिनुरा ने किया था उसके बाद उनको चेंज करना कहीं भारी पड़ गया। उनको दूसरे छोर बदल कर लाए और उसके बाद से उनमें जो जो पहले ओवर में जो उन्होंने इंप्रेशन दिया था, जो एग्रेशन था, वो कहीं खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। और उसके बाद जब एक बार आप गलती करते हैं तो गलतियों का सिलसिला वो शुरू ही हो जाता है और वो जो रेल चली गलतियों की उससे ही श्रीलंका जो है वो स्टेशन मिस कर गया और आगे निकल गया कहीं और भारत स्टेशन पर उतर गया, जीत के स्टेशन पर उतर गया। What a way to finish things off. Chamira, 3 overs, really expensive, 39 runs, picking up a wicket. And early on, getting the wicket, price wicket at Rohit Sharma, couldn't really capitalize. Binura, very expensive once again, 47 runs he spent, followed by Kumara, who showed signs of formidability. 31 runs, picking up a couple of wickets, trying to get Sri Lanka back in the match, but really wasn't good enough in the end. Courtesy, some fireworks from Sanju Samson and well backed up by Shreyas Iyer as well. यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी की अब ज़रूर चर्चा होगी। जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में उन्हें कप्तान बना दिया गया है, उनकी बल्लेबाजी भी थोड़ा सा डामाडोल सी लग रही थी। लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ में जिस तरह से उन्होंने बड़े स्कोर किए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने शतक बनाया था और उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम भारत आई तब भी उन्होंने शतक बनाया। तो रोहित शर्मा बहुत ही मैच्योर्ड बैट्समैन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा था कि वो कैचेस देकर अपने विकेट गंवा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऑन साइड में जिस तरह से वो होकिया पुल करते हुए आउट होते थे उस स्ट्रोक को कंट्रोल किया। विराट कोहली ने ऑफ साइड में अपने स्ट्रोक्स को चेंज किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुछ अच्छी पारी खेली। बहुत अच्छा होता अगर वो नज़र आते खेलते हुए, लेकिन इंतज़ार रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ में वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। अगर उनके शतक की बात छोड़ दी जाए तो फिलहाल उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इस श्रीलंकाई टीम ने निश्चित रूप से काफ़ी निराश किया। और भारत अपनी ज़मीन पर अब जिस तरह से टेस्ट मैच के बाद वनडे और T20 मैच में खेल रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे बाली का रूप ले लिया है। आधा बल चला जाता है, जैसे पहले भारतीयों का वेस्ट इंडीज़ में आधा बल चला जाता था, लेकिन अब भारत अपनी ज़मीन पर अजय सा नज़र आता है। बहुत ही बड़ा चेंज, और यही वजह है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली जो सिलेक्शन कमेटी है उसने लगातार खिलाड़ियों को बदला है और अब कलेक्टिव एफर्ट नज़र आता है। अब भारतीय टीम एक दो खिलाड़ियों पर नज़र नहीं आती। हेमंत, We've got a massive pool of players and all backing each other up. What's really good to see is there's high degree of competition only for the betterment of the game, only for the betterment of Indian results and outcomes. So really a proud moment for Indians and the Indian cricket as well, particularly Rohit Sharma's leadership. 12th game they're winning in streak, so that's a record in itself, and it shows the strength of Indian cricket in particular. Reminds me of Australian era at one time in the mid 90s to late 90s. They were ruling the roost, and India showcasing that they're no less. और उनका विजय रथ भी लक्ष्मण की और हरभजन सिंह की बदौलत सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने ही रोका था और कोलकाता में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच यहीं धर्मशाला में खेला जाएगा, जिसके तमाम विवरण और कमेंट्रीज़ के साथ हम आपके साथ होंगे। तो फ़िलहाल ये बताते हुए कि भारत ने इस मुकाबले को बहुत आसानी से 7 विकेट से जीत लिया। जिस मुकाबले में भारत ने
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की दावत श्रीलंका को दी और श्रीलंका ने भी उस दावत का अच्छा फ़ायदा उठाया। 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। निशांका ने अच्छी बल्लेबाजी की, अर्धशतक बनाया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने भी और ज़ोरदार दावत उड़ाई। खासकर विकेट की सराहना करनी होगी। हैवी वेदर था, कंडीशंस रेनी थी, लेकिन फिर भी विकेट में जो उछाल था वो बहुत ही शानदार था और इसकी बदौलत भारतीय टीम 7 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही। Yes, in the end, really, it was a good trial for Indian middle order. They rose to the occasion and making sure that India registers a very comfortable win in the end. So, Adesh, a very relaxed commentary team we had, considering the way the game went. Never we felt anxious, and just what we anticipated from a team like India. और ये बताते हुए कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी 2020 मुकाबला कल धर्मशाला में ही खेला जाएगा। फिलहाल मैं आदेश कुमार गुप्त अपने सहयोगी कमेंटेटर हेमंत और इसके अलावा अर्जुन जे चौधरी और नीतीश अरोड़ा के साथ लेता हूँ और इसी के साथ साथ दूरदर्शन की पूरी टीम के साथ लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।